सभापति जी। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2 साध्वी निरंजन ज्योति। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 3 डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर उल्लेखित अपने नाम के सामने जो दस्तावेज है उसको सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री भागवत कराड़। With your kind permission, on behalf of my colleague, Sri Pankaj Ji Chaudhary, I rise to lay the papers mentioned against his name at serial number 5 in the revised list of business for today. Item number 6, Srimati Shobha Karandave. Shown at serial number 6 of the revised list of business on Lok Sabha for today on the table of the House. आइटम नंबर 7 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख मत संख्या 7 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 8 श्री BL वर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9 श्री अजय कुमार जी। आज कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10 श्रीमती प्रतिमा भौनिक जी। Yes, sir, with your kind permission, I lay the papers on the table of the House mentioned at serial number 10 of today's revised list of business on behalf of Susri Pratima Bhumik, my colleague Minister of Social Justice and Empowerment, both English and Hindi versions, sir. Item number 11 Sri Biveshwar Tutu ji. Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name in today's revised list of business at serial number 11 on the table of the House. Thank you. Item number 12 Dr. L. Mathurang. Respected sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 12 of today's revised list of the business. Thank you, sir. Item number 13 Sri निषेधन प्रमाणीय। महोदय, आज की कार्य संचालन की संशोधित सूची क्रमांक नंबर 13 पर मेरा नाम के आगे रखे गए दस्तावेज को सदन की पटल पर रखता हूं। अब आप अपने जगह पे खड़े हो जाओ, रुक जाओ जरा। आइटम नंबर 13A श्री भागवत कराड़ जी। Speaker sir, on behalf of my senior colleague, Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji, I rise to lay the following notifications. Number 1, notification 41/2023, Central Excise published in Gazette of India dated 18th December 2023, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the notification number 18/2022, Central Excise dated the 19th July 2022, reducing the special additional excise duty on production of petroleum crude from rupees 5,000 metric tons to rupees 1,300 metric tons and increase the special additional excise duty from nil per litre to rupees
1 per liter on export of ATF, that is aviation turbine fuel. Notification number 2, number 42/2023, Central Excise published in Gazette of India, dated 18th December 2023, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the notification number 4/2022, Central Excise, dated the 30th June 2022, reducing the special additional excise duty from rupees 1 per liter to rupees 50 paisa per liter on export of diesel. Thank you. Item number 14, माननीय महासचिव जी. Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 18th December 2023 agreed without any amendment to the Jammu and Kashmir Reorganization, Second Amendment Bill 2023 and the Government of Union Territories Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुसूची संबंधित समिति ने 18 दिसंबर 2023 को सभा में प्रस्तुत अपने 12वें प्रतिवेदन में सिफारिशें की है. प्रतिवेदन में उल्लेखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए. क्या सभा की समिति द्वारा की गई सिफारिशों की अनुमति प्रदान की करती है? सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जाएगा. 16 सुनील कुमार सिंह. माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 16 पर सूचीबद्ध याचिका समिति का 54वां, 55वां, 56वां, 57वां, 58वां, 59वां, 60वां और 61वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी का प्रस्तुत करता हूं. आइटम नंबर 17 करेन मुर्ग. Sir. Thank you, Honorable Chairperson, sir. With your kind permission, I beg to present the 91st, 92nd, 93rd, 94th, 95th, 96th and 97th reports, Hindi and English version, of the Committee on Government Assurances as listed against my name at serial number 17 in today's order paper. Thank you, sir. Item number 18, Sri PC Gaddigawar. मैं आज की कार्यसूची क्रम संख्या पर अपने नाम के समूह की यथा सूची संबद्ध देश के पशुओं में लंपी स्किन डिजीज का फैलना और इससे संबंधित मुद्दे विषय पर कृषि, पशुपालन और खाद्य संस्करण संबंधी स्थायी समिति के 66वें प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं. आइटम नंबर 90 भी आप कर रहे. महोदय, मैं आज की कार्यसूची क्रम संख्या पर अपने नाम के समूह तथा सूचीबद्ध कृषि, पशुपालन और खाद्य संस्करण संबंधी स्थायी समिति के 50वें, 60वें, 61वें, 63वें, 64वें और 65वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा आगे की गई कार्रवाई दर्शाने वाले विवरणों हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा की पटल पर रखता हूं. आइटम नंबर 20 श्री जगदम्बा पाल जी. Sir, I wish to present a copy of each of the following three reports, Hindi and English version. 39th report on action taken by the government, and 40th report on action taken by the government and observation recommendation, and 41st report on the subject bioenergy and based energy recovery of energy from urban of the Standing Committee on Energy as listed against my name in today's revised list of business.
आइटम नंबर 21 श्री संजय सेठ। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का 92वां और 53वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 22 श्री मितेश रमेश भाई पटेल। Thank you, Honorable Chairperson, sir. I beg to present the 37 and 38 reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distributions as listed against my name in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 23 श्री सत्यदेव पचौरी। संख्या 23 पर मेरे नाम के संपुक्त यथा सूचीबद्ध रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति 2023 और 2024 की गई कार्रवाई विवरण का हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 24। महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 24 पर मेरे नाम के संपुक्त यथा सूचीबद्ध रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का 45वां, 46वां, 47वां, 48वां और 79वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 25 डॉक्टर महेश शर्मा जी। Respected sir, I rise to lay on the table of the following reports in English and Hindi of the Standing Committee on Health and Family Welfare. 150th report on action taken by the government on the recommendations, observations contained in 137 report on the vaccine development, distribution, management and mitigation of pandemic COVID-19 and 151st report on implementation of Ayushman Bharat. आइटम नंबर 26 साध्वी निरंजन ज्योति जी। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लिखित ग्रामीण विकास विभाग संबंधी स्थायी समिति के द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति वर्तमान स्थिति पर सदन के पटल पर एक वक्तव्य प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 27 श्री विश्वेश्वर टट्टू जी। With your kind permission, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation contained in the 20th report of the Standing Committee on Water Resources on demands for grants 2023-24 pertaining to the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, both in Hindi and English on the table of the House. Thank you. जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें। माननीय मंत्री जी श्री आइटम नंबर 29 माननीय मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to move that the bill further to amend the National Capital Territory of Delhi laws, special provisions, Second Act 2011 be taken into consideration. बिल के बारे में चर्चा होगी। श्री सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस बिल के बारे थोड़ी कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करना चाहूंगा। 1947 में दिल्ली शहर की जो आबादी थी, जनसंख्या थी, वो 8 लाख थी। जब हमारा पहला सेंसस हुआ सभापति महोदय 1951 में, आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, तो दिल्ली की जो जनसंख्या है 8 लाख से चढ़ के 17,45,000 के करीब पहुंच गई। Sir, there was a massive transfer
demographic shift of population to Delhi as a result of the partition. उसके बाद सर दिल्ली की आबादी बढ़ती गई। 1991 में दिल्ली की जनसंख्या 94.2 लाख के करीब थी। 2001 में ये 1 करोड़ 38 लाख हुई और जो हमारा पिछला लास्ट लेटेस्ट सेंसस है सर 2011 का, उसके हिसाब से ये 1.6 करोड़ है। सर क्योंकि सेंसस में थोड़ी देरी हो गई महामारी के कारण, और जब हमारी सेंसस फिगर्स अवेलेबल होंगी अगले 1 साल के अंदर, तो लग सकता है 2 करोड़ नहीं, मैं तो समझता हूं 2 करोड़ से ऊपर ही होगी और 2.5 करोड़ के आसपास हो सकती है। और आने वाले समय में अगले 12-13 वर्ष में जो हमारे सरकारी एस्टिमेट्स हैं, ये जनसंख्या जो है दिल्ली की, ये by till 2036 it could even reach between 2.5 crores and 3 crores, sir. Sir, Delhi ki, I'm presenting a bill, sir, and the situation is that Delhi in many ways is a sui generis situation. It is both the capital city of Delhi, of India, it is also a big cosmopolitan city, and it is one of the major engines of growth insofar as economic activity is concerned, sir. And sir, what has happened, sir, over a period of time is that because there has been a large influx of populations from rural areas, semi-rural areas, smaller tier 2 and 3 cities into Delhi, there has been a large, fairly substantial amount of unauthorized building activity. There have been encroachments resulting in a situation that by 2006, on account of directives from the Apex Court, Delhi High Court and the Supreme Court, that a process of sealing and demolitions commenced. The then government in 2006, sir, deemed it fit to bring a law which would provide protection against this sealing and demolition, etc. Sir, between 2006 and 2011, these laws were passed on an annual basis. These problems of encroachment on public land, growth of slums and unauthorized colonies, commercialization of residential areas, there were attempts made by previous governments, sir, to deal with these issues. And I mentioned specifically by the governments in 1961, 1977, 2000, 2008, 2012. But these attempts, considering the nature of the problem and the extent of the problem, these were small, modest attempts, and the problem remained largely unaddressed. Sir, I must say, and I must introduce a word of caution here, issues relating to the growth of slums and unauthorized colonies, or for that matter, encroachments, cannot be dealt through inhuman orders of mass demolition and sealings. Therefore, the then government in 2006 thought it fit to bring in a law to provide protection against such activities for 1 year. 2006 और 2011 के बीच में ये protection year by year की, this house approved them. From 2011, sir, 3-year extensions were sought. Sir, we were hoping that the earlier government, that the governments of the day, they would address the issue of unauthorized colonies in a systematic way. Because when influx of populations took place, large number of people came in for a variety of reasons, maybe because of the poverty of our policies, people started just occupying available land, cutting colonies and making those available. When we approached the government of the National Capital Territory of Delhi, we were told इस पे काम हो रहा है और हम इसी विश्वास में रहे 2014 के बाद में। बट जब हमें लगा और हमें बताया गया 2019 में कि अभी जो सर्वेस करवाने थे उनको, दिल्ली की सरकार को,
और ये समस्या जो है कानून में पॉलिटिकली ये दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी बनती थी, पर जब हमें 2019 में यह बताया गया कि इनको 2 साल और लगेंगे ये वेरिफिकेशन और काम कंप्लीट करने में, उस समय सर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया और यूनियन कैबिनेट ने 23 अक्टूबर 2019 को ये हिस्टोरिक डिसीजन लिया और एक नई स्कीम हम लाए, प्रधानमंत्री अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना, पीएम उदय। सर 2019 में हम ये कानून लाए और इसके तहत कुछ काम शुरू हुआ, पर ऑलमोस्ट इमीडिएटली वी हैड टू फेस द पेंडेमिक। मार्च 2020 से लॉकडाउन 20 और 21 तक वो रहा। सर इस समय जो हमने स्कीम लाई है उस पे जो काम हुआ है, हमारी ये असेसमेंट है दैट अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जो जनसंख्या हमारे भाई बहन रहते हैं वो 40 और 50 लाख के बीच में होने चाहिए। 40 लाख अगर हमारी जनसंख्या है वहां पे, तो रजिस्ट्रेशन हमें चाहिए 8 से 10 लाख के बीच में। अभी तक 4 लाख रजिस्ट्रेशन हुई है। Around 1,17,340 applications, households have been received. Authorization, conveyance deeds have been issued to 20,881 households. So clearly more work needs to be done. हमने इसके लिए पीएम उदय मित्र एक स्कीम बनाई है। पहले हर हफ्ते हमारे यहाँ 200 के करीब डोर टू डोर एफर्ट से कन्वेयंस डीड ऑथराइजेशन स्लिप्स इशू हो रहे हैं। उसके कारण अब 200 से हमने उसकी पेस बढ़ा के 350 हो रहे हैं पर मंथ। डेवलपमेंट नॉर्म्स required for unauthorized colonies under the master plan of 2021 have also been notified in March 2022, and we expect this to trigger development in the colonies. Under in situ rehabilitation of JJ clusters, 675 JJ clusters in Delhi, 375 are with the DDA, और जो इन सिंटू स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स हैं, कालकाजी एक्सटेंशन हैज बीन कंप्लीटेड, 3024 EWF फ्लैट्स हैव बीन हैंडेड ओवर। 2 और कॉलोनीज हैं सभापति महोदय जी, जेलरवाला बाग, अशोक विहार, कठपुतली कॉलोनी, शादीपुर। These are in various stages of construction completion very soon. दिल्ली में CLSS वर्टिकल जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसके तहत कोई 30,000 बेनिफिशरीज हैं। They have availed of loans of about 693 crores as interest subsidy. Sir, जो प्रोटेक्शन हमें इस लॉ से मिलती है, which is available till 31st December, we clearly need to extend that for another 3 years, because otherwise the vulnerable populations of Delhi the population of Delhi which is vulnerable would be liable for sealing, demolitions and displacements. In addition, sir, the final stages of notifying the Master Plan 2041 has been reached. The DDA, MCD are also required to adopt measures to finalize norms, policy guidelines, feasible strategies for making orderly arrangements to deal with the problem of encroachments and unauthorized colonies. ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। मेरा मंत्रालय सर, Ministry of Housing and Urban Affairs, we have been in dialogue with the stakeholders to monitor the progress in different actions taken under the 2011 Act. इसलिए I come before the House, sir, to seek approval to extend this protection by another 3 years, that is from 1st January of 2024 till 31st December of 2026. Sir, I submit and I place this bill for approval by the House, sir. Thank you. श्री रमेश बिदुड़ी जी। अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर जो माननीय मंत्री जी लेकर आए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 40 लाख लोगों की जो चिंता की है, जो पिछले 25-30 साल से एक तलवार उनके ऊपर लटका रहा करती थी, उससे निजात दिलाने के लिए 2041 मास्टर प्लान जब तक नहीं आएगा तब तक के लिए उन लोगों को ये सुरक्षा प्रदान देने के लिए नेशनल कैपिटल
लॉ स्पेशल प्रोविजन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023, इसके बारे में बोलना चाहता हूं। मैं इसका समर्थन भी करता हूं, लेकिन इससे पहले कुछ मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं, आपके माध्यम से सदन को भी और दिल्ली वासियों को भी, कि ये केंद्र सरकार है हरदीप पुरी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के डायरेक्शन से जो कहा है पीएम उदय योजना के माध्यम से, तो लगभग कुछ जो 2-2.5 लाख लोगों ने अपनी रजिस्ट्री कराकर मालिकाना हक ले लिया है। कुछ लोगों को ये लगने लगा है मोदी साहब जो कहते हो तो गारंटी पूरी होती है, वो लापरवाही में रजिस्ट्री नहीं करा रहे, परंतु उसके अलावा भी दिल्ली का बजट 78,000 करोड़ रुपया है दिल्ली सरकार का, और केंद्र सरकार ने निगम के माध्यम से, डीडीए के माध्यम से लगभग 1,00,000 करोड़ रुपया पिछले 2.5-3 साल में दिल्ली के विकास के लिए खर्च किया। जैसे अमृत योजना लेकर आई, जो केंद्र से बजट जाता है, कॉलोनियों में सीवेज डलती है, ट्रंक नाले बनते हैं, उसमें 802 करोड़ रुपया की 44 योजनाएं जो चलाई जा रही हैं। मैं उसके लिए धन्यवाद दूंगा अपने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी जी को, कि जब हम इनके पास जाते हैं योजनाओं को लेकर, ये तुरंत सैंक्शन करने के बाद दिल्ली सरकार को पैसा देते हैं। उसमें 5,83,000 जो लाइटें थी जिनमें बिजली ज्यादा कंज्यूम होती थी, ऐसी एलईडी लाइट लगाने का काम हुआ है। फिर अमृत 2 लेकर आया हमारा शहरी विकास मंत्रालय, उस अमृत 2 के अंदर 2,02,885 करोड़ रुपया, जिनमें 38 परियोजनाएं चालू हैं, जिनमें जलाशयों का भी ब्यूटिफिकेशन, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर लोकसभा में ऐसे 75 जलाशय होने चाहिए जिनमें पानी का वाटर लेवल बढ़े और जिनमें वातावरण सूक्ष्म रहे। हमारे जौनापुर भीम कॉलोनी है, उसके अंदर भी इस प्रकार से जलाशय का जो निर्माण हुआ, और 3 निर्माण हुए, वो केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ। स्वच्छ भारत मिशन में भी 216.61 करोड़ रुपए जारी किए, जिनमें से 28,526 लोगों के लिए ओपन डेफिकेशन से बचने के लिए सीटीपीटी ऐसी शौचालय को निर्माण दिल्ली राजधानी के अंदर पिछले 7 साल के अंदर कराया गया है। 107 वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट लोगों लगाने का काम वो केंद्र सरकार की इस योजना से डीडी और एमसीडी के माध्यम से हुआ है। 5 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगे हैं, जो एक आनंदमयी मार्ग पर माने गृह मंत्री जिसका उद्घाटन करने गए थे। 342 करोड़ से जो गार्बेज निकलता है दुनिया भर का, उससे बिजली बनाने का काम, ये 5 प्रोजेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली के अंदर लगाए। 51 एसटीपी प्लांट लगे हैं सर, जो 21,563 एमएलडी कचरे को कंज्यूम करते हैं और उसको काम को कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही 410 करोड़ रुपया, जिनमें प्रमुख रूप से ये जो अनाथ आश्रय जो बने हुए हैं, रात को रेंट शेल्टर वगैरह जो बनाते हैं गरीबों के लिए, जो 216 410 करोड़ की लागत से वो भी काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर एक केंद्र सरकार के माध्यम से। वरना लोगों को, बाहर के लोग आते हैं बसे में, लोगों को लगता होगा कि ये सब विकास के कार्य हो रहे, तो कैसे हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट केंद्र सरकार की नहीं होती है। स्वनिधि योजना की मैं जानकारी दे दूं, रेहड़ी पटरी खोमचा लगाने वाले गरीब आदमी, चाय की दुकान, ब्रेड की दुकान लगाने वाले, जिनका कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया था कि पीएम साहब ब्रेड पकौड़े की दुकान नौजवानों को खुलवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए 199 करोड़ रुपए के 1.70 लाख ऋण प्रदान किए गए, कि लोग गांवों से निकलकर आते हैं शहरों की तरफ, वो शहरों में वो लोग मद्रास, कलकत्ता, बंबई, हर जगह देश में जाते, लेकिन दिल्ली में भी लोग रोजगार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लगभग 73%, बेंगलोर में भी इस प्रकार के लोन की व्यवस्था है। दिल्ली में मैं इस बात के लिए फिर बधाई दूंगा पूरे शहरी विकास मंत्रालय को, कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार इन्होंने 73% ऋण जो हमारे एमसीडी के अधिकारी हैं, उनको मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा, बैंक के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दूंगा कि वो कैंप लगाकर और 73% ऋण वितरण करके दिल्ली शहर 9वें स्थान पर है उस स्वनिधि योजना में लोन देने के लिए। इसी प्रकार से सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक तरफ तो शीश महल बनकर खड़ा हो जाता है, एक तरफ जो 70 गारंटियां दी थी, उसमें 56 नंबर गारंटी में दिल्ली के एक बौने दुर्योधन साहब, उन्होंने कहा था मैं सबको पक्के मकान झुग्गी झोपड़ी में दूंगा। उन्होंने तो प्रयास नहीं किया। कोविड में भी वो अपना 50 करोड़ का शीश महल बनाते रहे, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसी रणनीति के तहत 7 साल से अटके लटके पड़े वो फ्लैट थे गोविंदपुरी के अंदर, भूमिहीन कैंप के निवासियों को 3024 फ्लैट बनाकर उनको मालिकाना हक देने का दिल्ली में काम किया। जो प्रधानमंत्री जी का 2047 विकसित भारत का संकल्प है कि 2027 तक देश के हर व्यक्ति के पास पक्का मकान होना चाहिए, उसकी शुरुआत हमारे शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली में की गई है। इसी प्रकार से 692 करोड़ रुपए
होम लोन पर सब्सिडी देने का काम दिल्ली वासियों को 29,976 परिवारों को वो सब्सिडी मिली है 2.5 लाख रुपए से लेकर और 3.5 लाख रुपए की। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हर किसी गरीब का अपना मकान हो। इसी प्रकार से जो गरीब परिवार बढ़ जाते हैं सर, परिवार बड़े हो जाते हैं, 2 बच्चे, दोनों की शादी करनी है, एफआर बढ़ाना है अपने मकान का प्लॉट का 200 का 250 गज, उस एफआर का जो शुल्क था 2018 में उसको अधिसूचित करके हमारी सरकार ने, और जो एबी श्रेणी के लोगों का डेवलपमेंट चार्ज 18,160 रुपए होता था उसको घटाकर मात्र 4,200 रुपए किया गया। इसी प्रकार से सी और डी श्रेणी में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो चार्ज होता था वो 7264 रुपए हुआ करता था, उसको घटाकर 1680 रुपए किया गया कि अपने परिवार के एक्सपेंशन में वो एफआर बढ़ाना चाहे तो उनको ज्यादा शुल्क सरकारों को नहीं देना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो गरीब गांव और अनऑथराइज कॉलोनी में उनमें जनता फ्लैटों के अंदर जो लोग रहते हैं उनका EFGS श्रेणी थी, उनका 3632 रुपए हुआ करता था, उसको मात्र 840 रुपए किया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से। इसलिए पुणे में इस बात के लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। सर, जहां तक मेट्रो की मैं बात करूं, दिल्ली के अंदर 4th फेज की मेट्रो 2016 में चलनी थी। यही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक राजनीतिक द्वेष के कारण दिल्ली के लोगों को जाम में मरे, उसको बढ़ाने का काम नहीं किया। लेकिन केंद्र सरकार में फिर पुनः धन्यवाद दूंगा हरदीप पुरी जी को। मैं बहुत इस बात के लिए इनको धन्यवाद दूंगा कि जब वो उस बात के एनओसी नहीं दे रहे थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर अपने हिस्से के पैसे नहीं देगा तो केंद्र सरकार अपने पैसे से मेट्रो लेकर आएगी। और 4th फेज की मेट्रो एरो सिटी की 19 किलोमीटर तुगलकाबाद से लेकर लालकुआं, तिगरी, खानपुर, कृष्णा पार्क, राजू पार्क, अम्बेडकर नगर, इग्नू कॉलोनी के रोड, सेदराजाब, वो मेट्रो रेल का काम आज 48% के करीब 52% कंप्लीट हो गया। 120 किलोमीटर वो मेट्रो चलाने का काम किया है। सर, ये दिल्ली से जुड़ा मामला, मेरा 2 मिनट मुझे और चाहूंगा मैं आपसे, केवल 2 मिनट। अब मैं इन कॉलोनियों की तरफ भी आना चाहता हूं। सर, इन अनऑथराइज कॉलोनी के लोग 30 साल से संघर्ष कर रहे थे। जो उस समय 40-45 साल के लोग थे, बेचारे 50 साल के, वो तो चले गए। उनके बच्चे भी इस तंज को झेलते थे कि कब हमारे सर पे तलवार लटक जाए, हमारे खून पसीने की कीमत का पैसा पता नहीं कब बिल्डोजर चला जाए। 2019 में जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम उदय योजना से उनको मालिकाना हक देने का प्रयास किया। जो आज हम बात करते हैं गारंटी की, माननीय सोनिया जी है नहीं अभी, प्रतिपक्ष की नेता है, 2008 में रामलीला मैदान में चुनाव से 6 महीने पहले एक नौटंकी की और उन कॉलोनी को, RW के लोगों को बुलाकर प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटने का काम किया। लेकिन 8 में चुनाव तो जीत गए, दोबारा सरकार बना ली कि सोनिया जी ने कहा है, इतनी बड़ी नेता ने कहा है, अब तो कॉलोनी पास हो ही जाएंगी। लेकिन 13 तक उन कॉलोनियों की फिर सुधरी ली गई, केवल प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटकर छोड़ दिए गए। 13 के बाद जब 13 में आए फिर इसी प्रकार की नौटंकी की, कुछ RW के लोगों को बुलाया और एक प्रस्ताव विधानसभा में पास कर दिया, जैसा प्रस्ताव दिल्ली के इस बौने दुर्योधन इस मुख्यमंत्री ने किया था दिल्ली विधानसभा में झूठा 18 में कि हम दिल्ली की सभी अनियमित कॉलोनियों को पास करना चाहते इलीगल तरीके से। तो इसीलिए जो अनऑथराइज कॉलोनी जो 2396 के करीब 1979 से लेकर 2015 तक बसी है सर, इन कॉलोनियों में जो रहने वाले 40 लाख लोग थे, सीवर, नाली, सड़क, इन मूलभूत सुविधा से परेशान थे। पहले कांग्रेस ने फ्रॉड किया सर, उसके बाद ये फ्रॉड आदमी पार्टी आई, इन कॉलोनियों के निवासियों के साथ विश्वासघात किया और उन्होंने 2016 में चुनाव में आने से पहले इन्होंने फ्रॉड करके फिर एक नई बात बनानी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि हम इस नोटिफिकेशन के तहत अगले 5 वर्षों तक, कांग्रेस ने जब उन्होंने कहा कुछ नहीं किया है, तो हम 13 में चुनाव में जाने के बाद जब आएंगे तो फाइल नंबर 1333 अनऑथराइज कॉलोनी अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी 02012 549553, ये जानकारी आम नागरिक को होनी चाहिए सर कि कितनी फ्रॉड करने वाले लोग कैसे बैठे हैं। 895 अनियमित कॉलोनियों को पास करने का ढोंग रच दिया और इसी इंस्टीट्यूट, केजरीवाल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइन टेक्नोलॉजी एंड फ्रॉड मैनेजमेंट जो कंपनी है केजरीवाल की, इनकी जो स्थापना हुई, जिनके डीन केजरीवाल साहब हैं, इस डीन साहब ने 15 में 70 वादों में 56 नंबर पर, जो मैंने पहले बताया, 1 वर्ष के अंदर मैं कॉलोनियों को नियमित कर दूंगा। आज तक सर वो कॉलोनी नियमित नहीं हुई है। अब मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा सर, इस पे इतनी मेहरबानी और 40 लोगों के पास कर दो। पीएम उदय योजना के लिए 2019 में हमने प्रोटेक्शन उनको दे दी,
जिसका व्यक्ति का वहां प्लॉट है, एक कमरा बना हुआ है, उसका मकान बना हुआ, उसकी रजिस्ट्री डीडीए ने कर दी। लेकिन अब अगर मैं उसको बनाता हूं तो उसको अनऑथराइज माना जाता है और एमसीडी और एसडीएम डिपार्टमेंट के लोग उनको बुक कर देते हैं और वहां अवैध तरीके से उगाही होती है। इस प्रोटेक्शन डेट को सर एक 30 सेकंड में सर, इस प्रोटेक्शन डेट को सर बढ़ाकर 2014 की बजाय इसको 2022 कर देना चाहिए, क्योंकि मैं उस प्लॉट का मालिक तो बन गया, मैं उस कॉलोनी में रह रहा हूं, वही 1739 कॉलोनी का पार्ट है, लेकिन मकान मैंने 18 में बनाया, एक्सटेंड उसको किया है, तो वो मेरा अनऑथराइज है, उसको एमसीडी बुक कर देती है और उसको डिमोलिशन करने पहुंच जाते हैं। यहां सुविधा शुल्क की मांग की जाती है और हम जब बात करते हैं तो कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि कोर्ट की अदालत के आगे आदेश के खिलाफ ही सरकार ने इनको प्रोटेक्शन देने का 2014 के बाद में काम किया है। और जो ये अनऑथराइज कॉलोनी का उनको प्रोटेक्शन 2022 का अगर माननीय मंत्री इस पे विचार करेंगे, मैं इनका बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा। ये उन गरीब लोगों की तरफ से मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है और उन खाली प्लॉटों में जो 30-35% है, उन्हीं कॉलोनियों की सर मैं बात कर रहा हूं 1739, मैं एक्सटेंशन की कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूं। विद इन दिस कॉलोनी जो प्लॉट पड़े हुए हैं उनको अगर सर 14, 15, 16 में जिसने बनाया है, फिर दोहराना चाहता हूं, इस पर माननीय मंत्री जी जरूर विचार करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री मनोज तिवारी जी, मनोज तिवारी जी नहीं, श्री प्रवेश वर्मा जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष जी, और मैं पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया, और मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूं कि ये बिल कल आना था, और अगर ये कल आ जाता तो हम यहाँ पे बोल नहीं पाते, क्योंकि सामने लोग शोर मचा रहे थे। आज ये बिल आया तो मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूं कि हम इसके ऊपर में बोल पा रहे हैं, और ये दिल्ली की जनता इसको समझेगी कि आज प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए कितना बड़ा काम किया। और मैं प्रधानमंत्री जी का सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूं कि अभी जैसे बताया कि हमारे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही 15 साल और अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है 9 साल से। ये 22-25 साल में आज तक इन्होंने दिल्ली की एक भी कॉलोनियों को पास नहीं किया। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के पास में हम सारे सांसद मिलकर, दिल्ली के भाजपा के हमारे विधायक मिलकर गए और हमने मांग करी कि दिल्ली की कॉलोनियों को पास करो, तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने 50 लाख लोगों की जिंदगी के ऊपर जो हमेशा तलवार थी उसको हटाकर सारी कॉलोनियों को पास किया। मैं अभी ये सुन रहा था, कुछ सांसद कह रहे थे कि अभी दिल्ली का बिल आया तो आपको बोलना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये खाली दिल्ली के सांसदों के लिए नहीं है, क्योंकि ये भारत की राजधानी है और भारत की राजधानी में सारे सांसद के जिलों के, उनके क्षेत्रवासी, उनके वोटर ये यहां पे दिल्ली की कॉलोनियों में रहते हैं और ये सैकड़ों की संख्या में रहते हैं। तो ये बिल जो आया है ये सभी सांसदों के लिए है। यहां पर उत्तर प्रदेश के लोग भी रहते हैं, बिहार के लोग भी रहते हैं और यहां पे झारखंड के लोग भी रहते हैं, कश्मीर के लोग भी रहते हैं। तो ये सभी सांसदों के लिए बिल है, तो सभी को आपको इसको समर्थन करना चाहिए। मैं केवल थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। ये जो बार बार कहते हैं अनऑथराइज कॉलोनी, ये अनऑथराइज कॉलोनी है क्या? अभी जैसे हरदीप पुरी जी कह रहे थे, हमारे मंत्री जी, हमारा देश जब आजाद हुआ तो उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन 7 लाख थी, 8 लाख थी। उसके बाद में 2001 में हमारे दिल्ली की पॉपुलेशन हो गई 1.5 करोड़, आज हो गई दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़। अब आबादी बढ़ती जा रही थी, परिवार बढ़ते जा रहे थे, मगर जो दिल्ली के उस समय 50 साल पहले, 60 साल पहले दिल्ली में हमारे यहाँ पे जो सरकार होती थी, भारत की जो सरकार होती थी कांग्रेस की, या जो डिपार्टमेंट होता था डीडीए, कोई पॉलिसी नहीं है दिल्ली में। अगर आपको मकान बनाना है, अगर आपका परिवार बढ़ गया तो आज भी कोई पॉलिसी नहीं है। मगर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हरदीप पुरी जी का, भारत सरकार का, और जो हमारा विभाग है डीडीए उसका, कि जो नया मास्टर प्लान आ रहा है आप उसमें नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं ताकि लोग अपने एग्रीकल्चर लैंड में उसको कॉलोनी को पास करवाकर फिर वहां पर मकान बनाएं, तो वो अनऑथराइज नहीं बोला जाएगा, वो अधिकृत बोला जाएगा, ऑथराइज बोला जाएगा। ये जो अनाधिकृत वर्ड है
ये अगर किसी को खत्म करने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये उनका सौभाग्य है कि जो काम ये कांग्रेस 50-60 साल के रूल में नहीं कर पाई, ये उनका सौभाग्य था, ईश्वर का आशीर्वाद था कि वो सारे काम, वो सारे पाप को धोने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों होना था, इसलिए ये काम हुआ और ये सारी कॉलोनियां पास हुई। सर, मैं एक बार अपने गांव में गया तो वहां पर मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे बेटे की शादी होनी थी, जो है लड़की वाले देखने आए तो उन्होंने पूछा आपकी कॉलोनी पास है क्या? उन्होंने कहा पास नहीं है, तो रिश्ता टूट गया। अगर आज ये सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में शादियां होने लग गई हैं, विकास होने लग गया है, तो उसका श्रेय भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। ये सारे अच्छे काम होने लग गए। सर, मैं अभी क्योंकि मनोज तिवारी जी नहीं है तो आप उनका समय भी मुझे ही दे दीजिएगा। मैं थोड़ा सा ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सर, ये कांग्रेस ने खुद तो कुछ किया नहीं 60 साल 70 साल, और आज जब हम करने को आए तो आज भी ये चिल्लाते, आज भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज दिल्ली की कॉलोनियां पास हो रही हैं, वहां पे इनके रिश्तेदारों के भी प्लॉट होंगे, इनके एमएलए ने भी, इनके मंत्री ने भी प्लॉट काटे हैं, जो है कॉलोनियां काटी हैं। आज उसके भाव भी बढ़े हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पास किया, तो भी ये लोगों के पेट में दर्द होता है। और आज भी ये हमारे हर काम में अड़ंगा डालने का काम करते हैं। हमारा काम नहीं था कॉलोनियां पास करना, ये काम था दिल्ली सरकार का, केजरीवाल का, शीला दीक्षित जी का। क्योंकि उन्होंने कोई कॉलोनी पास नहीं करी, इसलिए प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा और उन्होंने सारी कॉलोनियां पास करी। मगर आज कॉलोनियां पास हो गई है, आज उनमें सीवर लाइन डालना है, पानी डालना है, बिजली डालना है, ये काम कौन करेगा? ये काम जो है दिल्ली सरकार करेगी, केजरीवाल करेगा। मगर वो भी ये काम नहीं कर रहा। ये सारी कॉलोनियां पास होने के बाद भी काम नहीं हो रहे। इसलिए मैं हरदीप पुरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज भारत सरकार जो है इन कॉलोनियों में पानी की लाइन डालने के लिए भी पैसे देती है, तो सीवर की लाइन डालने के लिए भी पैसे देती है, और इनके टॉयलेट बनाने के लिए भी पैसे देती है। वहां की सारी सुविधाएं करने के लिए भारत सरकार पैसे दे रही है। सर, एक बार 1996 में हाईकोर्ट ने एक बार सारी कॉलोनियों को तोड़ने का ऑर्डर कर दिया था। उस समय हमारी दिल्ली में सरकार थी, उस समय के जो हमारे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, वो हाई कोर्ट गए। उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि आज जो है सरकारी वकील बहस नहीं करेगा, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बहस करूंगा। तब उन्होंने वहां पर बहस करी। उसके बाद में कोर्ट का ऑर्डर बदला, जो सारी कॉलोनियों के ऊपर में बुलडोजर चलने वाला था, अगर उसको बचाने का काम भी 1996 में किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। सर, अभी परिवार बढ़ गए तो ये कॉलोनियां आज भी कट रही। मैं इसलिए हमारे मंत्री जी से एक मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि जो नया मास्टर प्लान बन रहा है 2041, सर कृपया उसके अंदर में जीडीए पॉलिसी जो आने वाली है और हमें सुनने में आ रहा है कि आएगी, उसको लागू किया जाए, और उसके साथ में लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू किया जाए। क्योंकि अगर ये पॉलिसी नहीं आएगी, सर आज भी आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में, मेरी लोकसभा में ऐसे ऐसे गांव की जमीनें जहां पर 2 करोड़ रुपया एकड़ में जमीन मिलती है, और उसी के 1 किलोमीटर दूर में गुड़गांव में चले जाओ तो वहां पर 20 करोड़ रुपए एकड़ में जमीन मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहां पे अपना पॉलिसी है। हमारे दिल्ली में पॉलिसी नहीं है। तो दिल्ली में अफवाह ये चलती है कि सारी कॉलोनियों की जमीन को, एग्रीकल्चर लैंड को सारे बिल्डर ने खरीद लिया, बड़ी बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। आज भी दिल्ली की 80% एग्रीकल्चर लैंड वो वहां के किसानों के पास है। इसलिए अगर कोई पॉलिसी आ जाएगी, सरकार लेके आएगी मास्टर प्लान में, तो हमारे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा और ये कॉलोनियां, नई कॉलोनियां कटने से बच जाएंगी और सारी अधिकृत कॉलोनियां ही आएंगी। तो मैं ये भी मंत्री जी से मैं एक हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं मेरे दिल्ली के ग्रामीण वासियों की तरफ से कि सर कृपया जो मास्टर प्लान आएगा उसी में जीडीए पॉलिसी को, लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर आए तो हमें जो है बहुत ज्यादा खुशी होगी। सर, अगर ये बिल
आज जो हमारी सरकार स्पेशल प्रोविजन एक्ट लेके आ रही है, सेकंड अमेंडमेंट, अगर आज ये नहीं आएगा तो क्या होगा? तो ये सारी कॉलोनियों के ऊपर में केजरीवाल वो अपना बुलडोजर भेज के चला देगा, ये सारे मकानों को तोड़ देगा। अगर ये मकानों को बचाने का काम आज हो रहा है तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम हो रहा है और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को, सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। सर, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आज तक जैसे हमारी सरकार ने हजारों जो अंग्रेजों के टाइम के पुराने कानून थे उनको खत्म किया, आज भी 2 कानून दिल्ली में चलते हैं अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए, और वो ये सारी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर में चलते हैं। एक है सेक्शन 81 और एक है सेक्शन 33। अब ये 2 कानून क्या हैं? अगर आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर में जरा सी भी दीवार बना ली तो सरकार उसको ग्राम सभा में वेस्ट कर देती है। तो सर, आज तो दिल्ली के सारे गांव जो है अर्बनाइज हो गए, आज ये धाराओं का कोई लॉजिक नहीं है दिल्ली में। इसलिए मैं मेरी सरकार से और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय जिन्होंने ये जो नया मास्टर प्लान है उसमें रुचि ली है और यहाँ पे डीडीए के वीसी बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि सेक्शन 81 को, सेक्शन 33 को, ये दोनों धाराओं को खत्म किया जाए और दिल्ली में जितने भी केस चल रहे हैं वो सबको खत्म किया जाए और सारी ग्राम सभा में वेस्ट की हुई जमीन वो हमारे दिल्ली के किसान भाइयों को वापस की जाए। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने जो दिल्ली में काम किए और खासकर ये सारी अनाधिकृत कॉलोनियों में जो काम किए ये बहुत ही अभूतपूर्व हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, एक अभी हमारे यहाँ पे अर्बन एक्सटेंशन रोड बनी है, 8000 करोड़ रुपए की रोड बनी है, सारी कॉलोनियों को आपस में जोड़ने का काम किया है। अगर वो रोड बनाने का किसी ने काम किया तो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने काम किया। उसके लिए मैं हमारे मंत्री गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी का और डीडीए का धन्यवाद करता हूं कि जिनके सहयोग से रोड बनी। उसके साथ में अभी आपने सुना होगा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वहां पे 28,000 करोड़ रुपए का ऐसा कन्वेंशन सेंटर सारी कॉलोनियों के बीच में बना है। तो वो कॉलोनियों में आज जो है विकास करने की बात कोई कर रहा है, उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, उनके जीवन को अच्छा करने की बात कर रहा है, तो वो हमारी सरकार कर रही है। सर, उसी के साथ में अभी रमेश जी ने भी बताया कि 6 लाख LED लाइट लगवाई गई कॉलोनियों में और स्वच्छ भारत मिशन में अभी 1190 करोड़ रुपए दिए गए। उसी के साथ में स्वनिधि में अभी तक 2 लाख लोगों को ऋण मिला है, उससे वो अपना रोजगार कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं दिल्ली में। सर, PM उदय योजना, ये ऐसी योजना है जो दिल्ली के ये सारे कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए लाइफलाइन साबित हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी का, हमारे मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो एक ऐसी स्कीम लेके आए कि एक ही झटके में उन्होंने दिल्ली के 50 लाख लोगों का जीवन को सुरक्षित कर दिया, उनको सम्मान दिया, उनको इज्जत दी, उनको स्वाभिमान दिया। मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे मंत्री हरदीप पुरी जी का धन्यवाद करता हूं और सारे डीडीए के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं और ये बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी इस बिल पर बोलने का समय दिया जाएगा। आप बैठ जाइए। श्री राहुल शेवाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा विधेयक 2023 का अपनी तथा अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से समर्थन करता हूं और साथ में इस विधेयक का स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी, यह विधेयक अनधिकृत विकास की रक्षा के लिए प्रावधान की वैधता को अगले महीने की 1 तारीख से 3 और वर्षों के लिए विस्तार प्रदान करता है। अध्यक्ष जी, यह विधिवत है कि पिछले कई वर्षों में दिल्ली की अभूतपूर्व वृद्धि के कारण, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, आवास, वाणिज्यिक स्थान और अन्य नागरिक सुविधाओं की मांग में वृद्धि हुई गई है। मांग और आपूर्ति में अंतर के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, मलिन बस्तियों का विकास, अनधिकृत निर्माण आदि की समस्या पैदा हुई है। अध्यक्ष जी, ध्यान देने वाली बात यह है कि झुग्गी बस्तियों में रहने वालों की संख्या पिछले दशक से दुगनी हो गई है और भारत सरकार के सर्वे के 2011 के अनुसार मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के शहर में आबादी क्रमशः 41%, 29%, 28% एंड 15% झुग्गी बस्तियों में रहती है। इन झुग्गी बस्तियों में औसतन 5% लोग
लोग एक कमरे में 5 लोग एक कमरे में अपना गुजारा करते हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार 700 एकड़ में झुग्गी बस्तियां हैं और इनमें लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली में लगभग 90% झुग्गियां अनियमित कॉलोनी के रूप में सरकारी जमीन पर है। अध्यक्ष जी, भारत में सबसे ज्यादा झुग्गी बस्तियों की संख्या महाराष्ट्र में है और मेरा जो संसदीय क्षेत्र धारावी, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, तो जो लोग झुग्गिया में रह रहे हैं उनकी संख्या 2001 में 52 मिलियन से बढ़कर 2011 में 65 मिलियन हो गई है और अब यह संख्या और भी बढ़ गई है। इस समस्या का हल ढूंढना बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष जी, सस्ता शहरी आवास और अपर्याप्त आपूर्ति की बढ़ती मांग के बीच अंतर ने मलिन बस्तियों के गठन को प्रोत्साहित किया है। जब भी शहरी घरों की मांग बढ़ती है तो उसे औपचारिक क्षेत्र के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है। इससे बढ़ती जनसंख्या को झुग्गी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। झुग्गी झोपड़ियों के निवासी आमतौर पर सीमांत स्थानों से जैसे डंपिंग ग्राउंड में निवास करते हैं। अध्यक्ष जी, शहरों में झुग्गी बस्तियों का विस्तार का प्राथमिक कारण गांवों से शहरों की और लोगों का पलायन है। शहर अतिरिक्त आबादी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा पाने में सक्षम नहीं है, जो अंततः आवास की कमी, बेरोजगारी और मलिन बस्तियों के विकास जैसे कई समस्याओं का कारण बनी। इस समस्या निपटने के लिए सरकार को कदम उठाने जरूरत है। अध्यक्ष जी, मलिन बस्तियों के प्रमुख कारक के रूप में पुराने शहरी नियोजन नियम है, जिन्हें आमतौर पर झुग्गी वासियों द्वारा अपनी आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पहले की सरकारें शहरी गरीब झुग्गी वासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना में शामिल करने में विफल हो गई है। इससे उनके जीवन स्तर में कई सुधार नहीं हुए और अभी भी झुग्गी बस्तियों में लोग रह रहे हैं। अध्यक्ष जी, 3 साल का प्रस्तावित विस्तार संपत्ति मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। दरअसल ये विधेयक केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री हरदीप सिंह जी ने बड़ी मेहनत करके ये विधेयक लाया हुआ है और एक साथ 3 साल का विस्तार देना बड़ी राहत है। उन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दंडात्मक कार्यवाही के विरुद्ध संपत्तियों को सुरक्षित करने में संवेदनशीलता का परिचय दिया है। व्यापारी संगठन लंबे समय से केंद्र सरकार को इसकी मांग कर रहे थे। अध्यक्ष जी, ये विधेयक शहर में किसी भी कार्रवाई से उस समय तक जब तक सरकार दिल्ली मास्टर प्लान लेकर आएगी, जिसमें झुग्गियां, अनधिकृत कॉलोनियां, फार्म हाउस, गांव के आबादी क्षेत्र और अन्य मौजूदा भूमि नीति और विनियम कमजोरियों की व्यवस्था के लिए एक रोड मैप देने की व्यवस्था करेगा। मैं माननीय मंत्री जी से दिल्ली के लिए मास्टर प्लान को प्राथमिकता के आधार पर अंतिम रूप देने का अनुरोध करता हूं, जिसमें झुग्गी झोपड़ियां, क्लस्टर, अनधिकृत कॉलोनियां जैसे अनधिकृत विकास को रोकने के लिए उपाय किए गए वगैरह। मुझे उम्मीद है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में दिल्ली के लिए मास्टर प्लान जल्दी ही तैयार हो जाएगा, जिससे दिल्ली के विकास की रफ्तार तेज होगी और एक दिल्ली के एक विश्व स्तरीय शहर बनेगा। अध्यक्ष जी, विदेश घुसपैठी या झुग्गी झोपड़ी समस्याओं की एक बड़ी समस्या है। इस समस्या का निदान पाने के लिए विदेशी घुसपैठियों की शिनाख्त करना भी बहुत जरूरी है। आज सभी बड़े शहरों में विदेशी घुसपैठियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और झुग्गी झोपड़ियों की गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा बन रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता है। धन्यवाद अध्यक्ष। माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, I would like to start by thanking the honourable members who have spoken, Ramesh Biduri ji, Parvesh Verma ji, Rahul Sewale ji. Whilst lending their support to the bill that is before us, they have also made some suggestions. Many of these suggestions are already under consideration. Given the limitations of time, I will respond to the suggestions I have heard, and I would also, Mr. Chairman, sir, like to share through you with the honourable members my expectation of how the master plan, which as I said is at the stage of finalization, how that will affect not only those who are living in this so-called unauthorized colonies, for which we have already provided Malikana Haq, how we propose to take that forward. Also, Jahan Juggi Wahi Makan scheme, land pooling, which has been referred to by several members, and what has perhaps not been
referred to specifically by members, honorable members, but I think which is at the back of everyone's mind, urban regeneration of old development colonies, because I think this is part of the largest thing. Sir, if today the population, when the census comes, is in the vicinity between 2 and 2.5 crores, my reading, sir, based on my experience of the last 6.5 years that I have been associated with the Ministry of Housing and Urban Affairs and with issues relating to the development of Delhi, a city in which I was born, in which I grew up, a city which is rapidly changing. Sir, out of this population of between 2 and 2.5 crores, I believe, sir, 40 lakh people will benefit from the Malikana Haq, the authorization or dealing with unauthorized colonies. There are still some sections which were not covered in the original list, but which we had promised to sequentially take up after this process is complete. About 40 lakh there, sir. Jahan Jugi, Wahi Makan, another 10 lakh of our citizens, that makes it 50 lakh, sir. And land pooling, sir, when finalized, I think will cover something like 20,000 hectares in 138 sectors. Another 70 lakh people, I think, will benefit from that land pooling, which makes it 50 plus 70, 1 crore 20, and the other colonies which are due for redevelopment. So Delhi is not only a city which is growing in population, it's growing in economic strength, but it is also virtually being rebuilt, sir. Sir, my previous generation came here after 1947. They did the initial building. Today, the new parliament that we have the privilege of being in, the Central Vista, Bharat Mandapam, Yasho Bhumi, and if you see all around, there's redevelopment taking place at a massive scale. Sir, my colleague and friend Ramesh Biduri ji wanted the cut-off date raised from 2014 to 2022, if I heard him correctly. I would just like to tell him that this bill specifically seeks extension for the next 3 years. This extension will give us the cushion, the time cushion, and the flexibility to have wide-ranging consultations on policy matters and guidelines for orderly development of the unauthorized colonies. I think my answer should encompass and is intended to encompass specific suggestions which have been made. Sir, Shri Parvesh Sahib Singh Verma ji mentioned the MPD 41. I have already taken the liberty of, in anticipation of saying something. As I mentioned earlier, sir, he said that GD and land pooling policy, I've already responded to that. The master plan is at a final stage of, I would say, consultation. It's way beyond that. I think it's at a stage of finalization now. And this policy, we have made a lot of progress in formulating this policy, and we will see that substantial benefits, I'm choosing my words carefully, sir, substantial benefits will accrue to the citizens of Delhi, all the stakeholders, those who are there, the Kisan Bhais who own the land, and all the others. We are now getting a more flexible approach to pooling so that little technicalities don't stand in the way, sir. Sir, I would once again thank my 3 colleagues who have spoken and all the others who will give support to this absolutely vital piece of legislation, because it will give us an opportunity to ensure that processes which were started 20, 30 years ago, and in 2006 in particular, we are able now to finalize in an orderly manner what will be required to be done under the master plan, also on all the other areas which flow from it, and also the provision of Malikana Haq to those who are living in those unauthorized colonies, increase the pace of registration, the issuance of conveyance deeds and authorization slips, and that we will be able to demonstrate to everyone. Ramesh ji said कि शायद उनको लगा क्योंकि मोदी जी की गारंटी है इसलिए थोड़ी सुस्ती आ गई,
पर मुझे पूरा विश्वास है कि डेवलपमेंट नॉर्म्स अभी पब्लिश हो गए हम पिछले वर्ष, और उसके साथ हम ये भी डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे कि जो पीपल हु गो इन फॉर फुल ऑथराइजेशन दे कैन रीबिल्ड एंड दे विल ऑल्सो इकोनॉमिकली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी। श्री रमेश बिदुड़ी जी। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है, ये 1739 कॉलोनी जो छोड़ी गई, इसमें कुछ एफुलेंट के नाम से 69+3 कॉलोनी छोड़ी गई थी सर। उनका डेवलपमेंट कुछ अधिकारियों ने जो सर्वे किया होगा सर, उस सर्वे में फैक्चुअल रिपोर्ट नहीं आ पाई है। वो भी सेम स्टेटस की कॉलोनियां हैं, या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो एफुलेंट कॉलोनियों को भी तुरंत उनका डेवलपमेंट चार्ज बढ़ा दें सर आप। वो हैं तो उनको डिमोलिश तो कर नहीं सकते, तो उनके बारे में माननीय मंत्री जी की क्या विचार है सर? मैंने मेरा सभापति महोदय जी, मुझे लगा कि शायद मैंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए वो जरा ज्यादा कंजर्वेटिव वो थे। मैंने ये भी कहा कि जो कॉलोनीज पहली लिस्ट में आ गई थी, हमने ये कभी नहीं कहा कि बाकी कॉलोनीज को हम नहीं टेकअप करेंगे। हमने कहा कि सीक्वेंशियली, क्योंकि इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और हमारे वो बहन भाई रहते हैं जिनको प्रायोरिटी अटेंशन चाहिए, जैसे ये कंप्लीट होगा। मैंने कभी भी नहीं कहा कि जो 69 है शायद हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जहां रहते हैं, हम उनको भी टेकअप करेंगे। ये सरकार की शुरू से यही पोजीशन रही है, और आपके माध्यम से सर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आई एम सेइंग दैट दीज विल आल्सो बी टेकन अप, और आई होप दिस अश्योर्स माय कॉलीग। आई नो ही हैज बीन लुकिंग टू री-हियर दैट आंसर फ्रॉम मी। मैं कई बार उनसे कह चुका हूं, पब्लिक फोरम में भी बोल चुका हूं। आई हैव नो हेजिटेशन इन रिपीटिंग दैट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सर। थैंक यू। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वे हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वाले के पक्ष में हुआ, हाँ वाले के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इस पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इस सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बन गया। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र के विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने। मंत्री जी, अब प्रस्ताव विधेयक को पारित किया जाए। आई सबमिट दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 30 केंद्रीय माल और सेवा कर। माननीय मंत्री जी। Move that the bill further to amend the Central Goods and Services Tax 2017 be taken into consideration. मंत्री जी कुछ कहेंगे? So thank you for giving me this opportunity. I'll just put the context in which this amendment is coming in. So as you know, GST subsumed 17 taxes and 13 cesses, and it sort of bridged all the states and enabled trade. The number of taxpayers registered in the GST has almost doubled to 1.4 crores. I'm quoting June 2023 figures. And when it started in 2017, we had only 67.83 lakh taxpayers under the GST. So GST is actually bringing in a lot of advantage to the economy. The tax incidence under the GST has also been lower to what it was before the GST was introduced. So the current
features, some of the best features which I can highlight, are that the RBI report itself, while talking about the state finances as of January 2023, acknowledges that the northeastern states have been the biggest beneficiaries in the GST regime, and they have recorded a compound annual GST revenue growth rate of 27.5 since the since the implementation of the GST, as against 14.8 for all states. Almost all the GST Council's decisions have been through consensus, so this being the main feature, the need for the current amendment is something which I'd like to highlight. The section which is 109 of the Central Goods and Services Tax Act 2017, that is the CGST Act, provides for constitution of the GST Appellate Tribunal. The qualifications, the appointments and the terms of conditions for service of the President of the Appellate Tribunal and the judicial and technical members are specified in Act 110, which is the Section 110 of the Act. And under the GST law, sir, the adjudicating orders are passed by the GST officers themselves from the centre and from the state, depending on the jurisdictions allocated. Whilst appeals against the orders passed by the adjudicating officers lie with the first appellate authority, who is an officer within the tax administration itself, belonging to the respective central and the state tax officers. The second appeal against the order of the first appellate authority under the centre as well as the state tax administration lies with the GSTAT, meaning GST Appellate Tribunal. This is the first forum, sir. The Appellate Tribunal is the first forum at which GST litigation process itself converges within the state. That is, appellate orders passed by the centre and the state GST officers become a part of the same appellate forum. So earlier in 2019, sir, the GST Appellate Tribunal benches were notified. We went ahead by notifying the benches, but the same was challenged in the High Courts. In its order dated 20th September 2019, in the writ petition of 2018, in the case of Revenue Bar Association versus the Union of India, Honourable High Court of Madras held as follows, and I quote, "The number of expert members, therefore, cannot exceed the number of the judicial members on the bench," unquote. So the High Court, Madras, struck down the Section 109 and 110 of the CGST Act 2017. In August 2021, the tribunals, this is a parallel development which I draw your attention to. In August 2021, the Tribunal Reforms Act 2021 was enacted, by which the qualification and the selection process was standardized for all tribunals. By that time, there was no GST tribunal. But, as I said, it is a parallel development. In August 2021, the Tribunals Reforms Act was enacted, by which the qualification and the selection, the process itself was standardized for various tribunals. Given these developments, in its 47th meeting held on 28 and 29 June 2022 in Chandigarh, the GST Council discussed the changes required in provisions pertaining to the GST Appellate Tribunal in the GST laws, so that it can be brought in conformity with the judgments of the court and in relation to the various aspects concerning all the tribunals. So in that meeting, the Council had decided to constitute a GOM to look into the issues involved, which was constituted on 6th July 2022. The report of the GOM was placed before the GST Council in its 49th meeting dated 18th February 2023, and post-approval of the GST Council, the CGST Act was amended
by the Finance Act of 2023, wherein sections 109 and section 110 of the said Act was amended. As amended by the Finance Act 2023, the GST Appellate Tribunal shall contain one principal bench and various state benches which are to be notified. The principal bench will be or shall be located in New Delhi and shall have one president, a judicial member, a technical member that is belonging to the centre, and a technical member of the state. The state benches shall have two judicial members, a technical member centre and a technical member state. State benches have also been already notified as of 14 September 2023. The qualifications of the President and members are also clearly notified. Thereafter, it was brought to the notice, and this is the important part of why this amendment is coming through. I've just set the background. The reason why this amendment is coming through is because it was brought to the notice of the Ministry by the Honourable Chief Justice of India in his administrative side through the Registrar of the Court that the following aspects of the service terms were not in consonance with the provisions of the Tribunal Reforms Act of 2021. I'll again try to draw the attention of the honourable members that the GST Appellate Tribunal is developing on its own parallelly to the tribunals, all other tribunals amendment acts which have happened, and now by drawing the attention of the honourable of the Ministry, the Honourable Chief Justice of India in his administrative capacity is trying to align the two, and therefore the 2 points on which the Chief Justice of India drew our attention is that the maximum age limit for the post of the President of the Appellate Tribunal and members is 67 and 65 years in the CGST Act, which we had cleared. Under the Tribunal Reforms Act 2021, under the Tribunal Reforms Act 2021, it is 70 and 67. Whereas what we brought in the CGST amendment was 67 and 65. Tribunal Reforms Act had 70 and 67 years respectively. The second point on which amendment became necessary is that the CGST did not have a provision relating to the eligibility of an advocate with a standing of 10 years at the bar for appointment as judicial member, whereas the same is available in the Tribunal Reforms Act, where these two were therefore taken up in the Council and they were approved by the GST Council. Under the Tribunal Reform Act, the advocate with standing of 10 years at the bar is eligible to be appointed in the as a judicial member. So these two particular and specific points which the Honourable Chief Justice of India highlighted, the issue of these two concerns were again placed before the GST Council in its 52nd meeting held on 7th October 2023, and the amendments to the Section 110 of the CGST Act, aligning the provisions with the Tribunal Reforms Act, were approved by the Council. So, accordingly, the CGST Second Amendment Bill, which is what is now before us, has been introduced in the Parliament on 13th December 2023, bringing the provisions of Section 109 and 110 of the CGST Act in line with the provisions of the Tribunal Reforms Act 2021. Sir, once this Honourable House passes this amendment bill, post amendments, the process of selection of the President and the members would be initiated. Honourable Chief Justice of India has already consented to chair the Search cum Selection Committee and has nominated Senior Judge Justice Sanjeev Khanna to chair the Search cum Selection Committee for selection of members, both judicial
and member technical, which is the centre's technical member. So this, therefore, is before us, and I humbly seek the support of all the honourable members to have this passed. Thank you. श्री निशिकांत दुबे जी, आप वरिष्ठ संसद है, आपको भी इस बिल पर बोलने का मौका दिया जाएगा। आप सभापति महोदय, इस बिल पर अगर बोलना चाहते हैं तो मौका दिया जाएगा। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मोदी जी ने इस देश में 2014 के बाद जितने भी परिवर्तन किए हैं, उस परिवर्तन में सबसे बड़ा परिवर्तन आजादी के बाद ये जीएसटी का था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी सभापति महोदय लगातार इसके ऊपर चर्चा रही कि स्टेट कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा, सेंटर कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा। कुछ अधिकार स्टेट को दिए गए, कुछ अधिकार सेंटर को दिए गए, लेकिन ज्यो-ज्यो इकोनॉमी बढ़ती रही, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बढ़ती रही, उसमें लोगों ने यह तय किया कि जो आम आदमी है वो सेंटर और स्टेट के टैक्स से इतना तबाह हो जाता है, टैक्स पर टैक्स इतना हो जाता है कि जब फाइनली वो कंज्यूमर तक कोई प्रोडक्ट जाता है तो उसका दाम इतना बढ़ जाता है जिसमें कि जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, वो उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। 2014 में माननीय मोदी, और जब मैं ये कहता हूं तो कई एक लोगों को लगता है कि 2014 के पहले देश था ही नहीं, 2014 के पहले कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपको बताऊं, इसका इतिहास यह है सभापति महोदय कि 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो एक केलकर कमेटी बनी थी और केलकर कमेटी ने एक वैल्यू एडेड टैक्स जो है, एक प्रोपोजिशन जो है बढ़ाया था कि अब अपने को इकोनॉमी में ग्रूम करने के लिए वैल्यू एडेड टैक्स की आवश्यकता है। वैल्यू एडेड टैक्स लागू हो गया, हमारी सरकार चली गई 2004 में, और 2006-07 के जिस फाइनेंस बिल की बात कर रही थी निर्मला सीतारामन जी, जिनके नेतृत्व में देश की इकोनॉमी इतनी ग्रो हो रही है कि 2027 उन्होंने टारगेट फिक्स कर रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगे। 2006-07 में तत्कालीन यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने कहा कि हम जीएसटी लाएंगे। 2006-07 से लेकर 2014 तक 8 साल तक इनकी सरकार रही और 8 साल में ये केवल एक तकिया कलाम, जैसे गरीबी हटाओ का नारा 1971 से लगता रहा, और जब तक उनकी सरकार रही 2014 तक गरीब खत्म हो गया लेकिन गरीबी नहीं हट पाई। उसी तरह से उन्होंने जीएसटी के लिए कहा कि जीएसटी लाएंगे, जीएसटी लाएंगे, जीएसटी नहीं लाएंगे, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, हैसियत नहीं थी, या उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं था राज्यों का कि वो अपने टैक्स को जो है छोड़ने को तैयार हो, या एक फेडरल स्ट्रक्चर में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में किसी तरह का जो है बातचीत हो। लेकिन जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी बने, अरुण जेटली जी तत्कालीन वित्त मंत्री थे, इन लोगों ने बहुत मेहनत की और मोदी जी का जो नेतृत्व था, इतना मजबूत नेतृत्व था कि राज्यों को उनके ऊपर भरोसा था, क्योंकि गुजरात उस वक्त एक ऐसा राज्य था जो ये कहता था कि जीएसटी का जो ये ऐसा स्ट्रक्चर है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो मुख्यमंत्री के नाते जो उनके अनुभव थे, उस अनुभव के आधार पर 2006-07 में ये एक बड़ा टैक्स जीएसटी लेकर आई। इसमें 37 टैक्स हैं सभापति महोदय, 37 ऐसे टैक्स हैं जो टैक्स जो है वो इसमें मर्ज किए गए। अब 37 प्रकार के टैक्स जो राज्य लगाते थे, कुछ टैक्स जो कुछ सेंटर लगाते थे, अब उस तरह के टैक्स नहीं लगते। इसीलिए कंज्यूमर तक जब ये सामान पहुंचता है तो वो कंज्यूमर तक वो सस्ते में पहुंचता है, और इसी कारण से हमारी जो जीडीपी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। इसमें जो अभी सबसे महत्वपूर्ण दूसरा जो लेजिस्लेशन है जिसके लिए 109 और 110 को अमेंड करने की बात कही है, सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी जो है जीएसटी की बनाई गई है, वो और भी महत्वपूर्ण है सर। इसमें क्या होता था कि जब आप भ्रष्टाचार की सरकार चलाते हैं तो उसमें आप जुडिशियरी को जाने अनजाने प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और सारा अधिकार आप अपने पास रखते हैं,
जिसमें कि कैसे आप एडजस्ट करेंगे? तो ट्रिब्यूनल जो है सभी तरह के, आपको मैं बताऊं कि एक समय ऐसा आता है इस देश में कि कम से कम 100-150 ट्रिब्यूनल हो जाते। हमारी सरकार ने 2016-17 में यह तय किया कि इतने ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता नहीं है और पोस्ट रिटायरमेंट हम बेनिफिट जो जजों को देते हैं वो अच्छा नहीं है। इसके अलावा जब हम अलग अलग ट्रिब्यूनल बनाते हैं तो अलग अलग, जैसे इन्होंने कहा कि किसी ट्रिब्यूनल का है कि 62 साल में ही उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी, किसी का 65 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, किसी का 67 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। तो भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह तय किया कि ट्रिब्यूनल जो है वो सभी का बराबर होगा, सभी ट्रिब्यूनल के अधिकार बराबर होंगे और टोटल मुझे लगता है कि कम से कम 12-14 ऐसे ट्रिब्यूनल हैं जो कि इस सरकार ने एबॉलिश की, जिसकी की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी, जिसको कोई काम नहीं था, केवल गाड़ी देना था, घोड़ा देना था, उसको मकान देना था, उसको जो है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देने थे। इस कारण से ट्रिब्यूनल एक्ट में संशोधन हुआ। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली भारत सरकार की कई एक बातों को माना। तो इसमें जो दूसरा संशोधन है, जिसके लिए कि अभी बिल आने वाला है माननीय गृह मंत्री जी का, कि किस तरह से सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में चेंज होगा, जिसमें कि लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन जीएसटी चूंकि टैक्स का मामला है और टैक्स का लिटिगेशन इतना बड़ा होता है कि उस टैक्स के लिटिगेशन को लोगों को समझना, उसके पैसे को करना, क्योंकि यदि पैसा भारत सरकार की किटी में भी हो तो उसको टैक्स देना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इस कारण से जब एपेलेट अथॉरिटी के बाद, एपेलेट ट्रिब्यूनल के बाद ये केस हाईकोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो अनावश्यक जो है देरी हो जाती है और इस देरी के वजह से बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। तो भारत सरकार ने एक बढ़िया काम किया इसके माध्यम से कि एक तो ट्रिब्यूनल को, जो ट्रिब्यूनल एक्ट था उस ट्रिब्यूनल एक्ट में ले आए कि जो सारे ट्रिब्यूनल हैं भारत सरकार के, वो सभी ट्रिब्यूनल में 70 साल और 67 साल का जो एक कैप है वो रहेगा। दूसरा जो सबसे बढ़िया काम किया, जो मैंने आपको कहा कि भारत सरकार ने अपने हाथ में, जो माननीय मंत्री महोदया ने अपने तकरीर में कहा कि हमने जस्टिस संजीव खन्ना जो सीटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो नंबर 2 जज हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी बनेगी और वो कमेटी तय करेगी कि इसका प्रेसिडेंट कौन होगा, इसका मेंबर कौन होगा। और इवन स्कोप ज्यादा वाइडर करने के लिए, जज से भी ज्यादा स्कोप वाइडर करने के लिए, जो लड़के बहुत ही तेज तर्रार हैं, पढ़ने में तेज हैं, जिनको टैक्स के बारे में अथॉरिटी है, उनका यदि 10 साल का अनुभव है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो एक बड़ा जो है पुल इन्होंने तैयार किया। तो इसमें एक तो ये होगा कि जजमेंट बहुत आसानी से होगा, दूसरा हाईकोर्ट में जो लिटिगेशन फंसता है वो हाईकोर्ट का लिटिगेशन कम होगा, और तीसरा जो आम कंज्यूमर, अब उदासी जी बता रहे हैं कि 14,000 से ऊपर जो है केसेस हैं, तो ये सारे केसेस को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा फार रीचिंग लेजिस्लेशन लाया है। देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन इसका जो असर होगा बहुत बड़ा होगा। और जिस तरह से जीएसटी काम कर रही है, 2 चीजों पर, जीएसटी काउंसिल जिसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और टेक्नोलॉजी जो जीएसटी एंड टेक्नोलॉजी है, और उसके आधार पर जो माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि आज हम जीएसटी लाने के बाद राज्यों को भी कंपनसेट कर रहे हैं, टैक्स भी ज्यादा ला रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी से एक पुल भी ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, और इस कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत सरकार बड़ा काम कर रही है। जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, भारत बढ़ रहा है, और मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो भारत का नारा है वो कारगर हो रहा है। हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी। Thank you for giving me the opportunity to speak on the important bill, that is the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023. On behalf of Biju Janata Dal, I rise to support the bill. In the last 6 years, the GST ensured compliance simplification with uniform processes across the country. But more needs to be done. I will take this opportunity to highlight some of the concerns. Odisha government, led by visionary leadership of Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji, has already taken simplification measures pertaining to state government. The state cabinet has approved Odisha Goods and Services Tax Amendment Bill 2023 that simplifies the provisions and provide certain facilities to taxpayers and tax authorities in the state. Provision has also been made for GST appellate tribunal
for hearing appeals against the orders passed by the appellate authority. Subsequently, Odisha has registered a phenomenal growth rate of 100.77% in the state GST collection in November this year from November last year. Sir, coming back to the issues that I want to raise, full compensation to the state for loss of revenue on account of GST implementation is getting delayed unduly. State revenues have taken drastic fall due to pandemic. I urge upon the government to release the pending GST compensation to the states on time. The center's November 2021 notification to increase the goods and service tax GST on several textiles and apparel from 5% to 12% for items with a value slab of above rupees 1,000 is a big blow to the handloom sector. The handloom and craft sector is under severe distress, as the average handloom's household income is only rupees 3,042 per month. I would request through you, sir, for a consideration to the proposal of flat 5% GST on all textile and apparel products. The GST Council has imposed 28% GST tax on full face value of bets placed on online gaming as opposed to gross gaming revenue. The decision was implemented from 1st October 2023 with a review after 6 months. A consequence of GST Council's decision is need to decide whether the amendment is clarificatory and therefore has a retrospective application, or whether it should be made effective only after 1st October 2023. This is important for estimating past period liabilities. Hence, a clarification is needed. Sir, India needs to simplify its tax system to ease the compliance burden on small and medium businesses. Simplifying tax rates would add to the MSMEs, make imports competitive and improve exports prospects. GST on kendu leaves has been increased from 5% to 18%. Central tax on kendu leaf was earlier 0. Central government should place this matter in the GST Council and revise the rate to 5%. Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Naveen Patnaik, on Wednesday announced a special package for the welfare of 8 lakh kendu leaf pluckers and other persons engaged in the trade. Sir, through you, I request the central government to reduce GST on kendu leaves from 18% to 5%. Our Public Account Committee in one of their reports have asked the centre to provide GST exemption for imported pharmaceutical products used by the hospitals and research organizations. The committee observed that the issue of frequent notifications and then repeated clarification is indicative of lack of clarity and coordination. The committee has recommended that tax research units may ensure that notifications includes examples for clarity and court cases. I request that recommendation of committee may be implemented. Sir, in conclusion, it is vital to prioritize areas where immediate reforms are needed. With these words, I conclude. Thank you, sir. श्री धैर्यशील माने जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 इस पर आपने मुझे बात करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने जी द्वारा पेश किए गए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 का मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से समर्थन करता हूं। वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक वस्तु और सेवा कर के अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्माण को सक्षम करने के लिए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करता है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन से पहले अपीलनीय प्राधिकरण तंत्र अलग अलग केंद्रीय और राज्य मूल्य वर्धित कर वैट अधिनियमों के तहत मौजूद था। हालांकि जीएसटी की शुरुआत के साथ जीएसटी शासन के तहत आने वाली अपीलों से निपटने के लिए एक समर्पित अपीलनीय प्राधिकरण की आवश्यकता स्पष्ट हो गई थी। अध्यक्ष जी, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 शुरुआत में जीएसटी के गठन के लिए प्रदान किया गया था। हालांकि विभिन्न प्रक्रियात्मक और कानूनी बाधाओं के कारण इसके संचालन में देरी हुई
नतीजन अपीलनीय प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ राहत चाहने वाले करदाताओं के पास सीधे उच्च न्यायालय के संपर्क में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अध्यक्ष जी, जैसे कि विदित है, यह विधेयक मुख्य रूप से केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 109 और 110 में संशोधन करने पर केंद्रित है, ताकि उनमें ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के साथ संरेखित किया जा सके। अध्यक्ष जी, यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के साथ संरेखित करने के लिए विभिन्न तकनीकी और परिणामी परिवर्तन भी करता है। अध्यक्ष जी, प्रस्तावित संशोधन से जीएसटीएटी के कामकाज और समग्र जीएसटी विवाद समाधान तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। जीएसटीटी के संचालन के साथ करदाताओं को समर्पित अपीलनीय प्राधिकरण तक पहुंचने के लिए एक संधि प्राप्त होगी, जिससे संभावित रूप से विवादों का तेजी से समाधान हो सकेगा। इससे बदले में कारोबारी माहौल और सुधार होगी और जीएसटी नियमों के अनुपालन में को भी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटीटी उच्च न्यायालयों पर बोझा कम करने के लिए मदद करेगा, जिससे उन्हें होने वाली जटिल कानूनी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में अनुमति मिलेगी। जीएसटीटी में अप्रत्यक्ष विशेष ज्ञान वाले कानूनी पेशेवरों को शामिल करने से निर्णयों की गुणवत्ता में वृद्धि होने और जीएसटी कानूनों के लगातार कार्यान्वयन में सुनिश्चित करने में उम्मीद है। अध्यक्ष जी, जीएसटीटी की सफलता इसके कुशल प्रशासन और मामलों के समय पर निपटान पर निर्भर करेगी। इससे सुचारू संचालन के लिए सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधन और बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण रहेगा। अध्यक्ष जी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 लंबे समय से प्रतीक्षित जीएसटीएटी को कार्यान्वित करने के लिए दिशा के एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इस कदम से जीएसटी विवाद समाधान तंत्र में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, जिससे करदाताओं और सरकार दोनों को ही लाभ होगा। हालांकि जीएसटी की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए कुशल कार्यान्वयन और पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। मैं आदरणीय मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो अभी नया ढांचा बन रहा है, कानून बन रहा है, उसके माध्यम से करदाताओं को बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन अभी जो प्रलंबित केसेस चल रहे हैं, जो उच्च न्यायालय में अभी पेंडिंग है, उसके लिए सरकार क्या करने वाली है, उसका प्रावधान इसमें कुछ नहीं दिख रहा। निश्चित रूप से उनको भी रिलीफ इसके माध्यम से मिलने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की तरफ है, क्योंकि वो आज भी लंबित बहुत समय से बहुत सारे करदाता उच्च न्यायालय में अपना केस लड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, जीएसटीटी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली पे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देशों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। कुल मिलाकर केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक 2023 जीएसटी शासन के विकास में सकारात्मक विकास का प्रतीक है। हालांकि चिंताओं को दूर करना और नई अपीलनीय प्रणाली में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। केवल प्रभावी कार्यवाहन ही के माध्यम से ही जीएसटीएटी प्रस्ताव वास्तव में अपनी इच्छित उद्देश्यों को पूरा कर सकता है और अधिक कुशल संज्ञागत जीएसटी प्रशासन में योगदान दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शंकर लालवानी जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने व्यापारियों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आज पेश किया है। वैसे 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वन नेशन वन टैक्स का बहुत बड़ा सपना साकार हुआ था। और उस समय 2017 में अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देखें तो सिर्फ 64 लाख था, जो कि आज बढ़कर 1,39 करोड़ रजिस्ट्रेशन जीएसटी में हो गए हैं।
इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ, रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्यों के प्रतिनिधियों की जीएसटी काउंसिल है, समय समय पर वो संशोधन भी करती है, विचार भी करती है। कभी कभी व्यापारियों के बीच में और जीएसटी के बीच में जो विवाद की स्थिति रहती है तो न्यायालय में जाना पड़ता है, और जब न्यायालय में जाना पड़ता है तो उसमें समय भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, और न्यायालय में पहले ही बहुत सारे प्रकरण लंबित हैं। लगभग 14,000 प्रकरण हाईकोर्ट में इसके लंबित हैं, और उसी को लेकर अपील के लिए ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है, और इस ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष सदस्य की पात्रता, आयु आदि के लिए ये बिल लाया गया है। इससे व्यापारियों को तो लाभ मिलेगा ही सही, और मोदी सरकार हमेशा व्यापारियों के हित में काम करती है, ये बिल उसके लिए लाया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अनेकों राज्यों में 2-2 ट्रिब्यूनल बनाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में एक ट्रिब्यूनल बनाई गई है, लेकिन वो भोपाल में है। मेरा मानना है कि इंदौर मध्य प्रदेश की कमर्शियल सिटी और सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन जीएसटी के इंदौर में है, तो एक ट्रिब्यूनल बेंच इंदौर में भी बनाई जाए, ये मैं मांग करता हूं, और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। श्री लव कृष्णा जी। Thank you for allowing me to speak on this, sir. I appreciate the ministry to setting up the appellate tribunal. It's a move in the positive direction, sir. It is very much required when we need justice. We need to have another set of bench where we can actually go and represent our case. So I appreciate it. Really appreciate the ministry for coming up with this. But there is one issue with this, sir, which is with regards to the age limit that has been prescribed for both the president and the members, and there is a provision in that bill wherein retired judges can actually be inducted. So my request from my party side is this should not be a place where again the retired judges will actually come and settle in this, sir. So it should not be a retirement home for them. So I hope ministry and the government will take care of this, sir. So coming to the GST, when I'm asked to speak on this, when I inquired with a lot of MSMEs, what is the issues that they're facing with the GST regime? We have done amazingly well. The GST, whatever we're getting from various states have grown exponentially, and it has been dispersed to the state governments also very well. And it has helped a lot of MSMEs, mostly in the whichever are being moved from offline to online. They've done exceedingly well in the last 6 to 7 years, sir. But there are few issues that needs to be addressed, mainly with respect to the MSMEs that are actually working with the government, sir. Wherein most of the times when I inquired these MSMEs, how are you doing it? They're saying, yes, with the private players, when we are doing transactions with the B2B with the private players, yes, we are fine. Wherein one or two issues are there. But when we are doing the business to business with the governments or PSUs, central government, state governments, that's where the major problem that most of them are facing, sir. With regards to the first problem they expressed was that they're not able to file the returns. When I inquired why you're not able to file the returns, the bill amount and the GST amount, in most of the cases, the PSUs or central government or state governments, even after they execute the contract, even after they do the work also, still they're not able to get these bill amounts and GST amounts. Because of this, they're not able to file the returns, sir. And because they are not able to file these returns, they're not able to pay the GST on time. So what is happening? The government is getting the work done, either central government, state government, PSUs, everyone, they're getting the work done, but instead of paying the vendor, whoever has done the work, they're delaying it. Because the bills are being delayed, he is not able to file the returns. Once he doesn't file the return, there is another provision in this wherein huge, when we delay filing the returns, there's a huge interest of almost 18% that is being laid on these MSMEs, sir. This is the issue that MSMEs has raised with me. This 18% itself, first thing is non-payment by the PSUs. Second is 18% interest that is being asked by the GST laid as a penalty on this, which is itself is very high because this has been there when the service sector regime was there. This 18% was there during the service sector was there. At that time, the PLR, where from the banks, what we are getting, what the MSMEs were getting at that time was around
15%, 12% plus 3%, that's around 15%. At that time, you put it around 18%. But now, when you look at the PLR, which the MSMEs are getting from the banks, it's hovering around 10%, which government has done exceedingly well to bring it down. So it's making the MSMEs more competitive across the world. But still the penalty is at 18%. So I request the ministry, if the penalty can be reduced, because it is not the doing of these MSMEs, it's the doing of the governments which are not paying them. Because of that, delays happening. Because of that, huge fines are being levied upon them. So if the ministry can look into it, and if there is a provision of decreasing it, sir, last 1 minute, sir. And also, with regards to when you're doing the business-to-business transactions, the main ask from the MSMEs is that we have issues with the cash flows. Why they have issues with the cash flows is they have to pay 18% of GST plus 10% TDS, and you return the 10% TDS after 1 year. So on the day he starts business, 20% or 28% is being paid to the government. So he has to wait for 1 year for this to be realized. So if this can be looked into, if the ministry can look into it and can come up with a solution, sir. And also, last 2 points, sir. There is we are talking about ease of doing business. Prime Minister is very gung-ho about it, sir. But there is a number of slabs that are there, GST slabs that are there, almost to the number of 8 slabs that are there. When you look at countries like Singapore and Singapore and other countries which are more progressive, there are only 2 slabs. So if ministry can look into it and bring it down. And also the maximum slab amount that is being levied upon is almost to the tune of 18 to 18%. So if that max slab amount can be reduced to 12% or 10%, which most of these progressive countries are doing, that would be great, sir. So if these can be, ministry can be looked into it, sir. And if this can be looked at in a positive way, MSMEs which are employing lakhs and lakhs of people in this country, which we want them to be very competitive across the world, which we want them to export, and which for whom we have come up with PLI schemes and all those things. If everything has to work and MSMEs has to compete across the world, I think these issues need to be sorted out, sir. I hope a positive reply from the ministry, sir. Thank you very much. माननीय मंत्री जी. Let me thank all the honourable members who participated in the discussion. I appreciate that there are overall understanding of what the GST is trying to achieve, and it is the glitches or it is the difficulties which are being faced by many of those who are users of the GSTN portal which is being raised, and also the issue of the tax rates. I'll try to address each of the concerns voiced by the members, the primary ones, that is. I thank Member Nishikant Dubey for having given a comprehensive picture of where the GST is today and from where it has reached here. Member from Indore, Sri Lalwani ji, of course, expressed his concern that there is one tribunal which is being announced from Bhopal for Madhya Pradesh. Every state is going to get 1+1, and the second one can or maybe will be located in Indore, which is the commercial center, which is of course a decision which is based on the inputs which are given in the GST Council by the state officials as well. I understand his concern on that. There was this point mentioned by Member Sharmishta Sethi, I'm not sure if she's here now, asking for a reduction in the GST rate for Tendu leaves. This topic on the GST rates for Tendu leaves have been discussed, if I remember correct, more than once in the GST Council. And I think since 2017 itself, this has been subject of discussion. In my tenure, twice this has been discussed. And there is no unanimity of view, and therefore we are not able to arrive at a decision which Orissa might like. So the matter on the Kendu leaves lies there. But it is not because the GST Council did not take it up for discussion. It was taken up, but no unanimity has been arrived. Also,
Member Sethi also raised this issue of taxation on online gaming with prospective effect, or if there is a need for a clarificatory exercise. The clarification on that levy was issued, sir. 28% is the tax, and as to who it will apply to, on who will the incidents fall, has been clearly explained. But this particular point that the valuation rules, I like to put it on record again, that the valuation rules to exclude winnings is prospective. So I hope there's no confusion on that. The member from Shiv Sena, Dhairishil Maneji, spoke about the cases which are pending in High Courts and Supreme Court. And now that we are bringing in a legislation with amendments for setting up of the tribunal for appellate tribunal, GST's appellate tribunal. And this particular amendment, of course, is looking at the age limits so that it will be in alignment with the rest of the tribunals. I'd like to inform the honourable member that the taxpayer is at his will, liberty, to withdraw from the High Court, from the Supreme Court, and go to the tribunal which is getting set up, so that his case can be speeded up now that there's a new bench which is established at the states and the appellate which is in Delhi. So it is well within the right of the taxpayer who can take it up further, or withdraw from there and come over to the... Sir, honourable member from Andhra Pradesh has raised quite a few issues on the GST and the fact that there are eight slabs, and that the penalty levied on MSMEs and so on. First of all, sir, on rate rationalization, there is a group of ministers which is formed within the GST. It has had a few sittings, but because the chairman of the committee was the chief minister, the former chief minister of Karnataka, and now that there is a change of government in Karnataka, the committee's chairman's name will also have to be re-looked at. The committee is reconstituted and so on. So that work of rate rationalization is a larger exercise which has been undertaken by the GOM. On the issues being faced by MSMEs, the GST Council at the state level and the GST per se at the central level also interacts with various MSME groups. They have had quite a few issues with which the council's teams have sat through and also addressed their issues. So this issue of PSUs not paying the MSMEs, and as a result they themselves will have to pay the tax on an amount which is not received, has been, I think, to a large extent about the central PSUs have been addressed. I personally involved myself in saying the PSUs cannot delay payment beyond 45 days. It was mentioned during one of my budget speech, after which we followed it up with the PSUs. And once when there was a fairly unbelievable number floating around in the public domain about the total amount which is pending from PSUs for MSMEs, I was perturbed. I went back to check it up. This understanding that PSU means central may not always be correct, sir. Yes, there are PSUs, central PSUs, which owe money to the MSME, and all of us ministers have been very keenly observing them that the delay should not be beyond 45 days, and the central PSUs largely now go by that understanding. But however, I don't have an authority to speak about state PSUs, and it is not a secret that state PSUs who owe a large amount to the MSMEs, and the problem therefore remains for the MSMEs, but it is outside of my realm.
It is very much the realm of the states, where the same concern for MSME should be understood by the state governments, and they should quickly clear the bills. I would like to inform the member that this budget, which was read out on the 1st February 2023, we made it a point to say that large companies cannot benefit from claiming those fiscal incentives and other incentives which are given to them without paying the dues to the MSMEs, as they would normally show it as an expenditure, that expenditure which is going as payments to the MSME, and as a result, that expenditure should not be taxed, is the common sense understanding. But you have not paid them. And without paying them, if any company shows it as an expenditure, they cannot draw the claims for having spent that money when actually you have not spent it. You have not paid the MSMEs. So we brought that change in this particular budget so that these advantages which accrue to the larger companies without actually paying the smaller companies should not accrue till actually they make the payment, whichever fiscal year it may be. So we have been fairly sensitive to the needs of the MSMEs. I am quite happy to hear more about it, and when I was recently in Vijayawada, Honourable Member met me with a delegation and gave me also a lot of representations. We'll take that on board. So that being my reply to all those Honourable Members who spoke about it, I'm very grateful, sir, and I seek the House and its cooperation to pass this amendment. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इस पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इस विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए। That the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। आइटम नंबर 31 अनिंतर कर संग्रह विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the bill to provide for the immediate effect of for a limited period of provisions in bills relating to the imposition or increase of duties of customs or excise be taken into consideration. So thank you, sir. I'll briefly highlight the need for a bill of this nature. So Article 265 of the Constitution provides that no tax shall be levied or collected except by the authority of law. What this bill seeks to obtain is this authority from the Parliament to provisionally levy and collect the newly imposed or increased duty of the customs and excise for 75 days. I'll briefly give you the background, sir. The Provisional Collection of Taxes Bill 2023, that which is before us, proposes to replace the erstwhile Provisional Collection of Taxes Act 1931 with just minor changes, which is technical in nature. So this law is in existence from 1931. We have just made minor changes, and we are here, therefore, not with a new law, but with a mildly amended existing law. The provisions of the bill empowers collection
provisionally, I underline the word provisionally, during the period between the introduction and the enactment of the bill, the increased customs or central excise duty, where such duty rate is increased beyond the statutory rate approved by the Parliament, or where such duty is newly imposed. So if we are bringing in something and that which has to be implemented from a particular date, this provisional collection of taxes bill, which exists from 1931, is the one which gets invoked. This bill confines this interim period to 75 days, and where the bill is not enacted within 75 days or is enacted with amendments, the provisionally collected taxes are to be refunded. So I would like to make it very clear, sir, that the amendments to this or rates increased by the invocation of this particular provisional collection of taxes bill 1931 is valid only up to 75 days, within which I need to make it sure that it gets approval of the Parliament. If it doesn't get the approval of the Parliament, then the amount collected will have to be refunded. I already said that Article 265 gives us the Constitution of the Constitution, provides that no tax can be levied or collected except by authority of law. So if I don't have a law within 75 days, the amount collected becomes not valid and therefore it has to be repaid. So the provision is required for reasons. Why do we at all then need to collect it temporarily? Why do you want to provisionally collect it and run the risk that if you don't pass the bill, you will have to pay the refund back? Why do we want to do it? This provision is required, sir, for reasons such as to provide tariff protection to domestic industry on immediate basis. So sometimes you will have to bring it immediately and not wait for the 75 days or not wait for the session to conclude, pass the bill and so on. So you want immediate relief to be given, moderate domestic prices. When the prices are going up, you need to moderate it, avoid speculation in the market, and also for revenue considerations. So in the case of income tax, this is not required, sir. It is only required for this indirect taxes. In the case of income tax, changes are made in the finance bill for the next financial year. So 1st February, I might bring in the budget, I announce it, but it gets effective only from 1st April. So for the next financial year is when changes are made. And therefore, the power to collect tax provisionally is not required for income tax. In the case of GST, all the rate changes are first of all carried out only based on recommendations of the GST Council. So it gets decided in the Council and then it comes here for the central government to pass it as a part of either finance bill or otherwise. So the recommendations of the GST Council and the effective rate of change is also decided by the Council, and then it is synchronized between the centre and the states. So that's the case for the GST. Hence, the power to collect tax provisionally is not required for the GST. It is only, therefore, for these customs and excise duties that we need it. So I appeal to the House that this temporary provision, which gives me the provisional power to collect taxes, and then subject to the House passing the bill, continue with it. Or if it doesn't within the 75 days, I can pay back, helps me to stabilize the prices in the market, helps me to make sure there are no speculation in the market, and above all, when I want to have immediate impact to protect the domestic industry. Thank you, sir. श्री जयंत सिन्हा जी। बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपको और मेरे पार्टी को आभार कि आप लोगों ने इस जनरल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल के बोलने के लिए आपने एक अवसर दिया है। और मैं इस बिल के द्वारा 2-3 मुख्य बातें हैं जो है मैं आपके ध्यान में आपका आकर्षित कराना चाहूंगा। और वो पहली बात तो ये है कि हम लोगों की आज जो अर्थव्यवस्था है, वो जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो मेजर इकोनॉमीज हैं,
उन सब में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज 7% से ज्यादा तेजी से हम लोगों की अर्थव्यवस्था रफ्तार से बढ़ रही है और प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आश्वासन दिया है कि अगर विश्व में हम लोग 5वें स्तर पे हैं तो अगले कार्यकाल में, माननीय प्रधानमंत्री जी के अगले कार्यकाल में 5वें स्तर से हम लोग 3री स्तर पे हम लोग आ जाएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी की ये गारंटी है और वो गारंटी हम लोग इस विश्वास के साथ क्यों दे सकते हैं? इसलिए दे सकते हैं क्योंकि जो अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर सुधार के ठोस कदम हम लोगों को लेने हैं, ये ठोस कदम हम लोग निरंतर लेते चले जा रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हो, आयुष्मान भारत हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो, इन सब में हम लोगों ने बड़े बड़े ठोस कदम लिए हैं, प्रभावशाली कदम लिए। और आज जो हम लोग सदन में चर्चाएं कर रहे हैं, पहले जीएसटी बिल पे और अब प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के बिल पे, माननीय सभापति महोदय, इनके द्वारा जो हम लोगों को स्ट्रीमलाइनिंग करनी है, जो हम लोगों को रैशनलाइजेशन करना है, जो हम लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, वो हम लोग दर्शा रहे हैं कि इसको किस तरीके से किया जाता है। और जब हम लोग इस तरीके से निरंतर करते रहेंगे, सुधार लाते रहेंगे, तो अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ेगी और हम लोगों की अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पे चली जाएगी। तो ये आप इन दोनों बिल के द्वारा, ये आपको समझना जरूरी है, सब माननीय सांसदों को समझना जरूरी है कि ये काम जो है ये डायनामिकली चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। और इसका प्रभाव देखिए, हम लोगों ने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में, अभी तो जीएसटी की बात हुई, अब हम लोग कस्टम्स और एक्साइज की बात कर रहे हैं, जो हम लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस में सुधार हम लोग लाए हैं, जिसके द्वारा इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हुआ है, उसका इतना बड़ा प्रभाव हमारी इकोनॉमी में हुआ है। मैं कुछ आंकड़ों के द्वारा, ये दूसरी मुख्य बात है, जो कुछ आंकड़ों के द्वारा फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अभी बात हुई कि जहां 44 करोड़, करीब 44 लाख करीब लोग जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस भर रहे थे, अब वो संख्या 1,40 करोड़ लोगों की हो गई, 1.4 करोड़ लोगों की हो गई है। कलेक्शंस का इंक्रीज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 1,86,000 लोगों का कलेक्शन होने लग गया है जीएसटी के द्वारा। आप देखें कि टैक्स पेयर्स कितने हो गए हैं, वो भी उसमें दोगुना हो गया। जहां 3.79 करोड़ टैक्स पेयर थे, अब 7.78 करोड़ टैक्स पेयर्स हो गए। फास्ट टैग के द्वारा जहां एक ट्रक 300 किलोमीटर चलती थी, अब वो 600 किलोमीटर चल रही है। ईपीएफओ में जहां 11.8 करोड़ लोग थे, आज के समय करीब 28 करोड़ लोग हो गए हैं। तो इस प्रकार से फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी जो चल रही है, उससे बहुत सुधार इकोनॉमी में आ रही है। हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख है कि अभी भी इकोनॉमी में कुछ ऐसे सेक्टर हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉर्मलाइजेशन में विश्वास नहीं करते हैं। और मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे झारखंड में ही बड़ी दुखद एक अभी छापा के बाद एक घटना निकल के आई है, जहां शराब व्यापार में लिप्त एक राज्यसभा के सांसद के घर में 350 करोड़ से ज्यादा कैश वहां मिले हैं। जहां हम लोग, एक और भारतीय जनता पार्टी के हर कोई सदस्य की ये प्रयास इनका हम लोगों का रहा है कि इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हो, इकोनॉमी में टैक्स कलेक्शन बढ़े, देश में सुधार आए। वैसे ही हमारे विपक्ष की ओर अगर आप देखें तो वो कैश का इनका व्यापार चलता चला जा रहा है और बहुत ही बड़े पैमाने पे चल रहा है। और अभी भी ये लोग टैक्स के दायरे में आने को तैयार नहीं है। और इनका जो लूट है, खासकर झारखंड में इनका जो लूट है, वो निरंतर चलते चले जा रहा है। और जहां ईडी, सीबीआई, आईटी की छापा हमारी चलती चली जा रही है, और वहां एक नहीं अनेकों ऐसे लोग निकल के आ रहे हैं, जिनमें से अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं। और एक बहुत बड़े नेता हैं जिनको बुलाया गया है 6 बार, ईडी ने उनको 6 बार बुलाया है। लेकिन दुखद बात है कि इन लोगों का लूट जो है, इनका इनफॉर्मल इकोनॉमी में कैश में जो इन लोगों का कारोबार चल रहा है, उससे बचने के लिए ईडी ने उनको बुलाया भी है, लेकिन वो अभी भी वहां आए नहीं है। ही हैज नॉट प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द ईडी। तो सभापति महोदय, इसी तरीके से हम लोगों का प्रयास है कि कस्टम्स और एक्साइज में भी, जैसे अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया है कि अगर हम लोगों को डायनामिकली एडजस्टमेंट्स करने पड़े, अगर हम लोगों को प्रोविजनल टैक्स कलेक्शन करना पड़े, तो सरकार के पास वो अधिकार होना चाहिए ऑन अ प्रोविजनल बेसिस फॉर अप टू 75 डेज टू एडजस्ट टू डायनामिक कंडीशंस। चाहे डंपिंग हो जाए कहीं, या कहीं बहुत तेजी से
भाव हैं वो बढ़ रहे हों तो उसके लिए राहत हम दे सकें। तो ये जो है ये पावर्स हम लोगों को सरकार को देने चाहिए और इस प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के द्वारा ये हम लोग पावर्स जो है सरकार को दे रहे हैं। और इस तरीके से जो लोग कैश का कारोबार कर रहे हैं, जो अभी भी अवैध अपना कारोबार कर रहे हैं, उन पे हम लोगों को रोक लगाना चाहिए, उन लोगों को हम लोगों को छापा मार के रोकना चाहिए। आप करेंगे तो झारखंड में बहुत सारे और लोग निकल के आएंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यही गुजारिश करूंगा कि ईडी के द्वारा, आईटी के द्वारा और भी छापामारी हो कि जहां कोयले का, भू माफिया का, शराब का, बालू का, इस प्रकार का अवैध कारोबार चल रहा है, काले करतूत चल रहे हैं, इन पे आप छापामारी करिए। जो अभी कैश में बिजनेस चल रहा है उसको आप टैक्स के दायरे में लाइए, हम सबको राहत दिलवाइए, जिसमें कि हम लोग एक विकसित भारत बना सकें। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जल्द से जल्द सबको हर सुविधा मिले, एक विकसित भारत का निर्माण हो, इस प्रकार से जैसे अभी जीएसटी के बिल में हम लोग अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटी में हम लोग अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, हम लोगों के प्रयास से तो ये होता ही रहेगा। मैं विपक्ष के साथियों को भी यही विनती करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि सब अवैध कारोबार आप छोड़िए, टैक्स के दायरे में आइए, चलिए मिलजुल कर हम लोग एक विकसित भारत बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती बीबी सत्यवती जी। I stand here to support the bill from YSR Congress Party on Provisional Collection of Taxes Bill 2023. So, before I support, I would like to take this opportunity to talk about some of the ongoing issues faced regarding taxation and the collection of taxes and provide some suggestions regarding the same. Honorable Chairperson, Madam, the first point is remarkable surge in centers' tax revenue collection and the need for its strategic allocation. So I would like to highlight that in 2022, the central government has observed an extraordinary 303% surge in tax revenue over the past 12 years, escalating from rupees 6.2 lakh crores in financial year 2010 to rupees 25.2 crores in the financial year 2022. And the second point is high tax burden on middle class. So in the current context, the middle class population in our country would welcome a reduction in the taxation burden. So presently the rich constitute a small proportion and the majority of India's population remains tax exempt, leaving the middle income group with a substantial tax burden and limited returns. Chairperson, Madam, and the third one from our YSR Congress Party, enhancing the Public Provident Fund. So the unchanging interest rate of the Public Provident Fund, PPF, demands immediate attention, having remained at 7.1% since April 2020, falling short of the 7.9% recommended by the Reserve Bank of India, RBI. Madam, another point, expanding the tax base for inclusive growth. So the increase in population has led to a growth in the workforce. However, the income tax base has not seen a corresponding expansion, necessitating attention. While the absolute number of income tax return filers in India has risen, closer examination of the data from the Ministry of Finance in Lok Sabha for financial year 2023 reveals a comparatively low number of individuals who have actually paid income tax, especially when compared to the figures from financial year 2020. And to achieve this inclusive growth, the government should consider reducing tax rates by broadening the tax net. A scenario where a large population files income tax returns and contributes to income tax payments could lead to a more prosperous country and a more even distribution of tax burden among assessees. So this in turn could result in substantial reductions in tax rates, providing individuals with more disposable income for spending and contributing to the accelerated growth of economy. So taking steps to effectively harness this workforce can contribute significantly to the DGP. So in conclusion, from YSR Congress Party, under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y. Jagannath Reddy Garu, as the Honorable Finance Minister expressed her commitment to addressing the challenges faced by the middle class while presenting in the budget 2023-24,
significant tax burdens persist among the population. Therefore, I appeal to the ministry to consider implementing the suggestions from our party as I presented today, as these reforms will undoubtedly contribute to the further growth of our economy. Thank you very much, Madam. माननीय मंत्री जी धन्यवाद मैम. I like to thank both the members who've spoken on the topic. I appreciate Honorable Member Jayant Sinha for having given a complete picture of what we are doing through this provisional collection of taxes bill. And I also appreciate Dr. Satyavati for having given a picture of how we can take this forward. And the suggestions that she has put forward on behalf of her party is certainly something which I'll have the ministry go through. I hope this is not taken as an assurance, but it's certainly something which I'll value her inputs and take it forward. So with these words as reply to the two honourable members who spoke, I request that the House pass the bill. विधेयक पर विचार किए जाने हेतु प्रस्ताव. माननीय मंत्री जी का प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में हैं वे ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है. विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृति किया गया. अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी. प्रश्न यह है कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में हैं ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने. अब बढ़ जाइए बाबा, बढ़ जाइए. अब गिर जाइएगा, अब गिर जाइएगा बाबा, बढ़ जाइए. खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम. प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने. जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें, जो सदस्य इसके पक्ष में ना है ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है. खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने. मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए. मैडम, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ. प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ. आइटम नंबर 32 नित्यानंद राय. आइटम नंबर 32 श्री नित्यानंद राय जी. सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 66 के प्रंतु को भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 पर विचार और पारित किए जाने के प्रस्तावों जहां तक ये एक दूसरे पर निर्भर है के संबंध में लागू किए जाने को निलंबित करती है. प्रश्न ये कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. अभी बोलने का मौका देंगे आपको, बैठ जाइए. हाँ,
आइटम नंबर 33, 34 और 35 को चर्चा में एक साथ लिए जा रहे हैं। आपका भी ये प्रस्ताव है? एक साथ ले लेंगे कुछ चर्चा में? माननीय मंत्री जी। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों के संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंध या उससे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए और दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। श्री टी रंगैया। Thank you, Speaker Sir, for allowing me to share few thoughts on the proposed Bharatiya Nyaya Samhita Bill 2003, Nagarika Suraksha Bill, Bharatiya Saksha Bill. Sir, given that existing criminal laws were historically used to enable India's colonization, there are primary steps in revitalizing and modernizing our criminal justice system is critical. At the time, these laws were used to terrorize the people and stifle the dissent voices, but they are no longer represent the current dynamics and the aspirations of the Indian society. The adoption of the Bharatiya Nyaya Samhita Bill represents a significant shift from the Indian Penal Code IPC 1860 to create a more unified, equitable, responsible legal framework that aligns the current concerns and growing societal standards. The bill is a progressive and cohesive replacement for the outdated Indian Penal Code, harmonizing with modern context and addressing newer challenges. It is especially sensitive to today's serious challenges, the likes of terrorism, mob lynching, and cyber crimes, the areas that have remained underserved by the IPC outmoded provisions. Additionally, expanding the ambit of terrorist activities to the offences committed against the state and its citizens perpetrated outside of India would provide the government with legal mechanisms. It needs to combat situations like Khalistan vandalism at Indian High Commission in London last year. The strengthening India's defense system, defenses against the activities that jeopardizing its core interests and citizens' well-being. Seeking to fulfill the legal loopholes while strengthening the legal system against these rising threats, the bill ensures stays unified, relevant in the faces of changing criminal dynamics. This legislative change is a key and cohesive step towards establishing a judicial system that is adaptable, just, and capable of protecting every citizen's rights and security. Justice delayed is a justice denied, but justice is justice miscarried. Sir, I reminded the words of famous jurist Jomitas Utopian, Ulponian, who emphasized that justice the perpetual will to allocate every citizen individual their due. This legislation heralding new era of legal system stands as a testament of our commitment to uphold justice while embracing necessary reforms. This transformation bills include several vital reforms crucial for modernizing our criminal justice framework. It provisions echo collective desire to ensure fairness, expediency, and safeguarding the individual rights. From the expansion of electoral modes in legal proceedings to the emphasis of forensic investigation for severe offences, the bill resonates with the ethos of the progress. However, as we aim for more equitable, efficient justice system,
It is crucial to consider the diverse socio-cultural dynamics across the nation. The government of Andhra Pradesh adjusts for provisions addressing regional nuances. Flexibility in implementations could better accommodate the unique challenges faced by the different states, ensuring effective, equitable application across the diverse landscapes. While acknowledging positive strides made in this bill, it is essential to advocate for measures ensuring compensation and redressal for individuals wrongfully detained or accused. The inclusion of such provisions would safeguard against potential injustice and reaffirm our commitment to a fair and just legal system. Improved witness protection measures. The provision for audio-video recording of witnesses' testimonies potential enhances witness protection and augment the accuracy of recorded statements. The option of recording witnesses' testimonies by audio-video electronic means that designated locations introduces modern methods of maintaining accurate legal records. The setting of specific timelines for crucial legal procedures, such as submitting medical reports in the rape cases within 7 days under Clause 184, delivering judgment within 30 to 60 days after completing arguments, and informing victims of investigation progress within 90 days, ensures expeditious justice delivery. The bill expands scope and medical exams for accused individuals by allowing any police officer to request such examinations. This ensures timely, appropriate medical attention, especially in case of involving sensitive issues like rape. The coexistence of old and new legal frameworks may lead to confusion and inconsistency in legal application. Ambiguity in some clauses, like shifting the burden of proof in specific cases, require further clarification to avoid misinterpretations and the potential misuse. Judges and lawyers need adequate training to effectively implement the new procedures and interpret law accurately. Make the provisions for holistic service to the victims of rape, including counseling, financial assistance, and access to medical care, more effective, and introduce various other measures to protect witness from the intimidation and retaliation, including physical security, witness anonymity programs, and reallocation support. Provide avenues for victims to participate in legal process, advocate the rights and interests. Sir, regarding this bill, Bharatiya Saksha makes some essential changes to original act, successfully fulfills many of the ministry's objectives. Most notably, it widens the ambit of electronic records admissible as evidence and removes certain colonial references from this initial act. Particularly, case dismissal due to lack of evidence. In 2021, government data brought to light alarming statistics, revealing that 7.5 lakh police cases are closed annually in India due to lack of evidence. This concerning trend is observed nationwide and has consistently increased since 2016, when National Crime Record Bureau began documenting such cases under the category of true but insufficient evidence and untraced or no clue in its crime records in India reports. Given the ministry's expressed commitment to achieving the enhanced conviction rate of up to 90% and fostering a citizens-friendly and efficient criminal justice system, the issue of dismissal due to insufficient evidence demands urgent attention and intervention. It is imperative to rectify this challenge. The reports of the Bureau of Police Research and Development indicates widespread vacancies across all ranks, including specialized investigations units like a crime branch and a small pool of forensic investigation and resources over the years. To enhance the effectiveness of police investigations and expedite case resolutions, police stations require additional forensic resources, well-trained personnel, and increased staffing in dedicated investigation wings. The ministry must also confront the long-standing issues of
understaffing within the premier intelligence and investigation agencies. The chronic shortage of personnel, CBI, Central Bureau of Investigation, has significantly hampered the agency work. As October 2023, the report of the 2023, there were 42 vacant superintendent of police level positions out of 73 sanctioned posts, marking the highest vacancy rate among all the 17 police organizations. The IB, Intelligence Bureau, closely follows with 32 vacancies of the same SP level. The SP level officers play a crucial role in investigations as they supervise and direct the engage with cases. Studies indicate that high case loads correlate not to just low conviction rates and court delays, but also the substandard evidence collection and analysis. Therefore, to address these staffing gaps and resource shortages is crucial for enhancing the overall efficiency of law enforcement agencies. The use of the forensic techniques in evidence collection is crucial in building strong cases, especially in serious crimes like homicide, sexual assault, and burglary. Forensic science goes beyond analysis, fingerprints, and such. It actually provides the necessary tool for examining documents, mobile phones, computers, and audio-video footages. However, the challenge is high case load, outdated equipment, a shortage of experts, deficiency in police training, and implementation translate rare issues of forensic analysis, as per the several reports. The scarcity of evidence is a major reason for India's low conviction rates for offences against human body, including murder, sexual assault, kidnapping, and human trafficking. Even for crimes against women, our national average conviction rate remains 25.3 according to NCRB data. Currently, only 10 to 12 cases are referred to forensic labs, science laboratories. And these labs are already overburdened with pending cases. A study indicates that if cognizable offences are referred to the forensic science laboratories, the backlog cases would increase eightfold. The Honorable Home Minister recently announced that forensic investigation will be mandatory for all offences within punishment of over 6 years. There is, however, a lack of resources in this regard. We are lagging behind global standards in adopting modern forensic techniques in criminal investigation. Developed countries have 20 to 50 forensic scientists for 1 lakh people, while India has only 1 person for every 3 lakh people, with approximately only 5,000 forensic professionals are working across the country. Moreover, the reports claim that many police stations lack access to forensic technology. This highlights the need of the significant improvement adopting the advanced forensic methods to align with international standards. There is a significant deficiency in specialized training. Although police undergo training at the academy covering various subjects such as policing, criminal law, weapons training, media etiquette, and physical training, there is a notable gap when it comes to forensic technology. Research indicates that 1/3 of civil police personnel in India have never received training in a forensic technology. Experts have stressed the importance of having personnel with expertise in forensic science involved at every step of the criminal investigation. Sir, with these suggestions, we support these bills, sir, 3 bills. Thank you very much, sir. रवि शंकर प्रसाद जी। मैं कृतज्ञ हूं कि आपने इस ऐतिहासिक बिल पर अपने विचार रखने का मुझे अवसर दिया है। मैं अपनी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूंगा कि भारत की क्रिमिनल न्याय प्रक्रिया में आज का दिन मील का पत्थर है। जब हम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
और भारतीय साक्ष्य विधेयक पर चर्चा और पारित करने वाले हैं। ये भारतीय न्याय संहिता इंडियन पेनल कोड के स्थान पर आ रही है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के स्थान पर आ रही है और भारतीय साक्ष्य विधेयक इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर आ रही है। माननीय सभापति जी, इस पूरे प्रस्तावित कानून का कुछ दर्शन है। इंडियन पेनल कोड में पेनाल्टी पर एम्फेसिस था, आपको दंडित करना है। भारतीय न्याय संहिता में न्याय पर एम्फेसिस है कि हमें लोगों को न्याय देना है। ये बहुत बड़ी सोच का अंतर है जिसे हमें समझना जरूरी है। दूसरी बात, जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें क्या था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक प्रोसीजर प्रस्तावित करता था कैसे लोगों को पेनाल्टी देना है, अपील करना है। उसकी जगह पर जो कानून आ रहा है वो सुरक्षा संहिता की कोई अपराधी हो भी तो उसकी प्रक्रिया में उसकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, ये बात भी कही गई है। और साक्ष्य अधिनियम के बारे में तो बातें ही हैं कि कैसे सबूत हो, उनको कैसे प्राप्त किया जाए और कैसे उस पर कार्रवाई हो। माननीय सभापति जी, आज मैं आपकी कृपा पूर्वक अनुमति से सदन के सामने इंडियन पेनल कोड 1860 का थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि देना जरूरी है। अगर आप इन तीनों कानून को देखेंगे तो 1860 में इंडियन पेनल कोड आया, माननीय सभापति जी, एविडेंस एक्ट 1872 में आया और सीआरपीसी 1882 में आया। उसके पहले एक छोटा कानून था दिल्ली में। माननीय सभापति जी, आपको याद होगा 1857 में भारत की आजादी का पहला आंदोलन हुआ था जिसमें भारत के महान क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर के लोगों को बहुत ठगाया। उसमें रानी लक्ष्मीबाई थी बहादुर, हमारे बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे, तात्या टोपे थे, हम सभी का नाम जानते हैं। उसके बाद कंपनी बहादुर का राज खत्म हुआ और विक्टोरिया महारानी का राज शुरू हुआ। मतलब अंग्रेजों ने भारत के साम्राज्य को सीधा अपने कंट्रोल में लिया। यह बात जानना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब भारत को शासन करना है तो मैं अंग्रेजों की एक बात की तारीफ करूंगा, कोई भी काम करेंगे, अन्याय की पराकाष्ठा भी करेंगे तो कानून का दिखावा देके करेंगे। हाँ? जितना मैं उनके बारे में पढ़ता हूं, हमारे आजादी के आंदोलन में माननीय सभापति एक कच्ची फांसी हुआ करती थी। बाद हो रहा है ये जी, कितने साल बाद परिवर्तन हो रहा है कानून? ये तो 75 इयर्स के बाद, 151 साल के बाद, और आजादी के बाद 75 इयर्स के बाद। तो माननीय उपसभापति जी, कच्ची फांसी, तो हमने कहा कच्ची फांसी क्या हुआ? तो मालूम है कोई कैप्टन स्कॉट घूम रहे हैं और कोई क्रांतिकारी को पकड़ा और पेड़ पर लटका दिया, आई कैप्टन स्कॉट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर सो एंड सो हेयर बाय गिव यू कैपिटल पनिशमेंट, टांग दो। तो आपको आज भी अगर आप देश में घूमे, माननीय सभापति जी क्षमा करें, तो आपको ऐसे बहुत से पेड़ दिखाई पड़ेंगे पुराने जहां क्रांतिकारियों को कच्ची फांसी दी गई थी। तो जो भी करना है वो कानून के दायरे में करना है। तो मूल रूप से दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कानून बनाना है दंड के लिए, दंड देना है एक कानून की प्रक्रिया, तो सीआरपीसी ले आए, और फिर उसके लिए एविडेंस चाहिए तो एविडेंस एक्ट ले आए। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो मैं इस सदन के सामने बड़ी विनम्रता से रखना चाहूंगा, माननीय सभापति जी, उनको हिंदुस्तान पे राज करना था तो ऐसे हिंदुस्तानी भी चाहिए जिनका चेहरा हिंदुस्तानी था लेकिन दिमाग अंग्रेज था और दिल में अंग्रेजों के लिए सम्मान था। Their skin may be Indian, but their mind must be British. तो उसके लिए यूनिवर्सिटी खोलनी थी, पढ़ाई करना था। जब मैं थोड़ा इस पर शोध किया तो मुझे एक बहुत रोचक बात मालूम हुई, माननीय सभापति जी, जितने पुराने विश्वविद्यालय हैं भारत
ये सबों के स्थापना का कालखंड लगभग वही है जब ये तीनों कानून बनते हैं, चाहे वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है या बॉम्बे यूनिवर्सिटी है या बाकी यूनिवर्सिटी, कुछ पहले खुली होगी, लेकिन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के खुलने का समय भी इन कानूनों के साथ साथ का ही है। इसकी पृष्ठभूमि समझनी बहुत जरूरी है। जो मैंने आरंभ में कहा, ये न्याय संहिता है, पेनल कोड नहीं है। ये इसका दर्शन है जिसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हां, एक चिंता की बात होती है, इतना लंबा समय क्यों लगा, क्यों लगना चाहिए। 1973 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुआ, पहले भी कुछ हुआ था, लेकिन जो एक सुविचारित तीनों कोड को बदलने का भारत की आवश्यकताओं के अनुसार प्रयास था, वो क्यों नहीं हुआ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखने वाले लोग जब भारत को डिस्कवर कर रहे थे तो इस औपनिवेशिक दास्तां को क्यों भूल गए। ये बड़े सवाल है, ये उठने चाहिए और मैं उठाना चाहता हूं और उसके लिए अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहता हूं। उन्होंने हिम्मत दिखाई और 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि कोई औपनिवेशिक प्रतीक को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज इसी संदर्भ में माननीय सभापति जी एक और बात कहने की इच्छा हो रही है। आजादी आई तो जगह जगह जौर पंचम की मूर्तियां थी, किंग विक्टोरिया की मूर्तियां थी, बगल में राजपथ पर था जहां कर्तव्य पथ है, उनको हटाया गया, ठीक हटाया गया। लेकिन हमारे जो महान नेता थे उसमें कुछ कुछ सम्मान में इतना विलंब क्यों किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की पहले क्यों नहीं बन सकती थी, उसके लिए क्यों नरेंद्र मोदी को आना पड़ा। ये बड़े सवाल है, उठने चाहिए। ये उसी मानसिकता से लिंक्ड है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दिल्ली में तभी क्यों लगी जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। तो जो पूरी सोच है इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज चूंकि आपने कृपा पूर्वक अनुमति दी है कि अंग्रेजों के इस कानून के समापन पर और भारतीय प्रयास को रखने का मुझे अवसर मिला है माननीय गृह मंत्री के इस बिल पर, तो मेरे मन के जो उद्गार थे वो मैं रखने की कोशिश करूं। अध्यक्ष जी, गुलामी मानसिकता के बारे में कुछ और कहने की इच्छा है और कृपा करके मुझे आप अनुमति दीजिए। विषय इससे सीधा नहीं जुड़ा है लेकिन विषय जुड़ा है। प्रभुराम के मंदिर को बनने में 500 साल क्यों लगे, ये मुझे उठाने की इच्छा है। मेरा परम सौभाग्य था कि उस मामले में एक वकील के रूप में पेश होने का मुझे सौभाग्य मिला था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन 500 साल क्यों। आज जो कृष्ण जन्मभूमि है, आज जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसके लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है। जब आजाद भारत बनता है तो आजाद भारत की जो आजाद आस्था है उसका भी संबंध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये बड़े सवाल हैं, उठने चाहिए। आज मैं इस सदन को बताना चाहूंगा, पहले भी चर्चा हुई है कि 1500 अंग्रेजों के समय के कानून, जो पुराने कानून थे, अनुपयोगी थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। लेकिन हां, ये जो तीनों पेनल न्याय संहिता है, क्षमा करेंगे पुरानी आदत जाती है, जाते जाते समय लगेगा, न्याय संहिता और बाकी संहिताएं हैं, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि पहले भी कई कमीशन आए थे, जैसे मालीमत कमीशन था, जैसे वर्मा कमीशन था, प्रोफेसर माधव मेनन कमीशन था, लेकिन ये पहला कानून में बदलाव है जिसमें इतना सघन संवाद हुआ है। और मैं इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी आपका विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि मैंने किसी कानून में इतना वाइड लेवल ऑफ कंसल्टेशन नहीं देखा है। सारे एमपीज को चिट्ठी लिखी गई, एक बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी को इसका नोडल पॉइंट बनाया गया, एक एडमिशन से बात हुई, जजेस से बात हुई, रिटायर्ड जजेस से बात हुई, वकीलों से बात हुई, कानून के प्रोफेसर लोगों से बात हुई, और 158 कंसल्टेशन में माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित थे। तो ये कंसल्टेशन कितने वाइडर लेवल का होता है, ये इस बात से बहुत ही स्पष्ट है कि
आज जब 1500 कानूनों के निरस्त की हम बात कर रहे हैं और इस पर आ रहे हैं, तो एक मन में और विचार आ रहा है। माननीय सभापति जी, अध्यक्ष जी, क्षमा कर कोई बात नहीं, होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये कह रहा था, क्षमा, आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं 2-3 बार सभापति जी बोला, बहुत क्षमा चाहता हूं। ये जो हमारे बहुत से ब्रिटिश इंसिग्निया थे भारत की नौसेना में वगैरह में, इसका बदलाव भी कब हुआ? माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर ही हुआ ना, कि महाराज शिवाजी की जो नौसेना थी उसका जो सिंबल था, उसको आज भारतीय नौसेना का प्रतीक बनाया गया है। ये कितनी बड़ी बात है, ये पहले क्यों नहीं हो सकता? अध्यक्ष जी, तीनों विधेयक की कुछ प्रमुख बातें मैं यहां रखना चाहता हूं, फिर मैं इसके अदर कुछ पॉइंटेड तथ्यों पे आऊंगा। पुराने पेनल कोड में 511 प्रावधान थे, सेक्शंस थे, नए में 356 होंगे। 175 सेक्शन बिल्कुल बदल दिए गए हैं, 8 नए जोड़े गए हैं, 22 सेक्शन को निरस्त किया गया है। और भारतीय साक्ष्य विधेयक में 167 की जगह 170 प्रावधान होंगे, 23 प्रावधान बदल दिए गए हैं। और भारतीय सुरक्षा संहिता के सीआरपीसी में जो उसमें 533 प्रावधान होंगे, जिसमें 160 को बदल दिया गया है। 9 नए सेक्शन जोड़े गए हैं और 9 प्रावधानों को बदला गया है। ब्रिटानिया संसद के द्वारा पारित इन कानूनों के सारे औपनिवेशिक प्रतीकों को भी समाप्त कर दिया है। हर मैजेस्टी, हिर मैजेस्टी, द काउंसिल, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनको नमस्ते किया गया है। अब भारतीय संसद सर्वोपरि है, वो इस कानून का सार है, ये मैं कहना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, इन कानूनों का सबसे प्रमुख विशिष्ट क्या है मेरे विचार में? ये युग टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी ताकत है। ये युग सूचना का है, सूचना ताकत है। दिस इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज पावर। दिस इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज पावर। और आज इस पूरे मामले में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसका सदुपयोग करें। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट की परिभाषा को बदला गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मॉल्स, मैसेज ऑन डिवाइस आदि के उपयोग से कागजी दस्तावेज का पहाड़ और उसका भार कम होगा। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है? अभी तक सिर्फ कुछ कामों के लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से कोर्ट में लुढ़कते थे। अब आपका पूरा ट्रायल वीडियो इसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से हो पाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन हो पाएगा, कंप्लेंट का एग्जामिनेशन हो पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखते हैं उनको जेल से लाना पड़ता है, थाने में, कोर्ट में, और रास्ते में क्या क्या होता है आप सुनते ही रहते हैं। इसलिए बहुत बड़ी सुरक्षा का दबाव भी इसके माध्यम से कम होगा। एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट से जजमेंट तक सभी को डिजिटाइज करने का प्रावधान है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और सर्च और सीजन के दौरान वीडियोग्राफी होनी जरूरी है, ताकि लोग ये न कहें कि पुलिस ने ये किया और ये नहीं किया। तो ये पारदर्शिता को स्थापित करता है। ये इस पूरे नए प्रस्तावित अधिनियम का बहुत बड़ा एंग है। बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के कोई भी चार्जशीट को वैधानिक नहीं माना जाएगा। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस को आगे बढ़ाना जरूरी है। जब इतनी बड़ी संख्या में हम टेक्नोलॉजी को आगे ला रहे हैं, तो मुझे अभिनंदन करना है भारत के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने गुजरात में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित किया है और कुछ ही वर्षों में 33,000 साइंस एक्सपर्ट उपलब्ध होंगे। ये एक नया नौकरी का, एम्पावरमेंट का अवसर मिलने वाला है। अच्छी बात है, होना चाहिए। और मैं तो माननीय गृह मंत्री से बहुत विनम्रता से कहूंगा कि एक बार अपने स्तर से जरूर स्टेट्स की परख होनी चाहिए कि उनके थानों के कितने थाना इंचार्ज लोग डिजिटली ट्रेंड हैं। एक चिंता का सवाल है। जब सबके पास मोबाइल जरूर है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग कितनी है, इसके बारे में थोड़ा देखने की जरूरत है। मैंने थोड़ा इसको और दूसरे रूप में देखा है। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की उपलब्धता के बारे में भी ट्रेनिंग देखने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, एक विषय मैं यहां पर उठाना चाहता हूं।
इस पर बहुत चर्चा होती है। राइट ऑफ प्राइवेसी, आप हमेशा टेक्नोलॉजी लाएंगे तो प्राइवेसी का क्या होगा? तो ऐसे लोगों को मुझे एक बात कहनी है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश of judges, not only this, but it is also necessary to increase the number of courts and judges. This only can have deterrent of effect on the crime and in the court. The citizens who are waiting justice in their year-long cases will be happy to get final verdict in the court with reasonable time. The Bharatiya Nagari Suraksha Second Sahita 2023 now includes a new section 532 as part of our commitment to creating a digital India. As per the same trial and proceeding under this code may be held in electronic mode by use of electronic communication or use of auto-video electronic means. FIR plays a vital role in initiating criminal proceeding and taking the guilty party. Despite multiple attempts to streamline the process, a more hurdle still persists in the form of delay in lodging FIR. The Code of Criminal Procedure CRPC Section 154 is set to undergo an important modification through the BNSS 2. The modification would add Section 173, which states that FIR for cognizable offence can be filed through electronic means, irrespective of the area where the offence occurred. And also, this is differed from the process of uploading FIR online by police, which pertain to making a traditionally filed FIR available in digital form. Under this section, the police officer is mandated to electronically record the information and requiring the informant signature with 3 days. BSSN 2 will mandate for the provision of a promptly deliver free of cost copy of the recorded information to the informant or the victim. That is clause 173/2. This approach enables citizens to report crimes or provides informative via electronic means rather than resorting to in-person visit to police station, which might not be feasible due to security reason or other issue. Additionally, this may be in reducing the hesitancy shown by police officer to lodge an FIR because of its highly transparent nature. Now the bill proposed use to digital technology and in eliminating human errors or mischief and reduce the risk of corruption within the police force. This collective efforts aims to modernize and streamline the FIR registration. With this, I conclude, sir. I really express my thanks that at this stage it is very much necessary
that we are completing, we are at the threshold of 75 years of our India. So it was very much necessary. And I express my thanks to Amit Shah ji. Thank you. Shri B. Mehtab ji. So you had asked a very pertinent question, how much time have flown after the IPC, CRPC and Indian Evidence Act came into existence. I was just making a calculation. The IPC is 163 years old. And the Indian Evidence Act is 130 years old. And if we calculate 1972 as the promulgation of CRPC, though it was there earlier, so it is already 51 years old. But all these three acts, which is going to be repealed today, are the acts of 19th century and 20th century. We are in 21st century. So I would say 4 months ago, after the first introduction of 3 new pieces of legislation to overhaul the criminal justice system, the government, Honorable Minister for Home Affairs, placed it before us and revised it last week. The new criminal code makes some crucial changes. The bills for the first time bring terrorism, corruption and organized crime under the ambit of ordinary criminal law. There were special laws earlier, but now it has come into the ordinary criminal law. These aspects were reserved for stringent special legislation since they upend the general protection by reversing the burden of proof on the accused, as per French jurisprudence, to restrict bail. At the time of introduction, the government had told us that 3 provisions of IPC, that is sedition, criminalization of homosexuality and adultery, been repealed. Fine print shows Rajdroha been changed to Deshdroha. The narrative has been doing the rounds for quite some time that the Indian criminal justice system is not delivering. Victims of crime are often helpless. The cases are dragging endlessly and courts are getting choked. These are the 4 major issues which actually were perturbing us for quite some time. All this is being caused, it is said, because of colonial laws that somehow do not fit with Indian traditions, Indian customs. The magnificent edifice of the democratic structure today in India rests on the rule of law. As it is always said, as the civilization progressed, the society formed a ruler or created a Raja. But Raja has to perform his duty through law. It is not actually the Raja who protects the subjects. It is the law which protects the subject. That is the reason why we look up to our constitution with great hope and admiration. Because it is not the people who are prime ministers or chief justices. They don't give us justice. It is the law which protects every citizen of this country. It may be said the state does not protect the citizens. It is the law that protects the citizens. The law is supreme. The 3 bills that are before us today is replacing laws of 19th and 20th century. The question is whether they reflect current norms, of criminal jurisprudence. Numerous facets of Indian criminal justice system predate its independence from the British. The IPC was modelled after the Irish
penal code made by English rulers that came into effect in 1860, though the commission was formed in 1838 and took 20 years to frame the provisions of the penal code, and subsequently it got implemented in Ireland, but subsequently in India it got implemented in 1860. First enacted in 1861 and revised in 1973, the CRPC establishes rules for criminal proceedings. In 1872, the Indian Evidence Act, which was modelled as per the British jurisprudence, was passed. Since 1872, this has not undergone any significant changes, and now it is going to be changed with the approval of this House. Invariably, there have been some talk in media and also outside that how can we pronounce these Hindi versions of the law, Bharatiya Nyaya Sanghita. As Indians are very innovative, they have already found a way out. Instead of saying Bharatiya Nyaya Sanghita, lawyers are also saying BNS. So in that respect, that is not an issue in some quarters where they have a tendency not to utter Hindi names or Indian names. BNS is going to be primarily a primary legislation governing criminal offences. This bill preserves several sections of IPC. Additional changes include the implementation of new laws targeting organized crime and terrorism. Strengthening of punishment for certain existing offences is made and introduces community service as a form of punishment for some minor offences. Importantly, excluded from consideration are specific violations under IPC that have been invalidated or modified by judicial rulings. These include acts of adultery and same-sex intercourse, and stipulated in section 377. BNS will have 365 sections instead of 511 sections. 175 sections have been changed, 8 new sections been added, and 27 sections been repealed. Now, I would come to 3 or 4 specific sections of BNS, Bharatiya Nyaya Sanghita. Now, IPC section 124A, that is sedition. Words spoken or written or by signs attempt to infuse hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law, unquote, be punished. That is the sum total as sedition has been described. And large number of freedom fighters, including my parents, were all imprisoned because of this section and went behind bars for months and years together. But section 150 of the BNS 2023 says, and I quote, or by electronic communication or by use of financial means excites or attempts to excite secession or armed rebellion or subversive activities or encourages feeling of separatist activities or endangers sovereignty or unity and integrity of India be punished. Instead of government, as I said earlier, established by law, the new section says endangers the sovereignty, unity and integrity of India. This is a very welcome step. But I find still some loopholes which need to be plugged. Instead of making incitement to violence or disruption to public order a condition precedent to invoke the charges, the proposed section 150 continues to criminalize any act that excites or attempts to excite secessionist activities or encourages feelings of separatist activities. Furthermore, penalizes a person who indulges in or commits any such act, thereby casting with the law enforcement agencies a greater discretion to decide what can be brought within the fold of an act
endangering some sovereignty, unity and integrity of India for slapping the charges. This discrimination needs to be, I believe, this can be looked into, and it gives a very wide spectrum of discretion to the enforcing agencies. Thirdly, the term separatist activities can be interpreted in several ways and can be used as a political tool to curb opposition parties who organize protests against any of the policies tabled by the government. Then 153B of IPC have been recast as clause 195 of BNS, with an addition where 195(1) subclause D criminalizes the making or publication of false and misleading information jeopardizing the sovereignty, unity and integrity or security of India. The phrasing of clause 195(1)D raises three potential causes for concern. False and misleading and jeopardizing, these are two words, renders the clause very vague. There is need of clarity. It leads to multiple interpretation. Similarly, the word jeopardizes can cover a wide, unforeseeable range of consequences. Why leave all this in the hands of discretionary decision makers? It should be noted that criminal law does indeed deal with the matter of determining what constitutes false information. It also does in other situations, such as making a false statement under oath or providing fraudulent evidence. But in this clause, due to subjective nature of determining truth or falsehood, despite the need to control the mass dissemination of misleading information, will become very challenging. Another issue which has been incorporated in BS is organized crime. Clause 109 and 1010 been introduced effectively to deal with organized crime. Clause 109 borrows heavily from the existing state legislations in organized crime, especially from Gujarat and from Maharashtra. That is also necessary. Clause 110 creates a separate category of petty organized crime from organized crime for the first time. In IPC section 120A deals with criminal conspiracy where two or more persons agree to commit a crime. Two things, gang criminality and racketeering, have not been defined. So also anchor points. There is a word in the bill, anchor points. I fail to understand what it meant. There is no distinction between the commission of an offense and its attempt. So there is, it has to be, I think, needs to be looked into. Then concept of community service is not there in IPC. This is a welcome step, but BNS does not define what community service will entail and how it will be administered. On mob lynching, clause 101, subclause 2 and 115 of clause 4 introduces new provision against heinous crime of mob lynching without specifically using the term. Section 352 IPC is applied for murder. It says whoever commits murder shall be punished with death. The BNS, there is a phrase, personal belief or any other ground which is without any definitional clarity. Therefore, it is quite dangerous. On abortion, section 132 of IPC is there. Unfortunately, except for moving the provisions from section 312 and up to 316 to clause 86 to 90, no significant changes have been made. BNS does not even bother to change arcane terms such as quick with child with an appropriate word. There are certain other words also relating to a cart, relating to a horse. All these things have been there that needs to be removed because those were the idea of 19th century and
most of them have crept in here. It repeats language that was in the 19th century. Medical and ethical understanding of pregnancy and abortion has undergone tremendous change in today's world that could have been brought into our in this BNS. Now coming to BNSS, this will replace CRPC 1973, and the major issue is here, audio-video recording is now made in line with the increasing use of technology and by ensuring greater accountability and transparency in police investigation. Courts have time and again emphasized the need for utilization of audio-video recording. Clause 105 in BNNS is new, which aims to record search and seizure through audio-video electronic means, preferably cell phone. Instead of Section 157 of CRPC, it is Clause 176 relating to procedure for investigation. Proviso is added in the BNSS, which was absent in CRPC. However, Section 161 and Section 154 been retained in Clause 180 and Clause 173 of BNSS. Subclause 3 mandates for videography of the process of forensic evidence on mobile phone or any other electronic device, which is a safeguard against manipulation and irregularities. This is crucial safeguard to prevent torture and coercion of the accused during questioning in custody. But a significant drawback is that this is not mandatory requirement. It is certain whether subsequent recovery evidence need to be recorded audio-video wise is not mentioned. There is no mention of audio-video recording during investigation like spot inspection. Instead of Section 164 of CRPC, under 183 of BNSS, recording of confessions and statements before a magistrate is crucial safeguard to preserve the rights of witness. Confession be recorded in the presence of a lawyer, which is all-important safeguard against false confession. But this should have been made mandatory. The provision under Section 321 of CRPC has a gap in terms of allowing the prosecutor to withdraw from the prosecution of a case with the consent of the court without giving the victim a chance to be heard. But this is addressed in Clause 360, allowing that the victim must be heard before such withdrawal is allowed. This is a significant step. The right to information for the victim has been expanded in BNSS. So in that respect, I believe BNSS has expanded the scope in protecting the victim in a very great way. One issue is relating to handcuffing. It falls short of well-settled constitutional threshold established to protect a person's right to dignity under Article 21. Only thing has come, economic offenders are now being exempted from handcuffing. Clause 398 is an entirely new addition, which provides every state government shall prepare and notify a witness protection scheme for the state with a view to ensuring protection of the witness. This is a welcome step, no doubt, but it merely reiterates the direction under Mahendra Chawla case, nothing more. Clause 173 subclause 3 introduces a mandate for the collection of forensic evidence by the forensic experts in all offences punishable by imprisonment of 7 or more years. This clause broadens the scope of forensic experts, which could include private experts without any regulatory body to
to ensure their proficiency or compliance with professional and ethical standards that could lead to problems. As we have institutes now in our country where boys and girls are studying forensic science, I think this scope is going to expand in a very great way. But we need a regulatory body also to look into that. Article 22 of the Constitution requires a person in police custody to be produced before a judicial magistrate within 24 hours. The CRPC provides this. The BNSS retains this provision. There is a phrase, occasion is past. This was not defined, but subsequently after the Standing Committee gave its report, there has been change in that. BNS specifies in petty cases, person be released as soon as possible within 24 hours. But it leaves a lot of things for the enforcing agency to their discretion. A demonstration I have participated. Police catch hold of me, takes me to a certain place, and takes me 25 kilometers 25 kilometers away in a jungle and leaves me there. What can I say? I can only travel by foot and come back and say, yes, I have come back within 24 hours. But that's not the case. It happens. It happens with all political demonstrations. Now come to the last point, sir. Last bill, that is Bharatiya Saksha Bill, BSB. The Indian Evidence Act 1872 provides two kinds of evidence, documentary and oral evidence. The bill provides that electronic or digital records will have the same legal effect as paper record. There is a need to reset the justice dispensation system. Appellate courts are overburdened with appeals. Victims waiting for years and under trial prisoners languishing in jail beyond their presumed conviction time. The policing system has not embraced the advancement of 21st century technology that has transformed investigation and criminology in other countries. Indian Evidence Act of 1872, sir, is a relic of the past. And we have discussed this aspect a number of times in this House earlier. The bill exhibits modern modifications, linguistic adjustments for gender, inclusivity and replacement of outdated terms such as insanity with mental illness. In the bill, the definition of documents has been expanded to include electronic or digital records on emails, server, logs, documents on computers, laptop or smartphone, messages, websites, locational evidences and voicemail messages stored on digital devices. The definition of evidence has been expanded to include any information given electronically which will enable the appearance of witnesses, accused, experts and victims through electronic means. The BSB has incorporated most of the recommendations made by the Standing Committee on Home Affairs. Several drafting errors that were highlighted have been also addressed. Under the Indian Evidence Act, information received from an accused in police custody is admissible if it relates to a fact discovered, whereas similar information is not admissible if it was received from an accused outside police custody. The BSB retains this distinction. In 1960, I'm coming to the point why I'm mentioning it. In 1960, sir, the constitutionality of this provision was challenged on the ground that it creates an unjustifiable discrimination between persons in and outside custody. The Law Commission in 2003 suggested redrafting the provision to ensure that information relating to facts should be relevant whether the statement was given in or outside police custody.
The Law Commission has made several recommendations which have not been incorporated, but overall the BSP is in tune of time. Relating to, because this is also being discussed outside, I think some members may also be speaking on that aspect. If I give a statement before a police, I may be under duress, and this has been pronounced by the court that it is not admissible. If it is given before a magistrate, one thing has happened that before a lawyer also it can be recorded, as it is happening in some modern countries or some advanced countries. To a certain extent, the accused needs protection, especially from the law enforcing agency. That needs to be. In conclusion, sir, I may say laws introduced during the colonial era were enacted to keep the subjects, praja, as we say, the subjects that are the Indians in a line. Therefore, it is imperative that the outlook must be changed and law and order must be viewed outside the colonial lens. Since the drafting of new criminal law is in discussion, it is imperative that justice prevails, as drafting criminal law of a nation is not a regular practice. Sir, this reminds me of one thing that we are missing here in this house. It's for your consideration, sir. In the old house of present Samvidhan Sadan, there was a line on top of your chair. Dharma Chakra Pravartanaya. Wheel of righteousness shall prevail. Sanskrit mein Dharma Chakra Pravartanaya. What we do here, what we discuss here, ultimately it is the Dharma Chakra that we are pravartaning. So in that respect, you can find a suitable place. You can find a suitable place because that is something unique of our culture, our civilization, that can be considered. And here, history is in the making today. That new law for our criminal jurisprudence, our Indian criminal jurisprudence is being enacted. That's a great thing that is happening. And I personally thank our Home Minister for taking, and also the Prime Minister, for taking the initiative. Others could have done it, but they couldn't. They didn't. And you have taken that challenge upon yourself, and the government has taken that challenge upon itself. It is our credit that we are witness to this history in making. Thank you, sir. विष्णु दयाल राम जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज एक ऐतिहासिक दिन है और सदन में बैठे हम सभी साथीगण इतिहास बनते देख रहे हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के लिए आज इन 3 विधेयकों को सदन के समक्ष उपस्थापित किया गया है, उसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। आप तो डायरेक्टर जनरल पुलिस भी रहे ना सर। जो इंडियन पुलिस एक्ट और जो इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1878, 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा। इसके लिए मैं तहे दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए वर्षों से कोशिश हो रही थी। ढेर सारी कमेटियां बनी थी,
उदाहरण के तौर पर बेज बरुआ समिति, मलिमथ कमेटी, विश्वनाथन कमेटी और समय समय पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने भी बहुत सारे सुझाव दिए थे आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए। लेकिन 2019 के पहले इसमें कोई सार्थक पहल नहीं की गई थी। पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में आदरणीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय ने इस दिशा में सार्थक प्रयास शुरू किया। ये 4 वर्षों का परिश्रम का फल है कि आज 3 विधेयक सदन के समक्ष लाए गए। इन विधेयकों को लाने के पहले वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन हुआ था और उस वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन में 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और 270 विधायकों से सुझाव प्राप्त हुए थे। स्वयं गृह मंत्री जी ऐसी कंसल्टेशंस में 158 समय पर उपस्थित रहे हैं। इन तीनों विधेयकों को जब लोकसभा में उपस्थापित किया गया तो कुछ त्रुटियां पाई गई, जिसके बाद इसको स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स को रेफर कर दिया गया और स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के रिकमेंडेशंस और सुझाव में संशोधन लाते हुए पुनः इसको सदन के समक्ष उपस्थापित किया गया। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट ये अंग्रेजों की हुकूमत को सुदृढ़ करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। ये दंड देने के लिए बनाए गए थे, ये न्याय देने के लिए नहीं बनाए गए थे। और आज जो हम विधेयक लेके आए हैं, जो सरकार ये विधेयक लेकर के आई है, उसकी जड़ में न्याय देने की भावना है, दंड देने की भावना है। अब मैं उन विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करूंगा, लेकिन उन बातों को कतई दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा जो पूर्व के माननीय सांसदों ने अपने अपने क्रम में रखा है। 0 एफआईआर की बात हुई है। 0 एफआईआर पहले से प्रचलन में था, लेकिन उसको कानूनी अमला जमा पहनाने का कार्य इस विधेयक के माध्यम से हुआ है। 0 एफआईआर नागरिकों को सुविधा निश्चित रूप से प्रदान करेगा, इसलिए कि अपराध यदि किसी थाना क्षेत्र में हुआ है और दूसरे थाना क्षेत्र में उसको हमें रजिस्टर कराना है तो हम रजिस्टर करा सकते हैं। वहां से जो एफआईआर है, जो रजिस्ट्रेशन जिस थाने का पड़ता है वहां चला जाएगा और रेगुलर एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा। ये 15 दिनों के अंतर्गत इस प्रक्रिया को समाप्त कर लेना है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप अपना कंप्लेंट दायर कर सकते हैं और 3 दिनों के अंतर्गत उस कंप्लेंट पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा और एफआईआर दायर हो जाएगा। एफआईआर इस प्रकार की एफआईआर दायर करने की जो सुविधा दी गई है नागरिकों को, निश्चित रूप से उस सुविधा को बहुत अच्छे ढंग से और बारीकी से संचालित करने की आवश्यकता है, नहीं तो मल्टीपल एफआईआर की समस्या इकट्ठा हो जाएगी और इन्वेस्टिगेशन में अनावश्यक रूप से विलंब होगा। एक 173(1) जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा है, उसके अनुसार यौन शोषण के मामले में पीड़िता का जो बयान दर्ज करना है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है और ये कंपलसरी कर दिया गया है। पहले भी अनुसंधानकर्ता अपने अपने इच्छा, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो रिकॉर्डिंग करने का कार्य करते थे,
लेकिन पहली बार इसको मैंडेटरी कर दिया गया है और जो 7 वर्ष से अधिक सजा वाले मुकदमे हैं, उन मुकदमों के प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को जाना आवश्यक है। अब ये सवाल उठता है कि इतने सारे एक्सपर्ट्स कहां से आएंगे, तो निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखते हुए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और जैसी की सूचना है हर 3 साल पर 33 हजार फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे और 5 साल के भीतर इस तरह की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की यदि व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है तो कन्विक्शन रेट में बढ़ोतरी होगी। कन्विक्शन रेट को 90% से ऊपर ले जाने की सरकार की मंशा है। एक और बात जो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी कि किसी भी व्यक्ति की यदि गिरफ्तारी होती है थाने में, तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए एक एएसआई रैंक का ऑफिसर नामित होगा पुलिस स्टेशन में और जिले में भी। ये गिरफ्तारी की सूचना डीके बसु का जो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, उसमें ये था, इसको गिरफ्तारी की सूचना देनी थी, लेकिन थाने से किसी प्रकार की गिरफ्तारी की सूचना जो व्यक्ति पकड़ा जाता था उसके माता पिता या उसके नियर रिलेटिव्स को नहीं दी जाती थी। इस प्रावधान के चलते अब उनको कंपल्सरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है कि वो उसकी सूचना देंगे ही देंगे। और सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दी जा सकती है और टेलीफोन या मोबाइल के माध्यम से भी दी जा सकती है। इस बीएनएस के प्रावधानों से पॉक्सो पीड़ितों को और बलात्कार के पीड़ितों को प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज कराना सुनिश्चित होगा। इस प्रकार की सुविधा कोई पहले नहीं थी और ये इस प्रकार की सुविधा निश्चित रूप से इस एक्ट के अनुसार दी गई है। पीड़िता का बयान बंद कमरे में मजिस्ट्रेट के सामने उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए जरूरी किया गया है। इस तरह की कार्रवाई को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसी प्रकार बीएनएस की धारा 193 के अनुसार बच्चों के खिलाफ जो अपराध दर्ज किए जाते हैं उन अपराधों का अनुसंधान 2 महीने के अंतर्गत समाप्त किया जाना है और अनुसंधान में हुई प्रगति की जानकारी भी 90 दिनों के भीतर देनी है और उसके बाद हर 15 दिन जो इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस होगा उसकी भी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मोड से दी जानी है। एफआईआर से लेकर के केस डायरी से लेकर के चार्जशीट से लेकर के जजमेंट तक की जितनी भी कार्रवाई है सबको डिजिटलाइज करने की बात कही गई है। आरोप पत्र को दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। विशेष परिस्थिति में कोर्ट की अनुमति से और 90 दिन का समय लिया जा सकता है, यानी 180 दिन के अंतर्गत 6 महीने के अंतर्गत आपको उस केस का अनुसंधान समाप्त करना है। जो व्यवहारिक स्थिति है और जो आज देखने को मिलता है कि 90 दिनों की बात कौन कहे, 2-2 साल 3-3 साल तक या उससे भी ज्यादा अवधि तक कांड अनुसंधान के अंतर्गत लंबित रहते हैं। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो धाराओं में प्रोविजन किया गया है, जो धाराओं में प्रावधान किया गया है, उन प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए
अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जरूरी है, मॉनिटरिंग क्लोज होनी चाहिए, और जो लोग भी इन प्रावधानों को नहीं मानते हैं या उन प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध डेटरेंट पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए। सारे कदमों पर, सारे स्टेजेस पर टाइमलाइन की व्यवस्था की गई है। अनुसंधान 90 दिन के अंतर्गत समर्पित कर देना है, 90 दिन से यदि आवश्यकता ज्यादा है तो कोर्ट का परमिशन चाहिए। इसी तरह से एक बार जब केस कोर्ट में कमिट हो जाता है तो 60 दिनों के भीतर जो पेपर्स, पुलिस पेपर्स उसको मिलने हैं मिल जाते हैं, तो 60 दिनों के अंतर्गत डिस्चार्ज पिटीशन डाल देना है। और 60 दिनों के अंतर्गत यदि डिस्चार्ज पिटीशन आप नहीं डालते हैं तो उस पर आप अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। 30 दिनों के अंतर्गत एक बार ट्रायल समाप्त हो जाने के बाद 30 दिनों के अंतर्गत जजमेंट डिलीवर करना है, और उसके बाद 7 दिनों के अंतर्गत उस जजमेंट को अपलोड कर देना। ये सारी व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसमें टाइमलाइन सुनिश्चित किया गया है, और इस टाइमलाइन को अडहेयर कराना, सुनिश्चित कराना अत्यंत आवश्यक है। एक और व्यवस्था की गई है जो राज्य सरकारों के स्तर से या अन्य स्तरों पर सिविल सर्वेंट या पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध यदि किसी प्रकार का आरोप पाया जाता है और उनको उस केस को कमिट करने की आवश्यकता होती है तो सैंक्शन लेना पड़ता है। अब सैंक्शन की स्थिति ये होती है कि राज्य सरकार उस पर लेकर के बैठे रहती है। उसमें अब 120 दिनों की बाध्यता बना दी गई है कि 120 दिनों के अंतर्गत राज्य सरकार को सैंक्शन देना होगा। यदि राज्य सरकार सैंक्शन नहीं देती है तो वो डीम्ड सैंक्शन माना जाएगा। इसी तरह से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, हालांकि उसकी चर्चा पहले हो चुकी है, कि चाइल्ड इन एब्सेंशिया का प्रोविजन किया गया है, उसको ज्वाइंट ट्रायल माना जाएगा और ज्वाइंट ट्रायल मान करके उसकी सुनवाई होगी और जो भी पनिशमेंट दे होगा उसको पनिशमेंट मिलेगा और उसके लिए उसको आकर के कोर्ट के सामने अपने पनिशमेंट के अगेंस्ट में अपील करना पड़ेगा। ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जहां तक प्रश्न है, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेशंस कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर होते हैं, उसकी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया उसकी संपत्ति की कुर्की जब्ती की जा सकती है। ये प्रावधान इसमें किया गया है। जो इम्पोर्टेंट प्रावधान किया गया है वो समरी ट्रायल का। समरी ट्रायल में जो पहले प्रोविजन था उसमें 2 साल जिस केस का पनिशमेंट होता था उसी को समरी ट्रायल के अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन आज उसको बढ़ा करके 3 साल वाले केसेस को जिसमें पनिशमेंट है उसको समरी ट्रायल के अंतर्गत रखा जाएगा, उसका समरी ट्रायल होगा। ऐसे केसेस की संख्या काफी है तो निश्चित रूप से जो लंबित कांड हैं और लंबित केसेज हैं उनकी संख्या में कमी आएगी। हैंड कफिंग के बारे में एक बीच में मामला काफी पेचीदा हो गया था। अब इस प्रावधान के अंतर्गत शुरू में अरेस्ट करने के टाइम में और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के टाइम में हैंड कफिंग सर्टेन मामले में की जा सकती है। उन सारे मामलों का विस्तृत वर्णन किया गया है, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और जो इम्पोर्टेंट कही गई है कि केंद्र सरकार द्वारा यदि दया याचिका प्राप्त होने पर राज्य सरकार से कमेंट प्राप्त होने पर 60 दिनों के भीतर यथासंभव शीघ्र अपने मंतव्य के साथ राष्ट्रपति जी को भेज देने की आवश्यकता है। और कोई भी केस का विड्रॉल तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि जो कंप्लेंट है उसकी राय नहीं ले जाए।
पहले क्या होता था कि जो दोषी पाए जाते थे वो निर्दिष्ट जो उनकी सजा की अवधि होती है उस अवधि के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने का मनमाने तरीके से उपयोग होता था। इस रिहाई में उन लोगों को रिहा करने का कोई प्रावधान नहीं है जिनको आजीवन कारावास दिया गया है या मौत की सजा सुनाई गई है। अब इस एक नए प्रावधान के अनुसार मंत्री और राष्ट्रपति जी के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई पत्राचार हुआ है तो उस पत्राचार को कोर्ट नहीं मंगा सकता है, उसका अवलोकन नहीं कर सकता है। यह प्रावधान इसमें किया गया है। आईपीसी की 4-5 मुख्य बातें हैं जो सभी ने अपने वक्तव्य में कहा है, लेकिन वो सेडिशन और वो मॉब लिंचिंग और ट्रायल इन एब्सेंशिया या इलेक्शन रिलेटेड जो मैटर्स हैं जो आईपीसी में लाए गए हैं, वो इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स जो है उस पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि उसके बारे में किसी ने कुछ कहना नहीं कहा है। ये एक चर्चा का विषय था कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में इलेक्शन से रिलेटेड जो केसेज हैं उनके बारे में ऑलरेडी प्रावधान किया गया है, तो इसको आईपीसी में लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कतिपय कारणों से इसको आईपीसी के अंतर्गत लाया गया है। कम्युनिटी सर्विस का जो प्रावधान किया गया है उससे कांडों की संख्या में काफी ज्यादा कमी आएगी और इस प्रकार का प्रावधान दूसरे देशों में है, खास करके अमेरिका वगैरह में इसका प्रावधान पहले से ही है। जो 2-4 बातें जो मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा, एक आईपीसी की धारा जो है 2021 और जो नए भारतीय न्याय संहिता में है, इसमें है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 years of age, सेक्शन 20। सेक्शन 21 है नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a child above 7 years of age and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on this occasion. It has been said about a child who is more than 7 years of age, and it has been said about a child who is under 12 years of age. Nothing has been said again about a child who is of 7 years of age. So what about a child who is 7 years of age? He is neither less than 7 years nor less than 12 years. धारा 420 क्या हुआ बताइए? 420 क्या हुआ है बताइए? 420 तो कौन है? 420 अभी क्या हुआ है बोले? 420 नहीं, 493 और 377 की बात कर रहे हैं। 420 क्या हुआ है बताइए ना, हम लोगों को जानना चाहिए। हाँ बिल्कुल। 420 क्या हुआ? आप बोलिए। धारा 377 और 483 ये सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में इसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारतीय समाज के नॉर्म्स के अनुसार और नॉर्म्स के दृष्टिकोण से ये न 377 समाप्त होना चाहिए और न 483 समाप्त होना चाहिए। ये दोनों प्रावधानों को रहना चाहिए। ये जो अब मेंटल इलनेस की जगह पर पुनः अनसाउंडनेस ऑफ माइंड स्थापित कर दिया गया है, इसलिए अब इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। बहुत सारे जो एरर्स थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, क्रॉस रेफरेंसेस थे, उन सारी चीजों को दूर कर दिया गया है। जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा को काफी विस्तारित कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक
जो डिजिटल रिकॉर्ड जो हैं उन सबको इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। एविडेंस को भी काफी विस्तारित कर दिया गया है। उसमें भी जो एक्यूज और विटनेसेस और एक्सपर्ट्स और विक्टिम्स ये सब के मीनिंग्स को काफी विस्तारित किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से इनको इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जा सकता है। एक अंत में बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि कुछ एक प्रोविजन अभी भी ऐसे हैं जिनमें मेरी व्यक्तिगत राय है कि उसमें जो सजा है वो कम है। जैसे फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो सजा है वो आईपीसी की सजा से ज्यादा है, बावजूद इसके इसमें सजा अपर्याप्त लगती है। इसी तरह से जो इम्पर्सनेट करता है किसी पब्लिक सर्वेंट को, उसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है 3 माह तक का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना, ये भी सजा कुछ कम लगती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है एज ए एक्स पुलिस अफसर मैं कहना चाहूंगा कि जब हम इस कॉलोनियल एरा की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि ये कानून ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था और ये कानून एक खास पर्पस के लिए बनाया गया था, उनकी खिलाफत जो करते थे उनको दंडित करने के लिए बनाया गया था, तो पुलिस को ब्रिटिशर्स ने कभी अच्छी निगाह से नहीं देखा, कभी उन पर विश्वास नहीं किया, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करने का उनका कारण था। आज जब हम नया कानून लेकर के आ रहे हैं, हालांकि इसके दोनों पहलू हैं, फॉर में भी है, अगेंस्ट में भी है, लेकिन जो स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस अफसर इज नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जो भी फ्री कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनमें उन्होंने विभिन्न माध्यमों से इसको सर्कमवेंट करके ये सुनिश्चित करने का कार्य किया है कि जो उनके समक्ष जो एविडेंस आता है वो किस प्रकार से सही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, और यदि वो किसी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं तो किस प्रकार से उनको दंडित करने का प्रावधान किया जा सकता है, ताकि ये जो भी आए, जो भी उनके समक्ष बयान आए, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। और गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके आधार पर उसको सबूत के तौर पर उतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे तरीकों से इस तरह की जो चीजें हैं उसको समाप्त की जा सकती है। और कितने साल तक पुलिस पर आप अविश्वास करते रहेंगे? इन्वेस्टिगेशन तो उन्हीं को करना है, केस डायरी तो उन्हीं को लिखनी है, तो केवल स्टेटमेंट उनके समक्ष जो आएगा उस पर कहिएगा कि ये इनएडमिसिबल है, इसको कोर्ट में इसकी मान्यता नहीं है, तो इस पर विचार किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये बोल दीजिए सर, अगर हाउस सहमति है तो 8 बजे तक। अगर हाउस सहमत है तो कार्य 8 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। हाउस का सहमत है? हाँ जी, धन्यवाद। श्री प्रिंस राज। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं आज अपने पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 3 कानूनों के समाप्त कर गए नए कानून लाने के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरगामी प्रयास के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर, हमने काफी अपने सहयोगियों को सुना, यहाँ वरिष्ठ सांसद उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। रविशंकर प्रसाद जी, श्री सर आपने खुद भी बहुत अच्छे विस्तार में अपनी बातों को रखा। यहाँ पे श्री विष्णु दयाल राम जी ने अपनी बातों को रखा और बहुत चीजें अच्छी तरीके से समझाई। इस बिल में क्या क्या चीजें नहीं हैं और क्या क्या चीजें हटाई गई हैं। सर, मैं बताना चाहूंगा, हम अपना अनुभव सर बताना चाहेंगे। आज से करीबन 10 साल पहले जब हम विदेश गए थे अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए,
लंदन गए थे, तो वहां पे जब हम वहां के लोकल से बात करते थे, वहां नागरिकों से बात करते थे, तो एक जगह ये बात उठ के आई, वहां हमें ये कहा गया कि क्या अभी भी वही सदन में आप लोग जाते हैं जो हम लोगों ने बनाए थे। लेकिन सर आप समझ सकते हैं हमें उस वक्त कैसा लगा होगा और आज हमें कैसा महसूस हो रहा है जब हम यहाँ खड़े होके ये बात रख रहे हैं अपने स्वदेशी सदन में, और ये जो अंग्रेजी कानून है इसको बदल के जो स्वदेशी कानून है उसके लिए हम बोल रहे हैं। तो सर आप महसूस कर सकते हैं हमें कितना फख्र हो रहा होगा आज के दिन। सर अंग्रेजी कानून, ये जो 3 अंग्रेजी कानून है, पहला इंडियन पेनल कोड 1860 जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 है, दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023, तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के रूप में स्थापित किया गया। सर ये जो कानून, ये जो 3 अंग्रेजी कानून थे, ये जब बनाए गए इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो उस वक्त के जो शासक थे, जो शासन कर रहे थे, उनको किस तरीके से उन्हें बचाया जाए और लोगों को किस तरह से दंडित किया जाए। लेकिन ये जो नए कानून जो आए हैं 3, इसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की सुरक्षा करते हुए न्याय दिलाया जाए, इसका प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया में सजा से केवल सर अपराध को रोकने के लिए के भावना से किया गया है, आवश्यकता अनुसार दी जाएगी। सर इससे हमारे क्रिमिनल जुडिशरी सिस्टम में बड़े पैमाने पे परिवर्तन आएगा। इस कानून में सर जब ये कानून बनाया गया, अभी हमने अपने अपने सीनियर्स को सुना, जब ये कानून का जब बनाया जा रहा था, इस पे करीबन 4 वर्षों से सर इस पे काम किया जा रहा था। करीबन 18 राज्यों, 6 केंद्रीय प्रशासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 जुडिशियल एकेडमी, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज, करीबन 142 एमपी के सुझाव, 270 एमएलए के सुझाव और कई जनता ने जो अपने सुझाव दिए हैं, वो सुझाव के मद्देनजर रखते हुए ये इसकी रचना की गई है। सर कानून में दस्तावेजों की परिभाषा को भी विस्तार दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एवं डिजिटल एविडेंस को भी कानूनी वैधता दी गई है और अत्याधुनिक तकनीकों का भी समाहित किया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को भी अनिवार्य किया गया है और दोष सिद्ध करने के परिणाम को बढ़ाने के लिए फॉरेंसिक साइंस को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसके लिए हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया। सर यहाँ पे जब कई बिल आते हैं तो बहुत चीजें इसमें होती हैं, लेकिन जो मुद्दा होता है हर एक चीज का, जैसे मान लीजिए हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, जब रेल बजट आता है तो लोगों की बस एक जगह कान टिकी होती है कि भाई हमें किराया कितना देना है। वही जब फाइनेंस बिल आता है तो लोगों को बस एक चीज होती है कि भाई हमारे पॉकेट से खर्चा कितना जाएगा, टैक्स कितना जाएगा। उसी तरीके से जो ये नया 3 कानून आया है, बहुत चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन हमें पूरा विश्वास है जो ये टीवी जो पूरा देश देख रहा है, सभी को बस एक चीज का इंतजार है कि भाई जो हम केस दायर करते हैं और जो सुनने को आता है तारीख पे तारीख, वो कम से कम हमें कितना कम में हो जाए। ये आज जो जनता है, देश की जनता, हमें लगता है इसके प्रति देख रही होगी। और हम अपने आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हम धन्यवाद देते हैं, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस चीज को गंभीरता से लिया। और जो आरोप पत्र है दाखिल करने का समय सीमा 90 दिन तय किया गया है। किसी विभिन्न परिस्थिति होती है, किसी तरह की कोई परिस्थिति आ गई तो उसमें 90 दिन को भी 90 दिन और उसको बढ़ाया जा सकता है, परमिशन लिया जा सकता है। कुल 180 दिन में जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। चार्जशीट मिलने के 60 दिनों में आरोप तय करने का प्रावधान है। बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर अदालत को सजा सुनानी होगी। इसके सालों सालों तक जो केसेस लटके होते हैं उसको जल्द से जल्द निष्पादन करने में इसमें आसानी होगी। सर सबसे अहम जो हमारा देश भारत जो कई सदियों से जो आतंकवाद से जो
लड़ाई लड़ रहा है। आज तो पूरा विश्व इस चीज को मानने को राजी हो गया है, पहले तो कोई नहीं मानते थे, लेकिन आतंकवाद, भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को भारतीय कानून के तहत लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इन कानूनों में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि अपराधियों को सजा मिले एवं पुलिस अपने अधिकारों का कम से कम दुरुपयोग ना करे। सर, इन तीनों बिल ऐतिहासिक है। इंडियन क्रिमिनल ट्रायल प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी का समावेश करने और कोर्ट में केसों को जल्द से जल्द निष्पादन करने के लिए इसकी आवश्यकता है। सर, इसमें ये चीजें जब आती हैं, हम बिहार से आते हैं सर, और आज भी हम जब अपने घर पे थे, कई हमारे समक्ष समस्याएं आती हैं, कई लोग अपना अपना ग्रीवांसेस लेके आते हैं। उसमें सबसे बड़ा ग्रीवांस ये होता है लोग के ऊपर अत्याचार। और जब गरीब लोग, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, या पिछड़ा वर्ग हो, या गरीब लोग हो, जब उन पे अत्याचार होता है तो वो, जब उनके समाज के लोग कहते हैं भाई केस मत करो, केस करोगे लटक जाओगे, सालों साल केस चलेगा, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा जमीन, तुम्हारा घर बिक जाएगा, लेकिन तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो सर, हमें ये लगता है कि ये जो निर्णय लिया गया है 3 नए कानून का, इससे सबसे ज्यादा फायदा हमारे SC, ST, OBC समाज और हमारे जो गरीब लोग हैं उनको मिलेगा। उनमें एक भरोसा जगेगा कि हाँ भाई, उनके साथ अगर अन्याय होता है तो वो जाके न्याय के लिए वो मांग कर सकते हैं। सर, मैं पुनः अपने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं। इन तीनों बिल लाने के लिए उनका धन्यवाद देता हूं। और अध्यक्ष जी, आपने मुझे आज बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। और मैं अपनी पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इन तीनों विधेयकों का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रिंस राज जी। तेजस्वी सूर्या जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर विषय रखने का मौका दिए हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। दिस अगस्ट हाउस is today witness to history in the making in the true sense. Because what we are enacting today is a historic reform that will touch the lives of 140 crore Indians, not just for today, but for centuries to come. And while doing so, we are ridding ourselves of a 162-year-old colonial baggage and are moving towards a Swadeshi Vyavastha at the time when Bharat is entering the Amrit Kal of its glorious period of history. I want to thank and congratulate Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and a very visionary Home Minister Amit Shah ji for piloting this historic reform of India's criminal justice law. Adhyaksh ji, if you will spend a minute to understand the context in which our criminal justice system came to be introduced by the British, it comes to light that all the 3 criminal justice legislations, the IPC, the CRPC, as well as the Evidence Act, were enacted right after the 1857 First War of India uprising, First War of India's independence uprising. The objective of the then British government, while introducing these 3 legislations, was to subject the natives, subject the Indians to such a criminal justice system that will obliterate, annihilate all kinds of possibilities of rebellion. So all the 3 laws, the
Indian Penal Code, the CRPC and the Evidence Act were all enacted with this intention of subjecting the native population to humiliation and making sure that their self-confidence was always subjected to insults. The British understood that there are two important aspects of a society that need to be controlled to completely colonize and destabilize a native population. One was education and the other was the criminal justice system. And Lord Macaulay, in his prophetic Education Minute, exhaustively mentions how the British tried to colonize, British tried their very best to remove from the memory, the civilizational memory of this country, our educational as well as criminal justice system that had been in practice for so long in the country. I must say today that when the country is the threshold of Amrit Kal, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we have enacted the National Education Policy 2020, and today we are enacting these three Sanhitas, which is going to replace the colonial code, and in the true sense, we are moving away from colonization of education and colonization of our criminal jurisprudence. Today marks an important day also, Speaker sir, because for about 160 long years and almost 7 decades after independence, the country's criminal justice system followed legislations which were made by the British, made for the welfare of the British, and made in Britain. Today, in those places, we are enacting a law that is made by Bharat, made in Bharat, and made by Bharatiyas for the welfare of Bharatiyas. This marks a very important step in our decolonization journey. While we are here, I would want to draw the attention of this House, Speaker sir, to another important aspect of the British criminal jurisprudence, of how vicious the intent of the British was while bringing and enacting these legislations. One of the biggest examples of this intent of the British is in the example of the Criminal Tribes Act of 1871. Speaker sir, in 1871, the British Raj enacted a legislation called the Criminal Tribes Act, under which large communities, large tribes were declared as criminals by birth, and they were subjected to multiple humiliations and restrictions. There were police manuals that were drafted enumerating long lists of how these criminal tribes must be dealt with, how they must be punished, how they must be abused. And for a long time, even after independence, Speaker sir, many of our jail manuals contained these very provisions, and many tribes which were enumerated in these Criminal Tribes Act faced severe humiliations both legally and socially. Many of the major castes of Hindu society, Ahirs, Gujars, Lodhi, Chamars, Pasi, like this, this was the word that was used by the British. Yes, it is unparliamentary. This was the words that were used by the British. Many of these communities, more than 130, 140 of them, they were declared as criminals by birth. And by 1947, at the time of our independence, more than 2 crore people existed in this country who were criminals by definition as criminals by birth. This was the intent behind the criminal justice system of the British. This is just to show, this is just to explain
the monumental difference that we are today making by moving out of the dark shadow of the British's criminal justice system and moving towards a completely Indian and Swadeshi justice system. I would suggest the names that have uttered should be removed. Only the numericals, Adhyakji, that is to be. with respect to the changes that have been made in these three legislations, I want to take a few minutes to highlight some very important changes. Under the BNS, importance has now been given, precedence has now been given to crimes against women and children. And some of the most important changes that have been made keeping in mind the protection, empowerment and justice delivery for our sisters in the country. Not only the precedence in numbering reflects this intent of the government, but also providing for death penalty for gang rape of a minor girl is introduced for the first time. Most importantly, we are witnessing over the last few years a concerted attempt by a certain vested interest groups of suppressing their identity and luring young women under the false pretext of marriage. Even this has been declared an offense and stringent provisions have been made to punish such attempts. We also keep observing, Speaker sir, that there are multiple instances of hit and run cases, what we refer in a colloquial term. In most of these hit and run cases, it is always the rich who hit and run and who are the poor, who do not have access to justice, who do not have access to power, who are left fighting for justice without any support. For a long time, this offense of hit and run was not codified, was not declared an offense. That has now been brought in. As also, offenses like chain snatching and mobile snatching, which is, if you go to any police station today, there is a board always in the police stations. If you will see, most of the cases that are reported in urban areas, at least in the country, are these chain snatching and mobile snatching cases. But unfortunately, we did not have a penal provision to deal with this. This has been added. We have also seen that whenever there are protests, in the name of displaying outrage, certain anti-social elements use that opportunity to damage public property. And public property amounting to crores get damaged. For the first time, under mischief, by expanding the provision, damage to public property has also been made an offense. And hereafter, any anti-social elements who will indulge in any such activity will be facing the music of the law. There were many provisions which were reflective of the colonial and Victorian morality of that era. Both sections 377 and section 497, which dealt with adultery, were a reflection of this Victorian morality. Both of that has been omitted, and we have now truly moved away from a pre-colonial legislation system to a post-colonial indigenous system. Speaker sir, another aspect that gives us a great amount of joy is that for a long time, the Indian Penal Code was not fully applicable to the whole of India. It was applicable to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. And in Jammu and Kashmir, we had the Ranbir Penal Code that was in existence. With this act and with the abrogation of the Article 370, the BNS will be applicable to all states of India, including the state of Jammu and Kashmir. This is another very important historic step that this Parliament has taken with this enactment. While these are some of the important changes that have been made to the BNS, the Criminal Procedure Code was also crying for reform. Many committees, the mention of which has been made earlier, made reports on reports, committees gave
voluminous suggestions, but none of that was implemented by earlier governments. Because the Criminal Procedure Code is that procedural law which is the foundational law on which criminal justice system is adjudicated, delivers justice. But it was the discrepancies inherent in the CRPC that led to the vast number of under trials that we have, pendency of cases that we have, the complexity of criminal justice system that we have, and the whole justice delayed is justice denied kind of a feeling that a large number of people in this country felt. That going to court itself was a punishment, was a vexatious issue. Many major changes are made under the CRPC to address the complexity of the procedure and make it more simple, keeping in interest, keeping the citizen in interest and keeping the victim as well as the informant, protecting both their interests. For example, it has been provided that no arrest shall be made in any case of an offence punishable for a term of less than 3 years, and if the person has infirmity or is above the age of 60 years, he cannot be arrested without prior permission of the officer, not below the rank of DSP. Speaker sir, we are aware how in many cases, especially in 498 in dowry cases, senior citizens are harassed even at the cost of false cases that are registered. Even though the Supreme Court in multiple instances, even in Lalita Kumari and many other judgments, has enumerated that arrests should not be made whimsically, arbitrarily. Experience tells us that this was not followed. For the first time, by codifying this as a principle, interests of those people who are weak, senior citizens, are protected from arbitrary arrest. The provision on mandatory video conferencing during search and seizure also keeps in mind the interest, also tries to balance harmoniously the interest of the victim as well as the need for transparent and fair judicial systems. We have also come across in our own experience people coming to MPs, people coming to MLAs with complaints that they went to the police station, but the police did not file an FIR saying that it does not come under their jurisdiction. वो भागते रहते हैं बेचारे यहाँ उधर उधर. By the time he finds out which police station comes under his jurisdiction, time would have lapsed and FIR and its sanctity would have lost meaning, and multiple instances cases have gotten quashed at courts because of the delay in filing of FIRs. For the first time, through zero FIRs and EFIR, this paradigm change has been brought in our criminal justice system, where an individual can report a case, file an FIR of a cognizable offence any part of the country, and it is mandated on the part of the police to register the case and then forward the complaint to the concerned police station for investigation. This is again a very, very welcome move. In addition to that, it has come to our experience that when a complainant or an informant goes to a police station, files a case, after filing of the FIR, he is not aware as to what is the status of the case, what is happening with it. He will have to repeatedly go meet the station house officer. He is not aware, goes to the DCP's office, standing for hours together. He is not aware of the status of the case, status of the investigation. But in this Sanhita, it has been mandatory, provided that the police officer in 90 days shall inform the progress of investigation to the informant or victim by digital means. This is again an attempt at making the citizen the center of the criminal justice system and not the crown. In addition to that, one of the biggest challenges that our criminal jurisprudence, our criminal justice system faced was the abysmally low conviction rates. If you compare our conviction rates to more advanced jurisdictions like Israel or Australia, our conviction rates is abysmally low. One of the reasons for this low conviction rates
is the quality of evidence that is submitted before our courts. To address that, especially in serious offences, it has been made mandatory for forensic science experts to visit the crime scene to collect forensic evidence in all cases that are prescribing punishment for 7 years or more. Speaker, sir, this is a truly revolutionary provision, because not only is this going to enhance our conviction rates, it is also going to protect those innocent, but those who are facing false allegations and false charges. Because one of the foundational principles of an effective functioning criminal justice system is to punish the guilty and to protect the innocent. And that can be done if our quality of evidence, the quality of our quality of evidence submitted before the court is increased, and this is a very important provision in that regard. Speaker, sir, the other big affliction, ailment of India's criminal courts is the delay in dispensation of justice. The moment a case is filed, you never know when the justice is finally dispensed with. And going to the courts itself is a vexation, is a punishment for both the victim, his family, as well as the accused. For the first time, investigation, submission of charge sheet, investigation pursuant to filing of charge sheet, pronouncement of judgment, all of these have been time bound by the statute itself. And even seeking of adjournments, which was a common practice for all, many lawyers who are in the house who have practiced in the criminal courts, we are aware that seeking of adjournments as a matter of right is a practice seen in our session courts, in our trial courts. And every delayed date creates a burden not just on the exchequer, but also on the families of both the informant, the victim, as well as the accused. For the first time, even this arbitrary adjournments has also been dealt with under the CRPC, where it has been provided that where the circumstances are beyond the control of a party, not more than 2 adjournments may be granted by the court after hearing the objections of the other party and for the special reasons to be recorded in writing. In a sense, this provision will make sure there is mukti from unlimited and arbitrary adjournments, which is a big ailment of this system. We have also seen, Speaker, sir, that in many cases, even serious cases, which has a political color, if there is a change in dispensation, the new government drops the prosecution of these cases. In Karnataka, the previous edition of the Siddaramaiah government dropped more than 1,600 cases belonging to the now banned and declared terrorist organization like PFI to meet their vote bank politics. And in many instances, Speaker, sir, these were very serious cases. Murder, culpable homicide, organized crimes, terrorist activities. More than 1,600 cases were dropped. And in many instances, even the victims were not heard. For the first time, under the amended CRPC, under the new Sanhita, it is mandated that where prosecution is supposed to be withdrawn, especially in cases where the punishment is 7 years or more, the victim side shall be given an opportunity of being heard. This is again a very important step in not only diluting political interferences in criminal justice system and prosecution, but also placing the interest of the citizen, the victim, over and above the interest of the state. One of the points that
Ravi Shankar Prasad ji made was about the condition of our under trials. Speaker sir, I remember when you had made an intervention earlier when the bill was proposed 4 months ago, you also had highlighted the attention of this House to the condition of our under trials. Lakhs of people who may be otherwise innocent are languishing in our country's jails because the wheels of justice are moving so slowly and painfully slowly. In many of these instances, most of these instances rather, the under trials are young people. Any third year or a fourth year law student who would have visited a jail will understand that 80% of under trials are young people who are staring at a bleak future just because his cases are not being heard properly. In many instances, Speaker sir, they would have completed more time as an under trial than what they would have faced had they been convicted of that offense. To address that issue, a new provision has been made that if a person is a first-time offender, he shall be released on bail by the court if he has undergone detention for the period extending up to 1/3 of the maximum period of imprisonment specified for that offence. It has also been made mandatory that where the under trial completes 1/2 or 1/3 of the period, it will be the duty of the jail superintendent to forthwith make an application in writing to the court in this regard. Speaker sir, I want to take a couple of minutes at the end to only highlight some monumental changes that have been made in the Indian Evidence Act. One of the biggest challenges that our courts would face in evaluating and appreciating evidence in today's day and age, where digital, IT, electronic evidence play such a vital part of our everyday communications, was that our Evidence Act was not equipped to handle and appreciate the quality of electronic evidence. The thrust of the changes that have been made in the Evidence Act, which is now going to be replaced by the Sakshat Bill, is the importance placed on electronic evidence, digital evidence, and new age mediums of communication and presentation of evidence before the court. Evidence as has primary also... evidence. Speaker sir? As primary evidence. Earlier, some electronic equipments were used as secondary. As secondary evidence. I'm coming there, Speaker sir. I want to explain this with an example. Speaker sir, you must be aware, the House must be aware, that very recently, in the famous case of Akbaruddin Owaisi, he was acquitted. He was acquitted. Don't mention the name. That name should mention it. He was acquitted, Speaker sir, on the premise that the person who recorded the speech did not provide the original DVD-R to the investigating officer. But the speech was broadcast live and millions of people all over the country, all over the world were witness to it. But the court ruled that the digital evidence that was submitted before it was not admissible because the person who recorded the original DVD did not provide it to the investigating officer. So all other copies which were available online, which were available at the time of making of this speech, were not considered either as primary evidence or as secondary evidence and were rejected. This was a major lacuna in our Evidence Act. That has been addressed by expanding the definition of primary evidence. And in the new section 59, in the definition of primary document, new explanation has been added. And a video recording is which is simultaneously stored in electronic form and transmitted or broadcast to another. In such a case, each of the stored recordings is considered as original. So had this
bill gotten enacted a few years ago, the fate of that person who made the hate speech would have been very different than what it is today, Speaker, sir. In addition to that, the provision has been also made to provide evidence, make available evidence through appearance of witness, accused, victims through electronic means. We have seen how in many instances cases have gone on forever because either the witness or the expert witness or any other person could not appear before the court physically. Please conclude. So all of these are important changes that have been brought to the criminal justice system by the enactment or the introduction of these three important legislations, Speaker, sir. Speaker, sir, I must place on record the gratitude of millions of young Indians today, because I represent the demography in this House, for bringing this monumental reform. Because this is a philosophical change in the way we are approaching our citizens. This is a philosophical difference in the way the country and the country's criminal justice system is viewing our own people. This marks a departure from the colonial era legislations. And Speaker, sir, the United Kingdom and its press were aware that Narendra Modi government will herald and usher in such reforms. And they knew this on the very day that the people of this country gave Narendra Modi the mandate in 2014. I want to conclude by reading 4 lines from the editorial of the Guardian newspaper from the 18th of May 2014. On the 18th of May 2014, just after the election results were declared and the country's people had elected Prime Minister, elected Modi ji to be the Prime Minister of the country with an overwhelming mandate, the Guardian wrote in its editorial, today, 18th May 2014, may well go down in history as the day when Britain finally left India. Narendra Modi's victory in the elections marks the end of a long era in which the structures of power did not differ greatly from those through which Britain ruled the subcontinent. India under Congress was in many ways a continuation of the British Raj by other means. This was an observation, not by an Indian newspaper. This was not an observation done by the Panchajanya or the RSS organizer. This was the observation that was recorded by the Britain's foremost newspaper, The Guardian, on the day the people of this country voted Narendra Modi ji to office in 2014. And what has followed since then is a conscious effort towards decolonization of this country through the education policy and now through this historic sanhitas which are going to overhaul the delivery of the criminal justice system in India. Finally, the meaning of the word Swarajya has attained true meaning because the country is moving towards respecting Swabhasha, Swadharma and Swadesha. Thank you so much, Speaker, sir, for Thank this you, opportunity. Tejaswi ji. Now we'll hear another former police officer who practiced IPC, CRPC and Indian Evidence Act, Sri Satpal Singh ji. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर दे और समय देने के लिए मैं आपका तथा अपनी पार्टी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन तीनों बिलों के भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के समर्थन में खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, इन बिलों पर बोलने में मेरे लिए कि ऐतिहासिक दिन भी है और मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात भी है। I restrain you. Don't utter such words inside the house. No. This is going beyond limit. I am.
everyone. But you are a single member in the House and you will speak when your turn will come. You have to wait for the direction of the Honorable Speaker and accordingly it will be decided. You take your seat. You take your seat. You will be allowed to speak, but you have to take your seat. You have to take your seat. You will be allowed to speak, but you have to take your seat. As a member of the House, you will be allowed to speak. Repeatedly, I have been saying this. And you stop casting aspersion on the chair. That you have done. That you have done. I don't want to quarrel with you inside this House, Mr. Satpalji. Everybody has been waiting. I have a long list with me. I am not sitting here to answer your questions. सतपाल जी। अध्यक्ष महोदय, इन बिलों पर बोलने के लिए मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन भी है और बड़ा सौभाग्य का समय भी। इसके दो कारण हैं। जैसे आपने कहा, पुराने कानूनों को लागू करने के लिए और करवाने के लिए मैंने 33-34 वर्ष इस देश की सर्वोत्कृष्ट पुलिस सेवा में बिताए। बहुत बार, यस सर, थैंक यू सर, यस सर। सर, मैंने बहुत बार देखा जब कोर्टों से फैसला आए, मैंने पुलिस को, राज्य सरकारों को, क्योंकि मैंने सीबीआई में भी काम किया, मैंने केंद्र सरकार को, इन एजेंसीज को अपने को असहाय पाते हुए देखा। मैंने पीड़ितों को, विक्टिम्स को कराहते हुए देखा। मैंने अपराधियों को और गुनहगारों को कानूनों की खिल्ली उड़ाते हुए, हंसते हुए देखा। क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लोग बोलते थे, जब से सर्विस हमने ज्वाइन करी, ये बार बार हम लोग सुनते थे कि इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्यायिक व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे बहुत बार, जैसे आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे, मैंने मुंबई जैसे शहरों में काम किया और कई बार पुलिस, क्योंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल होता दिखता था और इसलिए पब्लिक के प्रेशर में, सरकार के प्रेशर में बहुत बार पुलिस जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड्स को भी अपनाती थी, जिसको लोग एनकाउंटर्स कहते हैं, पुलिस एक्शंस कहते हैं। समय मिलेगा तो मैं कुछ उदाहरण भी देना चाहूंगा। और मेरा दूसरा सौभाग्य इसलिए भी है बोलने के लिए कि इस हाउस में आने से पहले, इन बिलों के पेश होने से पहले, जिन स्टैंडिंग कमेटी के सामने, गृह विभाग की जिस स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये बिल आए, उस होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी का भी मुझे एक सदस्य होने का सौभाग्य मिला। इन बिलों पर चर्चा करने का और अपने विचार रखने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात, क्योंकि हम लोग एक सत्य सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं, इस सत्य सनातन संस्कृति के मूल और सार्वभौम ज्ञान के मूल वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र आया। वो मंत्र है, ओम इंद्रम वर्धन्तो काप्तुरः किरणमन्तो विश्वमार्यम अवघनन्तो रावणे। ये मंत्र मैं इसलिए भी कोट कर रहा हूं कि 2011 में मुझे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाने का मौका मिला और हमारा एक पुलिस ऑफिसर्स का एक ग्रुप था, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का। वहां पर जो अंग्रेज लोग आए, उनके जो प्रोफेसर्स थे, ये बात बड़े गर्व के साथ कह रहे थे कि सारी दुनिया के अंदर पुलिसिंग सिस्टम हमने दिया है, चाहे वो इंडिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, सब जगह हम लोगों ने पुलिसिंग सिस्टम दिया। मैंने उस समय भी उन अंग्रेजों के सामने, उन प्रोफेसर लोगों के सामने मैंने इस मंत्र को कोट किया था
और ये मंत्र ये कहता है, अगर हम जीवन में, समाज में, राष्ट्र में सुख, समृद्धि, शांति चाहते हैं, अगर हम सम्मान चाहते हैं, सतत प्रगति करना चाहते हैं, तो देश में कानून का राज चाहिए, रूल ऑफ लॉ चाहिए, सबकी सुरक्षा, सबको न्याय, सबको यथावत आजादी। इस मंत्र के अंदर ये कहा गया, नंबर 1, अच्छे विचारों, परंपरा, रीतियों, व्यक्तियों और संस्थाओं का संरक्षण करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। इंद्रम वर्धन तो अब तुरह। दूसरा, अबोध, अज्ञानी, दुर्व्यसनी, आपराधिक प्रवृत्ति वालों को समझाओ, उनको शिक्षा दो, कानून बनाओ और कानून का प्रचार और प्रसार करो। और तीसरा ये भी कहते हैं कि अब घनन तो रावण है, जिनको सुधारा नहीं जा सकता, जो सुधरना नहीं चाहते, जो इनकॉरिजिबल, अंग्रेजी में जिसको इनकॉरिजिबल बोलते हैं, ऐसे दुष्टों को, सातिर हार्डकोर अपराधियों को, आतंकवादी जिहादियों को, चरमपंथियों को, उनका दमन भी होना चाहिए, समन भी होना चाहिए, दफन भी होना चाहिए और उनका जरूरत पड़े तो उनका वध भी होना चाहिए। और मैंने कहा था, इस देश और दुनिया के अंदर, क्योंकि भारतीय संस्कृति सबसे प्रथम संस्कृति विश्ववारा, सारी दुनिया को कानून सिखाने वाली, सारी दुनिया को संस्कृति सिखाने वाली इस देश की संस्कृति रही। उन्होंने इसको हमको किया। इन तीनों उद्देश्यों को लेकर के मैं कहता हूं आज के विधेयक आए हैं। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे संगठन सरकार में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का मैं अभिनंदन करता हूं। हम ये भी कहते हैं कि इंसाफ और न्याय से बढ़कर के दूसरा कोई अमृत नहीं, दूसरी को दवाई नहीं। और इस अमृत काल के अंदर ये तीनों विधायक, तीनों बिल मुझे लगता है इस अमृत काल का एक आधार बनेंगे। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कहा था, इस पुरानी आपराधिक न्याय व्यवस्था में जो अभी तक चालू है उसमें बहुत कमियां थी और कई बार हम लोगों ने जब से सर्विस ज्वाइन करी, हमने जजों को भी सुना, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी सुना, इस देश के चीफ जस्टिस को भी सुना। सब लोग ये बोलते थे कि इसमें सुधार होना चाहिए, करना चाहिए। बहुत कमियां थी। लोग बोलते थे, आज आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी भी कह रहे थे कि जिस प्रकार का एक जटिल समस्या, जटिल व्यवस्था थी, इस जटिल व्यवस्था के अंदर लोगों को, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता था। बहुत खर्चीली, वर्षों तक केस पेंडिंग है। कुछ तो कई की पीढ़ियां मैंने सीबीआई के अंदर देखा काम करते हुए, 30-40 वर्षों तक क्रिमिनल केस जो है हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग रहे और उसमें इन्वेस्टिगेशन की भी तो प्रमाण की उसकी आज्ञा नहीं दी गई। ऐसे बहुत केस मैंने देखे हैं। जिसको हम न्याय का मंदिर मानते हो, वह न्याय अगर मिलता भी इतनी देरी से मिलता, जैसे आप भी कह रहे थे कि जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं देश के, श्री KR नारायणन जी, उन्होंने एक बार चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस में को एड्रेस करते हुए कुछ बातें कही थी। मैं उनको कोट करना चाहता हूं। और उन्होंने कहा था, द कोर्ट्स इन इंडिया, द कोर्ट्स ऑन इंडिया आर नॉट कैथेड्रल, दे आर नॉट टेम्पल्स। द कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट कैथेड्रल, बट दे आर कैसिनोज। वो जुआघर है, दे आर कैसिनोज। Judgment depends on the throw of the dices. Judgment depends on the throw of the dices by the advocates, which are the advocates जो भी throw फांसे फेंकते हैं, उनके ऊपर judgment depend करता है। Judges do not give justice. Justice do not give justice. They give judgment. They give judgment. They pronounce judgments according to the evidence put up before them. Here the accused is more protected देन द विक्टिम। और भी हम लोग जो मालूम है, केस हमको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रात के अंधेरे में, रात के 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है। पहले इसे हुआ, ऐसे केसेस हैं, और वो भी आतंकवादियों के लिए, जो आतंकवाद के उसमें जो बड़े बड़े बम ब्लास्ट में जो लोग लिप्त थे, उनके रात के अंधेरे में 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल जाता है। पर गरीब लोगों के लिए 10 को लग जाते उनको सुनने की जब बारी आती है। इसलिए मैं कहता हूं कि कई बार जो है ये हमारे जो कोर्ट, हमारा जो पुराना सिस्टम था,
ये बात पहले भी आई है कि कोर्ट में लगभग 5 करोड़ केस अभी भी पेंडिंग हैं, जिसमें अराउंड 4.3 करोड़ जो जिला कोर्ट में पेंडिंग है। लो कन्विक्शन रेट, इवन रेप में, मर्डर के कई बार हम लोगों को मालूम है, जज भी समझता था कि मर्डर इसने किया है, रेप इसने किया है, लेकिन कन्विक्शन नहीं होता था। कमियां बहुत हैं, कोर्ट पुलिस की कमियां निकालते हैं, पुलिस वाले कोर्ट की कमियां निकालते हैं, विटनेस होस्टाइल हो जाते हैं, का कारण बहुत हैं। और कई ऐसे भी हमारे इस आईपी अभी जो आया है न्याय संहिता के अंदर, कुछ अपराधों के अंदर दंड की राशि बहुत कमी थी। 10 रुपए का भी दंड, 100 रुपए का भी दंड, 500 रुपए का भी दंड, जिसकी आज कोई कीमत नहीं है। अंडर ट्रायल की बात पहले आ चुकी है कि 77 to 80% अंडर ट्रायल है। आधुनिक तरीका का कोई इस्तेमाल नहीं था, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट ट्रायल की कोई सीमा नहीं थी। हम लोग ये बात पहले भी आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी ने कही है, इसलिए मैं उस विषय में डिटेल में नहीं जाता कि नेशनल पुलिस कमीशन से लेकर जब हम लोगों ने सर्विस ज्वाइन करी 1978 के अंदर, इस देश के अंदर जो उस समय चल रहा था, नेशनल पुलिस कमीशन बना था। उससे लेकर के लॉ कमीशन है, बैज बरुआ कमेटी बनी, विश्वनाथन कमेटी बनी, मनीमत कमेटी का 2003 में रिपोर्ट आई, बहुत ही बड़ी जो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जिसको बोलते हैं इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, लेकिन वो धूल खाती रही। माधव मेनन कमेटी आई, सभी ने इन क्रिमिनल कानूनों में संशोधन करने के लिए और इस क्रिमिनल सिस्टम में सुधार करने की बात करी, लेकिन नहीं हुआ। हमारी होम अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी ने 3 बार 2005 में, 2006 में, 2010 में अपनी 111वीं, 128वीं, 146 रिपोर्ट के अंदर कहा कि पूरे के पूरे इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो है सुधारना चाहिए, आमूल चूल परिवर्तन इसके अंदर करना चाहिए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। इन कानूनों का बदलने का श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी जी को ही जाता है, और इसलिए जब मोदी जी का भाग्य कहो या हम सब लोगों का सौभाग्य कहो कि हम सब लोग इसके साक्षी बन रहे हैं इस ऐतिहासिक दिन के, कि काम जो है मोदी जी के हाथों हो रहा है। चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे इस नए संसद भवन का निर्माण हो, चाहे जम्मू कश्मीर 370 धारा खत्म करना हो, 3 तलाक खत्म करने हो, महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, या ओबीसी आयोग बनाने की बात हो, इन सब का श्रेय जो है आदरणीय मोदी जी को जाता है। और मेरे इस विचार सबसे बड़ा काम जो है, लेकिन इन सब बातों से अध्यक्ष महोदय मेरा ऐसा मानना है, इस देश के 140 करोड़ देखो आज जो लोग हैं, ये केवल नहीं लेकिन अगले आने वाले मुझे लगता है 100-150 वर्षों तक लोगों को न्याय देने का जो काम जो है ये कानून करेंगे। इसलिए मैं इन कानूनों को कहता हूं कि सबसे बड़ा ये जो हमारे इस सरकार का, जो मोदी सरकार का जो सबसे बड़ा योगदान इस देश की जनताओं को होगा, इन 3 कानूनों को देना है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हम लोग कहते हैं कि दास्ता के सारे चिन्ह जो है खत्म होना चाहिए, और ये हमारे इस बार जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि गुलामी के सारे चिन्ह हमारे खत्म हो जाए। और मैं, हमारे मित्र अभी तेजस्वी सूर्य ने एक बात कही थी और गार्जियन पेपर को उन्होंने कोट किया था, मैं उसको नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से एक के बाद एक दास्ता के जितने कम है, धीरे धीरे कम के उसको जो खत्म किया जा रहा है। इसलिए 1562 पुराने जो कानून थे, अंग्रेज जमाने के कानून थे, जिसको रिडेंडेंट या जिसको बोलते थे कि वे एकदम जो है ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, उनको जो है हमारी सरकार ने आकर के उनको खत्म किया। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में गृह मंत्रालय को यह निर्देश दिया कि भाई पुराने सारे आपराधिक कानून को बदल कर नए कानून लाए जाए, और उसी दिशा में आदरणीय गृह मंत्री जी नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने बड़ी तत्परता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ जो है काम आरंभ किया। कुछ मैं जरूर बताना चाहता हूं, मैं डेट के साथ कुछ बताना चाहता हूं, वैसे मोटी मोटी बातें आई हैं कि 7 सितंबर 2019 को आदरणीय गृह मंत्री देश के सभी प्रदेशों को, यूनियन टेरिटरी के गवर्नर्स को, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को, मुख्यमंत्री को, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर सबको जो है पत्र भेजे कि इन अपने सुझाव भेजे। 6 जनवरी और 7 जनवरी 2020 को भी पत्र लिखे अपने मुख्य न्यायाधीश को, सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, बार काउंसिल्स को, लॉ यूनिवर्सिटीज को, लॉ इंस्टीट्यूट्स को,
2 मार्च 2020 में एक कमेटी बनाएगी जो हमारे नेशनल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर के उसके नेतृत्व में 31/12/2021 को फिर जो है सभी एमपीज को, दोनों हाउसेज के एमपीज को, लोकसभा राज्यसभा के सबको पत्र लिखे, अगर उनका कुछ सुझाव उनको सुझाव देना चाहिए। और इसने इस कमेटी के अंडर में इन्होंने फिर सब लोगों से सुझाव मांगे। पूरे देश से सब जितने एक्सपर्ट थे, डोमेन एक्सपर्ट थे, अपने जजेस थे, विधायक, अपना लॉयर्स थे, सिविल सोसाइटी थी, लॉ यूनिवर्सिटीज थी, पर सबसे सजेशन मांगे। और इनके सब सजेशन आने के बाद सीबीआई, आईबी, बीपीआरडी जो हमारे पुलिस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और लगभग 1000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स ने अपने जो सुझाव जो थे वो एमएचए को भेजे। और इस रिपोर्ट आने के बाद जो रिपोर्ट जो है कमेटी ने रिपोर्ट जो एमएचए को फरवरी 2020 में दी। और जैसे पहले भी ये बात आ चुकी है कि मुझे नहीं लगता इस देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में, दुनिया का कोई भी गृह मंत्री, कोई भी मंत्री नए कानून बनाने के लिए 158 टाइम्स उस मीटिंग में शामिल रहा हो और उस मीटिंग का जो है उन्होंने अध्यक्षता की हो। मुझको नहीं लगता ये ऐसा कहीं कहीं आपको हमको मिलेगा। हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी, और जैसे मैंने कहा था 11 अगस्त को ये जो कानून जो थे इस लोकसभा में पेश किए गए, तभी हमारी स्थानीय संसदीय कमेटी को सौंपे गए। मैं हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी के जितने भी सदस्य थे, हमारे जो चेयरमैन रहे ब्रजलाल जी, उनको और जितने भी हमारे सदस्य रहे, मैं सबका भी बड़ा धन्यवाद करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि सब लोगों ने बहुत गंभीरता के साथ इन तीनों बिलों पर चर्चा की और अपने विचार उसके अंदर दिए। और उसी के परिणाम स्वरूप अब ये जो आए हैं उसमें कुछ सुझाव भी थे, भाषाओं की कुछ गलतियां भी थी। उसी के परिणाम स्वरूप पुराने बिलों को वापस लिया सरकार ने और 12 दिसंबर को दोबारा इनको जो वो किया गया। इन कानूनों का जो मुख्य उद्देश्य है देश की कानून व्यवस्था को बहुत अधिक मजबूत करना, लीगल प्रोसेस जो न्यायिक प्रक्रिया उसको सरल व सुगम बना ताकि एक जो गरीब आदमी उसका फायदा उठा सके, सामान्य गरीब आदमी को त्वरित न्याय मिल सके, एक नागरिक सेंट्रिक, नागरिक केंद्रित, जिसको सिटीजन सेंट्रिक बोलते हैं, एक न्यायिक व्यवस्था प्रदान करना और लोगों का जीवन जीना आसान बना, जिसको हम बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग। और वर्तमान में ब्रिटिश जमाने कानूनों का उद्देश्य केवल, जैसे पहले भी आपने भी कहा था ये अध्यक्ष महोदय, कि न्याय के बजाय लोगों को जो है दंड देना, उसका मुख्य बदलाव का काफी बात आ चुकी है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। कुछ हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी में हमारे कुछ सम्मान्य सदस्य थे, उनका एक बड़ा आक्षेप था, विशेष रूप से जो अपने तमिलनाडु के जो हमारे, दुर्भाग्य से आज वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका सबसे बड़ा जो आक्षेप था वो आक्षेप ये था कि इन कानूनों के अंदर भारतीय नाम क्यों रखा गया। भारतीय नहीं होना चाहिए था, भारत नहीं आना चाहिए था, ये इंडियन होना चाहिए था। मैं तब भी बोला था, आज उस बात को मैं रिपीट करना चाहता हूं। इंडिया दास्ता का गुलामी का चिन्ह है, भारत हमारा गौरव है और इसलिए हमको जो है इसका भारतीय नागरिक चाहिए। हमारा जो हमारे देश के अंदर, जैसे मैंने कहा, हमारे सत्यमेव जयते भारत सरकार का उस संस्कृत के अंदर है। आर्मी का जो है मोटो है सेवा अस्माकम धर्मो, वो संस्कृत के अंदर है। हमारा समम वो वरुण है, वो नेवी का मोटो है। नभ है स्पर्शम दीप्तम, वो एयरफोर्स का मोटो है। ये ऐसे है सुप्तेश उजागरती, ये हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया का है। आईबी हमारा उसका जागृति है, निशम है। इनकम टैक्स का कोसा है, मूलो डंडा है, ये हमारा इनकम टैक्स का है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे उसके देश का बहुत से हमारे देश के अंदर जो है, जो हमारी संस्थाएं हैं, इस देश की संस्थाएं हैं, उनका जो है ये जिसको हम बोलते हैं उनका, हमारा सुप्रीम कोर्ट का यतो धर्मस्ततो जाए, सुप्रीम कोर्ट का मोटो ही है यतो धर्मस्ततो जाए, वो भी संस्कृत के अंदर है। और आप जब कुछ आश्चर्य होगा अगर वो सामने होते, मैं उनको बताता, जो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे, हमारे तमिल के फ्रेंड, उनके ज्यादातर उनके नाम, उनके परिवार के सदस्यों के नाम वो ज्यादातर संस्कृत में है। और मुझे लगता है कि दे शुड नॉट बी अपोलोजेटिक अबाउट इट, दे शुड बी प्राउड ऑफ इट, एंड आई अप्रिशिएट दिस कि द कोर कल्चर ऑफ तमिलनाडु इज इंट्रिंसिकली लिंक्ड टू भारतीयता। ये हमको इस बात पर गर्व होना चाहिए। एक तो मैं कहना था, उन्होंने कहा कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन का 348 जो आर्टिकल है, आर्टिकल 348 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है
कि जो भी हमारे ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट हैं, ऑल बिल्स एंड एक्ट शुड बी इन इंग्लिश अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। इसने कहा कि नहीं, उसमें इंग्लिश में होना चाहिए। मैं कहता हूं अध्यक्ष महोदय, अब समय आ गया है, मैं भारत सरकार से माननीय मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इस सेक्शन को भी, इस आर्टिकल को भी आज बदलने की जरूरत है कि हमारे जो है, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर सारी की सारी प्रोसीडिंग्स इंग्लिश के अंदर होगी। ये भी 348 आर्टिकल बोलता है, और जो हमारे जितने टेक्स्ट है, जितने बिल हैं, उसका इंग्लिश में वो होना चाहिए। इसको आज बदलने की जरूरत है। ये भी एक दास्ता का निशान है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर सारा का सारा जो हियरिंग होगा, जो जजमेंट आएंगे, वो सब इंग्लिश के अंदर होंगे। एक तो मैं कहना चाहता, मैं अपनी कुछ बात मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं और जो महत्वपूर्ण सुझाव है। मेरा पहला सुझाव यह है कि इस देश के अंदर सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ की हम बात करते हैं, कानून की निगाह में सब लोग बराबर हैं। हम लोग जो है, एक आदमी जो अपने घर में एक बिजली का बल्ब लगाने के लिए, बिजली का बल्ब जलाने के लिए बिजली की चोरी करता है, उसके लिए, और एक आदमी जो इलीगल रूप से, अवैध रूप से 24 घंटे करोड़ों की फैक्ट्री चलाता है, उसके लिए, दोनों के लिए दंड बराबर है। एक आदमी अपने पेट के लिए चोरी करता है, एक आदमी, एक बड़ा उद्योगपति सैकड़ों और हजारों करोड़ के चोरी करता है, उसके लिए भी दंड एक है। ये ऐसा है, किसी किसान के खेत में अगर थोड़ा सा कुछ किसी ने घास, किसी खरगोश ने खा लिए, रामकृपाल जी, किसी खरगोश ने अगर कोई थोड़ा सा घास खा लिया किसी के खेत में, और एक हाथी ने खा लिया, दोनों को एक एक डंडा मारो, क्योंकि जो है दंड एक ही है, दोनों को एक एक डंडा मारो। एक डंडा मारने से खरगोश बेचारा मर जाएगा, हाथी को कुछ होगा नहीं। इसलिए इसे कानून को बदलने की जरूरत है। नंबर 2, हमारे यहां मैं इसलिए यह भी बताना चाहता हूं, पहले हम लोग कहते हैं कि दुनिया के अंदर जिसने कानून दिया उसको मनु महाराज बोलते हैं। मनु महाराज ने मनुस्मृति के अंदर और आचार्य चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर ये लिखा है, जो व्यक्ति जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा अपराध करेगा, जितने बड़े पद पर होगा, जितनी बड़ी प्रतिष्ठा, ऊंची प्रतिष्ठा का होगा, उसको दंड भी इतने ही गुना मिलना चाहिए। इसलिए हमारे कानून के अंदर ही बदलाव भी आना चाहिए। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा हमारे एक साथी ने इस बात का जिक्र किया था, मोदी जी जिस श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जी हाँ जी अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारे बच्चों में नैतिकता आए। इसलिए हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, ताकि हमारे बच्चों को हमारे स्कूल और कॉलेजों के अंदर मोरल एजुकेशन दी जा सके, नैतिक शिक्षा दी जा सके, हम अपनी विरासत पर गर्व कर सके। और विरासत किसी ईंट पत्थरों का नाम नहीं है, विरासत विचारों का नाम है। विरासत जो है उनका जो है सदाचार और संस्कृति का नाम है। और इसलिए इसके अंदर श्रेष्ठ भारत के परिवारों में अच्छा चरित्र हो, श्रेष्ठ चरित्र हो, वहां स्वतंत्रता भी हो, वहां स्वतंत्रता होना चाहिए, स्वच्छंदता नहीं होना चाहिए। वहां फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन लिमिटलेस लिबर्टीज नहीं होना चाहिए। और इसी के तहत हम जानते हैं कि जब नदी जो किनारों के बीच में बहती है तो जीवन देती है, और जब किनारे तोड़ करके बहती है तो विनाश करती है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय 2 बातों के लिए आपका जो है, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान करना चाहता हूं कि हमारे इन बिलों के अंदर और हमारी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी बात डिस्कस हुई है। हमारा सेक्शन 377 जिसको हम अननेचुरल सेक्स बोलते हैं, अप्राकृतिक मैथुन बोलते हैं, उसको, और 497 जिसको अडल्टरी या बेवफाई कहते हैं, इन दोनों सेक्शन को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के तहत 2018 में आया, उनको कहा कि ये दोनों के दोनों जो कानून हैं ये नागरिक के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं, इसलिए इनको जो है खत्म किया जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये बात कही
कि व्यक्ति को सेक्सुअल चॉइस के उसके फ्रीडम देना चाहिए। और जब 497 की बात करते हैं हम, जहां अडल्ट्री खत्म करने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है अगर आदमी को जो है स्वायत्ता है तो एक महिला को, उसकी पत्नी को भी स्वायत्ता है। हम अपने परिवारों को बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद बनाना चाहते हैं। कौन चाहेगा, हम में से कौन सम्मान्य सदस्य चाहेगा कि मेरे परिवार में जो है इसके बारे में जो है ये आजादी दी जाए, बच्चों को आजादी दी जाए, जहां मन करे वहां यौन संबंध बनाओ, वहां अपने सेक्सुअल रिलेशंस बनाओ। ये कौन जज इस बात को चाहेगा कि उनके बच्चों के साथ उसका ऐसा हो? तो इसलिए मैं इस बात को मैं ये कहना चाहता हूं, इस पर जो जरूर जो है विचारों है, जहां अगर हम ऐसा होगा परिवार टूटेंगे। जब परिवार टूटेंगे, तलाक बढ़ेंगे, परिवार टूटेंगे तो बच्चे जुवेनाइल बनेंगे। जो हमारे बच्चे जो हैं, जिसको हम बोलते हैं चिल्ड्रन विल इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ होंगे, और जब ये होगा उससे जो है बाद में जाकर संगीन अपराधी बनेंगे। इसलिए मैं इस बात को रिक्वेस्ट करूंगा। मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अभी रिसेंटली 1 सितंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने एक बहुत अच्छी बात की, और मैं उसको कोट करना चाहता हूं। और रिपीलिंग सेक्शन 377 and I add 497, this adultery appears to be wrong, where morality will exist. Sir, I would like to congratulate the Allahabad High Court, Justice Siddharth, who recently stated categorically in a judgment that there is a systematic design to destroy the institution of marriage in India. The Western concept of changing partners, every season cannot be considered as a hallmark of a stable and healthy society, and youth get attracted to such a philosophy. हम तो एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं, एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो दुनिया का सिरमौर बने, जो दुनिया का विश्वगुरु बनाने। और इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 377 में तो ये भी हो गया कि कोई अडल्ट मेल हो, उसके साथ कोई जबरदस्ती किसी ने किया, ही हैज नो रिकोर्स टू गो, न कहीं कोर्ट में जा सकता, क्योंकि ये सब खत्म हो गया। इसे 377 और 497 को हमारे इन कानूनों में जो है जगह देना चाहिए। एक और बात मैं जरूर करना चाहता हूं, हमारे वीडी राम साहब ने थोड़ी बात कही थी हमारे पुलिस के बारे में। हमारे पहले अंग्रेजों ने कहा कि पुलिस के ऊपर भरोसा मत करो, पुलिस ने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उस पर भरोसा मत करो। अभी वही बात है, ये भी एक दास्ता का चिन्ह है, ये गुलामी की निशानी। क्यों? क्या हम पुलिस पर भरोसा नहीं करते? हम अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस पर भरोसा करते हैं। इस देश का बंदोबस्त करने के लिए जितने पर्व त्योहार सब कुछ, हम उन पर पुलिस वालों पर भरोसा करते हैं। हम इनकम टैक्स के अंदर काम करने वाला एक क्लर्क पर भरोसा करते हैं, उसके अंदर जो जवान इनकम टैक्स हो, कस्टम हो, ईडी हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करने वाला हो, सब पे हम भरोसा करते हैं, लेकिन पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करना। ये कहां का न्याय है? हो सकता है कुछ लोगों को भी आया हो कि कुछ लोगों ने कुछ गलती की होगी, कुछ लोगों ने कुछ बेईमानी की होगी, लेकिन कौन सा ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट है जिसका हम कह सकते हैं कि उसके किसी भी सरकारी कर्मचारी ने या अधिकारी ने कोई बेईमानी नहीं की होगी? उनके ऊपर विश्वास करते हैं हम लोग, और पुलिस के विश्वास। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो इस देश के 140 करोड़ लोगों को आजादी दी। उनको ये कहा, अरे नौजवानों जिनको रोजगार चाहिए, अपने जितने सर्टिफिकेट है, डिग्री है, उसको सेल्फ अटेस्ट करो, खुद उसका सिग्नेचर करो। हम उन पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपनी ही बनाई हुई पुलिस पर, यही तो ये पार्लियामेंट, इस देश की पार्लियामेंट, अपनी बनाई हुई पुलिस, अपने बनाए हुए कानूनों पर बनाए हुए पुलिस पे हम उसे विश्वास नहीं करेंगे। हम विश्वास नहीं करेंगे तो विदेशी लोग कैसे विश्वास करेंगे? आज अब इस देश की इज्जत को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अब हमारे कोर्ट विश्वास नहीं करेंगे तो विदेशी कोर्ट कैसे पुलिस के कथन, पुलिस के डॉक्यूमेंट पर विश्वास करेंगे? इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि इसको जो है पुलिस का जो भी स्टेटमेंट है, और आजकल तो हमें आईपीसी में बात आई है, एविडेंस एक्ट के अंदर ही बात आई है कि इलेक्ट्रॉनिक, अभी तेजस्वी सूर्य बोल भी रहे थे, किसी का स्टेटमेंट आपको रिकॉर्ड करना है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो रहा है। अरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर पुलिस कर रही है तब भी उस पर भरोसा नहीं करना, ये कहां का न्याय है? मुझको लगता है अगर इस बात को हम खत्म नहीं करेंगे, हमको देखो कोई माफ नहीं करेगा। आज लगभग 50 लाख, अध्यक्ष महोदय, लगभग 50 लाख पुलिस परिवार हम सब लोगों की तरफ टकटकी लगाए देख रही है, इस सदन की तरफ देख रही है, जो जिनके ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं, सुरक्षा के भरोसा करते हैं। क्या उनको हम जो है न्याय नहीं देंगे? ये सब देख रहे हैं,
क्या उन पर हम विश्वास नहीं करेंगे? आज जरूरत है कि हम जो है इन पर पुलिस पर विश्वास करना सीखें और इसको हम जो है उसको चेंज करें। एक बात में और जरूर मैं कहना चाहता हूं, वो हाँ जी अब कृपया दुनिया में मैं जल्दी कर देता हूं। जी दुनिया के जितने विकसित देश हैं, हम लोग अंग्रेजों का हम उनकी नकल उतारते थे। अंग्रेजों ने हमारे देश के लिए कानून बना के पुलिस पे विश्वास नहीं करना, अंग्रेजों ने अपने देश के अंदर कानून बना के पुलिस पे विश्वास करना। अंग्रेजों के अंदर आज भी इवन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है। मैंने देखा है, खुद लंदन के अंदर मैंने देखा है, मुझे वहां कोर्ट में जाने का मौका मिला। आज भी इंग्लैंड के अंदर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, कौन एक्यूज है, कौन आरोपी है, ये वहां पुलिस वाले करते हैं। कोई मजिस्ट्रेट नहीं आता, कोई जज नहीं आता। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं सब जगह पुलिस पर भरोसा करते हैं। अरे हम तो इस देश को, मोदी जी, इस देश पूर्ण विकसित देश बनाना चाहते हैं, 2047 तक पूर्ण विकसित देश बनाना चाहते हैं। ये कानून तो बहुत लंबे समय तक काम करेंगे। इस देश को पूर्ण विकसित देश बनाने के लिए क्या हम पुलिस पर जो है विश्वास नहीं करेंगे? इसका भी मैं अध्यक्ष महोदय इस बात का मैं वो करना चाहता हूं। और बहुत विनम्र मेरा जो है विनम्र अनुरोध है इस बात के बारे में, इस बारे में बहुत गंभीरता से हम लोगों को सोचने की जरूरत है। फूड अडल्ट्रेशन के बारे में बात आई है, वो बात सही है कि 6 महीने का जो सजा है वो बहुत कम है। आज जो है ये बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है। जितनी ज्यादा मिलावट होती है, सवेरे चाय से लेकर, दूध से लेकर, चाय से लेकर, हर एक चीज के अंदर आज मिलावट है। लेकिन हम लोग जो है उसमें दंड करते हैं, 6 महीने का दंड करते हैं। मुझको लगता है इसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा इसके अंदर जरूर होना चाहिए, ताकि हर एक केस के अंदर हम फोरेंसिक साइंटिस्ट को बुला सकें और उनको जो अच्छे उनको जो है दंड कर सकें। अध्यक्ष महोदय, आपने समय मुझे दिया, मुझे और कुछ मोटी मोटी बातें मैं बताना चाह रहा था। ये 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा, मोटी, इफ यू अलाउ मी। देखिए, मैं विशेष रूप से सीआरपीसी को कुछ बातें कहते थे नहीं, मुझे एक बात और कहनी थी, मैं समझता तो आखिरी बात है शायद। ऐसा कह के आपने कई बार कही ना, तो मैं समझा शायद कंक्लूड कर रहे हैं। नहीं, आप कहिए। ये होता है कई बार। नो, I am not asking to do that. नहीं, please conclude. मैं अध्यक्ष महोदय, हमारे सीआरपीसी में एक बात अभी आया है, एविडेंस एक्ट के अंदर एक नया प्रोविजन किया। प्रोविजन क्या है कि जो एक्सपर्ट हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दूसरे जो लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, उनको कोर्ट के अंदर नहीं बुलाया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट के ऊपर विश्वास किया जाएगा। अभी लंदन में हमारा केस चल रहा है, हमारे देश के कई केसेस चल रहे हैं, हमारे लोग जाते हैं, हम जो डॉक्यूमेंट वहां पेश करते हैं उनको विश्वास नहीं करते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने ऐसा कानून यहां पर बनाया है। तो मेरा निवेदन यह है कि अगर हम लोग एक्सपर्ट के ऊपर विश्वास, क्या पुलिस एक्सपर्ट नहीं है? पुलिस भी क्रिमिनल सिस्टम का उसका वो भी एक्सपर्ट है। उसने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, दे शुड बी कंसिडर्ड एग्जीक्यूटेड, दे शुड आल्सो बी नोट कार्ड। उसके बाद एक निवेदन यह है कि जब ट्रायल शुरू होने से पहले एक्यूज के लोगों को बुला के डिफेंस काउंसिल को बुलाकर उनको पूछो कौन से डॉक्यूमेंट आपको एक्सेप्टेबल हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स वो कहते हैं कि मुझे एक्सेप्टेबल है, उनको प्रूव करने की जरूरत जो है नहीं होना चाहिए। ऐसा मुझे मेरा जो है आपसे। एक और मैं लास्ट बात कर रहा हूं, सुनना। पुराने कानून में सीआरपीसी में एक सेक्शन है 162। उस 162 के तहत अगर पुलिस किसी का बयान लेती है, किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, तो उस पर उसके साइन नहीं लेती। लेकिन दुनिया में सब जगह साइन लिए जाते हैं। आज भी उसी को 182 के तहत उसको जो ऐसे ही रखा गया है। आज सारी दुनिया के अंदर अगर सब जगह सारी दुनिया के अंदर वहां जो है विटनेस के ऊपर उसके से साइन ले जाते हैं, साक्षीदार के साइन ले जाते हैं। नहीं तो जज है, मैंने कहा था बहुत से कन्विक्शन रेट इसलिए हम नहीं कर पाते क्योंकि ये हमारे जो विटनेस हैं, साक्षीदार हैं, वो कल को होस्टाइल हो जाते हैं, इसलिए उनके साइन करवाने चाहिए। 182 में के अंदर हमको ये चेंज आना चाहिए कि जितने भी स्टेटमेंट हम पुलिस रिकॉर्ड करेगी वो दे मस्ट बी साइंड बाय द कंसर्न विटनेस। ये मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, खैर आपने मुझे बहुत समय दिया। वैसे तो मैं 2-4 बातें और कहना चाहता था। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में आपको बोलना है? जो मैं बोल रहा हूं आप नहीं बोलेंगे? जी। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डीके बसु जजमेंट दिया। ये डीके बसु जजमेंट कहता है एक्यूज को पकड़ोगे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन को हर एवरी 48 आवर्स
हर 48 घंटे के अंदर जो है वो पुलिस कस्टडी में उसको एग्जामिन कर, सवेरे से लेकर के शाम तक पुलिस वाले हॉस्पिटल के अंदर बैठे रहते हैं, कोई उनको मेडिकल एग्जामिन नहीं करता, सारा दिन बर्बाद हो जाता है, उसकी रिपोर्ट मिलती नहीं है। इसलिए इस बारे में भी मैं कहता हूं, ये जो अभी जो आया है, अभी कानून में बहुत अच्छी बात आई कि उसका तुरंत जो है डॉक्टर को उसको रिपोर्ट देना पड़ेगा। हथकड़ी लगाने के लिए कितना ही बड़ा गुंडा हो, बदमाश हो, हर बार जो है कोर्ट से पूछना पड़ता था कि हम साहब इसको, नहीं तो कई बार हम पुलिस वाले कहते थे, ये सच बता रहा हूं मैं आपको, कई बार पुलिस वाले जज को बोलते थे, सर ये एक्यूज ऐसा, आरोपी ऐसा है, अगर इसको हथकड़ी नहीं लगाई ये चप्पल फेंक कर मारेगा आपकी कुर्सी पर। तो एकदम जज अच्छा ऐसा है तो इसको हथकड़ी लगा लो, और हर बार के लिए उसको जो हथकड़ी लगा गला, हर बार जो कोर्ट की परमिशन लगाए। तो मैं बड़ा बहुत अच्छा, ये अभिनंदनीय है जो अभी जो प्रोविजन किया गया कि हथकड़ी लगाने का जो है पुलिस को किया गया है। ये सर्विस ऑफ समन्स एंड वारंट, कितनी बार जो है हम उसमें जाते हैं, हमारे पुलिस वाले, कितना पुलिस, मैं 1 मिनट दे दो जी जी, सर्विस ऑफ समन्स और वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत पुलिस वाले लगाए जाते हैं, कितना पुलिस बल उसमें लगता था। अभी जो है ये बहुत अच्छा प्रोविजन आया है कि इलेक्ट्रॉनिकली व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए, आप ईमेल भेज दीजिए, ये सब उसको माना जाएगा। इसे बहुत पुलिस को बहुत बड़ा इसका जो होगा, उसका बहुत बड़ा फायदा इसका होगा। सैंक्शनिंग अथॉरिटी का 120 डेज के अंदर हुआ गया, अगर नहीं दिया सैंक्शन तो इट वुड बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन। एक और 156(3), अगर पुलिस केस रजिस्टर नहीं करती, लोग कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में आजकल मालूम है नीचे के कोर्ट में कैसे काम होता है, आपके खिलाफ जो है 156(3) में केस रजिस्टर हो जाएगा। अब इसमें प्रोविजन किया गया, जब तक आपको नहीं सुना जाएगा, जिसको आरोपी बनाया जाए, जब तक उसको नहीं सुनाया जाएगा तब तक जो है केस रजिस्टर नहीं हो सकता। ये भी बहुत अभिनंदनीय जो है प्रोविजन जो है भारत सरकार ने किया है, इसलिए भी मैं उनका वो करता हूं। ये मैं तो अध्यक्ष महोदय, आई थिंक हो गया काफी जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनो, ये अरे वो आपके लिए कह रहा हूं, मैं सब लोगों के लिए बोल रहा हूं, ये आप लोगों के फायदे में है कि पुलिस पर विश्वास किया जाए कोर्ट में, ये हम सब लोगों के फायदे में है। मैं कहना आधी बात खत्म कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पहले जो है हमारा न्याय क्यों नहीं मिलता था, एडजोर्नमेंट आफ्टर एडजोर्नमेंट इन कोर्ट के अंदर होता था। लोग तो ये बोलते थे, अभी हमारे कुछ लोगों को बुरा किसी को नहीं लगना चाहिए, कि काले कोर्टों के चक्कर में जो है न्याय बेचारा रोता था। अभी काले कोर्ट वाले भी आने वाले हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, और इसलिए केवल 2 ही एडजोर्नमेंट होंगे, 2 एडजोर्नमेंट से ज्यादा नहीं होगा। ये बहुत अच्छा उन्होंने जो किया जी है, इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इतना समय दिया है, हमारे सभी मित्रों का, सभी का, पार्टी का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। श्री पी चौधरी जी। जी सर, आप अपनी स्लिप भिजवाइए, देखते हैं फिर। जी धन्यवाद। जी प्लीज आप बैठिए, आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, प्लीज सिट डाउन, यू आर वेरी ऑनरेबल पर्सन, प्लीज सिट डाउन, जी। हाँ चौधरी साहब, स्टार्ट। धन्यवाद सभापति, प्रारंभ कीजिए। आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण 3 बिलों पे बोलने का मौका दिया। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023। ये तीनों बिल जो हैं एक इतिहास कायम हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहां तक इंडियन पेनल कोड है वो 160 साल पुराना, और एविडेंस एक्ट है वो 130 साल पुराना, और सीआरपीसी जो है वो करीब 51 साल पुरानी। तो आज एक क्रिमिनल जस्टिस में बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है देश में, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, कि जिस हिसाब से इन कानूनों को नाम दिया गया है, हमें अगर देखें ध्यान से, क्योंकि कई बार बात हुई कि इनका हिंदी में इस तरह का नाम क्यों दिया गया, तो आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता, अब भारतीय न्याय संहिता के पहले जो अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया था वो था इंडियन पिनल कोड, भारतीय
दंड संहिता, तो उसका पर्पज जो है वो पनिशमेंट का था। एम एंड ऑब्जेक्ट उस कानून का जो था वो पनिशमेंट देने का था, और अब एम एंड ऑब्जेक्ट इस कानून का जो है भारतीय न्याय संहिता वो न्याय करने का है, जस्टिस करने का है। ये जो है डिपार्चर बहुत बड़ा फर्क है। ये अपने आप में पहली बार हम देख रहे हैं देश के नागरिकों के साथ में इस तरह का कानून आता। पहले दंड संहिता होता था, ऑब्जेक्ट सिर्फ पनिशमेंट देने का था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट और एम जो है वो उनको न्याय देने का है, तो उनके साथ अन्याय नहीं हो, तो ये ऑब्जेक्ट है। और दूसरा अगर हम देखेंगे जो हम सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के पहले से ही आप जो है उसके क्रिमिनल माना जाता है। व्यक्ति के लिए जो ट्रायल होती थी उसके लिए प्रोसीजर तो है, उसको आप क्रिमिनल मान करके ये सोच करके कि क्रिमिनल है, उसके लिए प्रोसीजर है। लेकिन अभी सभापति महोदय जो कानून आया है, अब जो बिल अभी पेश हुआ, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जो पेश किया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो अब ये नागरिक सुरक्षा संहिता, अब आप ये डिपार्चर आप देखें कि नागरिक सुरक्षा जो है हमारे देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कि आपको पनिशमेंट जो है वो जो है चाहे रिफॉर्मेटिव हो चाहे कोई भी हो, वो जो है आपके लिए सुरक्षा होगी। इस कानून के सुरक्षा के तहत इसमें जो प्रावधान दिए हैं वो एक सुरक्षा दी गई है उसमें कि आर्बिट्ररी जो है उसके साथ में अन्याय नहीं होगा। तो ये सोच करके इस ऑब्जेक्ट जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नागरिकों के लिए सुरक्षा के लिए किसी तरह से वो असुरक्षित महसूस नहीं करें, ये सोच और ब्रिटिश की सोच में, कॉलोनियल सोच में ये बहुत बड़ा फर्क है। पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। ये ह्यूमैनिटी, एक जो ह्यूमन के लिए, एक जब हम कहते हैं कि भाई के पहले जो जिस हिसाब से वो कानून बनाते थे वो सिर्फ और सिर्फ उनको अपने कंट्रोल के लिए था, उनके अपने राज्य चलाने का था, कॉलोनियल रूल को मजबूत करने के लिए था। और जो साक्षी बिल है जो ये हर रूप में ये काम आएगा, चाहे भले सिविल के रूप में हो और चाहे क्रिमिनल केसेस के रूप में हो। तो ये तीनों कानून जो हैं पहली बार इतने समय के बाद में, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम अगर देखते हैं कई बार कमेटियां बैठी, कई बार हुआ, लेकिन इन कानूनों को वहां पर पूरा का पूरा पब्लिक कंसल्टेशन हुआ। माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत इसमें समय दिया और एक एक प्रावधान जो है वो इस तरह से देखे गए कि देश के नागरिकों के लिए सही तरह का कानून बने। अगर हम देखें तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो होम अफेयर्स की जो थी, उसमें उन्होंने अपनी 146वीं रिपोर्ट में इन सारे कानूनों को बहुत पहले उन्होंने कहा कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है बहुत कॉलोनियल रूल का है, इसका रिव्यू होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बाद में, उस रिपोर्ट के बाद में भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद में हम अगर देखें तो 111वीं और 128वीं रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स, उन्होंने भी इसमें साफ लिखा है कि ये कानून इनको रिफॉर्म और रेशनलाइज, इनका रिफॉर्म भी होना जरूरी है, इनका रेशनलाइजेशन भी होना जरूरी है, इन तीनों क्रिमिनल लॉ का। और एक कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन जो है वो लाया जाना चाहिए, ना कि पीस मिल में। जो हम देखते हैं पीस मिल में थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट कर देते थे, हम टच करने की कोशिश नहीं करते थे, किसी ने हिम्मत ही नहीं की। ये सोच लिया था कि लॉर्ड मेकाले ने जो 1860 में जो कानून बनाया, 1872 में जो कानून बनाया, उस कानून को हम टच नहीं कर सकते, ये किसी ने हिम्मत कभी नहीं की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने देश के नागरिकों के लिए कानून, वो जो कानून जो था, हम देखते हैं ब्रिटिश ने कानून बनाया सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉलोनी को कंट्रोल करने के लिए। उनका ऑब्जेक्ट जो था वो सिर्फ और सिर्फ यही था। और इस कानून से हम तीनों कानून में हम देखते हैं कि अगर कोई रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसमें रिफ्लेक्ट अगर हो रहा है तो इंडियन एथोस हो रहा है। और इन कानूनों का अगर एम, ऑब्जेक्ट और स्पिरिट हम देखें तो बिल्कुल और जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच है कि न्याय जो है नागरिकों को कैसे मिले, चाहे विक्टिम हो और चाहे अपराधी हो, चाहे जो न्याय है दोनों को न्याय कैसे मिले। ऐसा नहीं कि कोई
इनोसेंट जो है उसको सजा मिले। तो अब जस्टिस सिस्टम जो है वो एक तरह से पहले पनिशमेंट का था, अब डिपार्चर आप देखिए। पहले जो अप्रोच जो थी कि पनिशमेंट कैसे दिया जाए, अब ये है कि इसको न्याय कैसे दिया जाए, और उसके बाद में कानून में ये रखा गया है कि एक रिफॉर्मेटिव, एक जुरिस्प्रूडेंस जो है हम देखते हैं क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में, एक थ्योरी होती डेटरेंट, एक थ्योरी होती रिफॉर्मेटिव। इस पे लंबी बहस जो है दुनिया भर में समय समय पे चली, लेकिन अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट के भी कई हम जजमेंट देखें तो कई जजेज जो हैं वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी में विश्वास करते थे। कई जजमेंट हुए कि रिफॉर्मेटिव होना चाहिए। डेटरेंट जो है वो एंशिएंट टाइम की बात है, वो पुराने जमाने की बात है, वो उस समय मुगल शासकों की और अंग्रेजों की बात है। तो अगर रिफॉर्मेटिव जो है हमें ये देखना है तो इसका स्पिरिट और ऑब्जेक्ट जो है इन कानूनों का रिफॉर्मेटिव है, और छोटे छोटे अपराध जैसे अगर है तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान रखा गया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा माननीय सभापति जी महोदय कि नेशनल पॉलिसी ऑन क्रिमिनल जस्टिस जो है 2007 में रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट के अलावा 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने भी विष्णु दयाल वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में और साफ ये लिखा कि रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन जो है, अब जो है आज हमारे देश का इंडियन एथोस जो है वो रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन का है, ना कि इस तरह के पनिशमेंट में हम जो थ्योरी ऑफ डेटरेंट को जो अडॉप्ट हमें नहीं करना चाहिए, और जहां पर हो सके वहां पर कम्युनिटी सर्विस का भी प्रावधान होना चाहिए। तो इस तरह से बार बार चाहे रिपोर्ट्स हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डायरेक्शन हो, टाइम टू टाइम जब लॉ में बहुत बड़ा गैप था, कोडिफाइड नहीं था, क्योंकि जो एक 1860 में जो कानून बना कॉलोनियल टाइम में, उस कानून को जो है आज के परिप्रेक्ष्य में वो जो फिट नहीं होता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कई केसेस में अपना इंटरप्रिटेशन दे करके फिल इन द गैप का काम किया। और उसका करने के बाद में क्योंकि जजमेंट मल्टीपल जजमेंट थे, अलग अलग इंटरप्रिटेशन थे, और उसमें हम देखेंगे कि कई बार जजमेंट जो है उसको समझने के लिए एक आम जनता के लिए बहुत मुश्किल का काम था, पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए मुश्किल का काम था, क्योंकि कानून कोडिफाइड नहीं था, इंटरप्रिटेशन के बेस पे हम चल रहे थे। और उसका एग्जाम्पल जो है एक विसा का जजमेंट जो हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन हुई, अगर कानून पूरा होता तो वो विसा का जजमेंट नहीं आता, और उसके बाद में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो 2013 में उसको वापस गैप भरने की कोशिश की, और उसके बाद में जहां तक विटनेस को प्रोटेक्शन की बात है, हम देखते हैं कि आज सबसे ज्यादा वल्नरेबल जो है वो है विटनेस, वो है गवाह, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी गवाही देने के लिए 10 बार सोचता है कि मेरा जो मुझे सुरक्षा क्या मिलेगी। तो आज इन कानूनों के द्वारा जो हमने उसके अब्सेंस में, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है 2018 में उनके जजमेंट के तहत आई, तो हम देखें कि इतने पुराने कानून में जो पुराने आज के परिप्रेक्ष्य में उसको अगर हम कंपेटेबल नहीं मानते हैं, उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बार बार और हाई कोर्ट ने कई जजमेंट्स में फिल इन द ब्लैंक का काम किया है। और हम देखें तो पुराने कानून का जो अगर ऑब्जेक्ट देखें, अभी हम देखें कि उनको तीनों को बेसिकली जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ये तीनों बिल लेकर आए हैं, और उसको तीनों को रिप्लेस करना और नए कानून लेके आना, क्योंकि ये ब्रिटिश रूल के एमेंडमेंट्स हैं, और उनका एम जो है ओनली टू डिजाइन टू मेंटेन देयर कंट्रोल, उनका सिर्फ और सिर्फ के कंट्रोल करना है, और इंडिया जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के पूरा का पूरा। अब जो है अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने बताया, ओल्ड लॉ का फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट पे था, और उसमें नागरिकों के लिए न्याय के लिए किसी तरह के प्रावधान नहीं थे। और अगर देखें तीनों के तीनों कानून जो हैं वो आज की तारीख में अलाइन नहीं करते हैं किसके साथ। नंबर 1 मॉडर्न सोशल नॉर्म्स, नंबर 2 तकनीकी, नंबर 3 जस्टिस रिक्वायरमेंट। ये तीनों चीजों को जो है, ये तीनों कानून जो हैं उसमें फिट नहीं होने की वजह से, और हम देखते हैं यही कारण है
कि वुमेन के अगेंस्ट में अपराध हुए, चिल्ड्रन के अगेंस्ट में अपराध हुए, इन मामलों में ये तीनों कानून, पुराने कानून इनसेंसिटिव है और वुमेन के मामले में और चिल्ड्रन के मामले में पूरी तरह से जो प्रावधान होना चाहिए था वो प्रावधान नहीं होने की वजह से आज हम देखते हैं कि उनके साथ में लंबे समय तक अन्याय हुआ है और न्याय नहीं हुआ है। और आउटडेटेड और कॉलोनियल लॉ जो है ये बेसिकली इनकी वजह से लो कन्विक्शन रेट, ये सबसे बड़ी समस्या है। हम देखते हैं कि अगर पता लगता है कि 83% जो है वो एक्विटल का है या कहीं देखते हैं 10% कन्विक्शन रेट है। क्यों होता है? क्योंकि वो लॉ उस समय जो 1860 में बने हैं, आज के मॉडर्न सोसाइटल नॉर्म्स में, आज के तकनीकी के मामले में, आज के जस्टिस रिक्वायरमेंट के मामले में ये कानून फिट नहीं होते थे। इसीलिए जो है आम जन का एक विश्वास जो है एक क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, एक पूरा का पूरा विश्वास जो है वो खत्म हो जा रहा है। हम कभी एक्यूज करते हैं, जुडिशरी को करते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन को करते हैं, लेकिन हमने ये अपने आप में गिरेबान में झांक के नहीं देखा कि उसका मेन कारण जो है, अगर कानून जो है पार्लियामेंट का प्राइमरी ड्यूटी है बनाने का, तो इन चीजों को बहुत पहले देखा जाना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही ऐसा डिसीजन जिसको हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने लिया, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है और पूरे देश में एक आम जो नागरिक ये महसूस करेगा कि मुझे किसी बात की डर की जरूरत नहीं है। लेकिन जो है इन तीनों कानून का जो मेन ऑब्जेक्ट, स्पिरिट एंड ऑब्जेक्ट जो है वो जस्टिस ओरिएंटेड है और न्याय करने से संबंधित है। और जिस हिसाब से हम देखेंगे कि आप एक कम्बरसम प्रोसीजर, माननीय सभापति जी मैं बताना चाहूंगा कि किस हिसाब से एक कम्बरसम प्रोसीजर है। आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखें, एविडेंस एक्ट देखें, एक लंबा कम्बरसम प्रोसीजर और पेपर वर्क भी उसका लगातार जो है इतना बड़ा हो जाता है कि लगातार फाइल के ऊपर फाइल और उसके बाद में डॉक्यूमेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट। तो अब जो है उसी वजह से जो हम कहते हैं न्यायालय में डिले क्यों होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। अगर कानून क्लियर नहीं है, कानून साफ नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो उसमें डिले होने के भी बहुत संभावना रहती है। हम देखते हैं क्रिमिनल केसेस जो हैं बड़े लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन उसका जो है उसका कल्मिनेशन नहीं होता, फाइनल स्टेज पे वो नहीं पहुंचता है। और जहां तक लीगल टेक्निकलिटीज हैं, हम देखते हैं कि हमेशा कोर्ट में देखते हैं कि एक तरफ तो लीगल टेक्निकलिटी और दूसरी तरफ जो है वो जस्टिस। अब आप इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेक्निकलिटी एंड जस्टिस, तो आज की तारीख में इन तीनों पुराने कानून के तहत में टेक्निकलिटी जो है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता था, न्याय एक तरफ रह जाता था, न्याय उसको नहीं मिलता था क्योंकि टेक्निकलिटीज के आधार पे। अब उस चीज को हटा के इन तीनों नए बिल में टेक्निकलिटीज के ऊपर जो है न्याय सबसे पहले आएगा और टेक्निकलिटी बाद में आएगी। तो कोर्ट जो है उनके एक कोर्ट के लिए गाइडेंस ये इन तीनों बिल के द्वारा होगा कि वो पहले न्याय करें और टेक्निकलिटी जो है उसकी सुपरमेसी जो है वो नहीं होगी। और मैं माननीय सभापति जी महोदय ये भी बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में ये तीनों कानून जो पुराना कानून है वो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसको यूटिलाइज कैसे करें, किसी तरह का प्रावधान नहीं था। जबकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, उसको यूटिलाइज चाहे एविडेंस एक्ट में हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हो, इन पुराने कानूनों में कहीं इसको यूटिलाइज करने के सही तरह के प्रावधान नहीं थे। लेकिन अब इसमें प्रावधान नए तीनों बिलों में देने की वजह से आने वाले समय में कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी भी घटेगी। और जो हम आज कहते हैं 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो सबसे पहले तो एक इतना बड़ा क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है देश का, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस हम कह सकते हैं कि इसमें पेंडिंग है, इन तीनों कानूनों से हमने कई बार देखा, सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की, वकीलों ने कोशिश की, बार एसोसिएशन ने कोशिश की, सरकार ने की, पार्लियामेंट ने की, लेकिन पेंडेंसी जो हमेशा रही है। मैं आपको सभापति महोदय जी मैं बताना चाहूंगा क्योंकि मैं भी इस फील्ड से हूं, लेकिन तीनों कानूनों को पढ़ने के बाद, जो तीनों बिलों को देखने के बाद हम ये देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में सबसे बड़ा फायदा जो है वो एक तो डिले जो है वो नहीं होगा, दूसरा जो एरियर्स है वो खत्म होंगे।
और उसके बाद में जो अभी सबसे बड़ी जो एक हिंड्रेंस थी पुराने कानूनों का कि एक एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन, हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन के मामले में बड़ा लंबा समय लग जाता था क्योंकि तकनीकी का उपयोग जो है वो उसमें नहीं हो पाता था। और आज जो कई इश्यूज हैं, मॉडर्न इश्यूज, अब आज की तारीख में पुराने कानून और नए कानूनों को देखें, तीनों बिल को देखें और पुराने तीनों कानूनों को हम देखें तो साइबर क्राइम को एड्रेस करने के लिए सही तरह के प्रावधान नहीं थे। हम कभी कोई कानून काम में लेते, कभी कोई काम में लेते हैं, लेकिन कोडिफाइड एक जगह हमें यह नहीं मिल रहा था। और जो जिस हिसाब से टेररिज्म का एक्सपेंशन हुआ है उसको भी सही तरीके से उसमें डील नहीं किया जा रहा था। और जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे मॉब लिंचिंग है, ये पहले ये नहीं था, लेकिन 1860 का कानून अब उसको डील करने के लिए अलग अलग जगह से देख करके करें, तो ये सारा का सारा तीनों बिलों में ये प्रावधान किया है। और मैं धन्यवाद दूंगा सभापति महोदय कि जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट ने 2014 से कि पुराने कानून, वो कानून जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हमें हर्डल क्रिएट करते थे, वो कानून जिसकी वजह से देश आगे नहीं बढ़ रहा था, जिस स्पीड से बढ़ना था वो नहीं बढ़ रहा था, इस तरह के करीब 1500 कानून 2022 तक उन कानूनों को रिपील किया। और उसके साथ साथ करीब 32,000 जो है कंप्लायंसेस थे इन कानूनों में, जगह जगह पालना करनी पड़ती थी, कोई बिजनेस लगाने के लिए नहीं तैयार था। तो जिस हिसाब से उन क्राइम के मामले में इतने कानून थे कि उन कानूनों को जो रिपील कर करके बहुत बड़ा काम किया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी बहुत बड़ा काम हुआ। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जिस हिसाब के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी बहुत ही आगे बढ़ा है इस मामले में। और मैं कह सकता हूं कि पूरा का पूरा इन तीनों बिलों से जो तीनों नए कानून आ रहे हैं, एंटायर लीगल प्रोसेस, जी अब एंटायर लीगल प्रोसेस से एफआईआर रजिस्ट्रेशन से लगा करके जजमेंट तक पूरा का पूरा डिजिटाइज करना। सभापति महोदय, सिर्फ इसी बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा एरियर को रिड्यूस करने का, बहुत बड़ा पड़ेगा क्विक जस्टिस के लिए। जो पेंडेंसी है वो जो है वो खत्म होगी। और जिस हिसाब से हम देखते हैं वुमेन के मामले में, ए हार्मिंग वुमेन मेंटल हेल्थ, इसके लिए कोई पहले पनिशमेंट नहीं था, तो इसको भी एक क्रूरल्टी माना है अब नए कानूनों में। और सबसे ट्रांसपेरेंसी का काम जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो पूरा का पूरा वीडियोग्राफी के सेक्सुअल क्राइम विक्टिम के लिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, उसको विक्टिम का प्रोटेक्शन के लिए एक वीडियोग्राफी का पूरा प्रोविजन देना और नई टेक्नोलॉजी को काम लेकर करके ये साथ में जोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा सभापति महोदय कि परिभाषा जो डॉक्यूमेंट की थी, पहले डॉक्यूमेंट की जी थी वो बहुत लिमिटेड थी। कई चीजें जो हैं उसमें डॉक्यूमेंट में नहीं आती थी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लोगो, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, वेबसाइट और लोकेशनल एविडेंस, मेल, मैसेजेस ऑन डिवाइसेस, इन सारों को जो है अब प्राइमरी एविडेंस के रूप में कोर्ट यूज कर सकता है। और सारे के सारे एंटायर प्रोसेस को डिजिटाइज करना, एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, चर्चा कल तक चलेगी प्लीज, जजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एंटायर ट्रायल को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सभापति महोदय मैं ये भी बताना चाहूंगा, जैसे पुराने कानून में समन इश्यू करते थे, समन जो है डाक से जाते थे, उसमें प्रावधान वही था, लेकिन उसमें इतनी डिले होती थी कि 4-4, 5-5 साल समन सर्व नहीं होते थे। लेकिन आज जो है इलेक्ट्रॉनिकली समन सर्व हो सकते हैं, उससे जो है और भी जो है उसमें किसी तरह की पेंडेंसी नहीं होगी और डिले कभी नहीं होगा। और 0 एफआईआर, ई एफआईआर आप कहीं भी फाइल कर सकते हैं। जी। जरूरत नहीं है कि आप उस क्षेत्र में करें जहां क्राइम कमिट हुआ, कहीं भी कर सकते हैं, तो उसको जो है उसको भी साथ लिया जाएगा। और जहां तक मेडिकल एग्जामिनेशन, पहले मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ सब इंस्पेक्टर कह सकता, अब कोई पुलिस ऑफिसर कह सकता।
तो इन चीजों को लचीला बनाना और जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच होनी और डिले नहीं होना, ये कानूनों का स्पिरिट ऑब्जेक्ट है। और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर 7 साल से ऊपर की सजा है, ये बहुत बड़ा प्रावधान किया गया। तो वहां पर एक्सपर्ट जो है वो विजिट करेगा, साइट पे विजिट करेगा, क्राइम सीन पे विजिट करेगा और रिकॉर्ड करेगा अपने मोबाइल से सारा प्रोसेस। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एविडेंस के लिए फिंगर इंप्रेशन के साथ साथ अब वॉइस सैंपल को भी उसमें साथ मैं समाप्त कर रहा हूं बस 1-2 मिनट में। और जहां तक टाइमलाइन का जो रिडक्शन जो है, बैकलॉग जो है, अब टाइमलाइन जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए जो है उसको 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, जजमेंट जो है 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा, और एग्जम्पशन जो है कंप्लीशन ऑफ जजमेंट 45 डेज जो है एक्सटेंडेबल मैक्सिमम, और चार्जेस जो फ्रेम करने के लिए 60 दिन के अंदर अंदर जो है ये सारा करना पड़ेगा। और जहां तक पनिशमेंट की बात है, पनिशमेंट एक तरफ तो पहले पनिशमेंट है, अब लेकिन छोटे छोटे क्राइम जो है उनके लिए पनिशमेंट के लिए उसके पनिशमेंट देने के बजाय जेल जाने भेजने की बजाय कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान रखा गया। और उसमें कैसे अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, छोटे से ऑप्शन, छोटे से कोई छोटा चोरी का मामला हो, डिफामेशन के मामले हो, इसमें सिर्फ कम्युनिटी सर्विसेज के लिए। और मॉब लिंचिंग का पहले पनिशमेंट नहीं था, अब उसको इंक्लूड किया है। और चार्जशीट पुलिस के द्वारा जो 90 दिन के अंदर फाइल करनी पड़ेगी, और कोर्ट परमिशन 90 दिन तक दे सकता है। बस कर रहा हूं सर। और सबसे ज्यादा जो फोकस है वो ऑर्गेनाइज क्राइम पे है, बिल के प्रत्येक पहलू पर बोलना जरूरी नहीं होता है। तो बस एक तो डॉक्यूमेंट जो है, चाहे भारतीय साक्ष्य बिल में हो, चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हो, डॉक्यूमेंट जो है उनको सारों को लिया है। और एविडेंस जो है, अब एविडेंस जो पहले जो एविडेंस थी उसको बिल्कुल चेंज करके इंफॉर्मेशन गिवन इलेक्ट्रॉनिकली उसको भी शामिल किया है। अपीयरेंसेज ऑफ विटनेस, एक्यूज, एक्सपर्ट एंड विक्टिम थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से भी धन्यवाद चौधरी साहब सकते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से अब हो गया सर। और एडमिसिबिलिटी एविडेंस की जो है, पहले इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को एडमिसिबल एविडेंस में नहीं था, ये होने से और भी ट्रायल फास्ट हो गई, बोल दिया है, सब चीज जोड़ दी गई एविडेंस में। तो मैं अब सारा समाप्त हो गया। लास्ट में एक फियर जो है वो आम जन में था कि ये एक्ट तीनों बिल जब पास हो जाएंगे क्या ये रिट्रोस्पेक्टिव लागू होंगे। सभापति महोदय, मैं बहुत बात क्लियर कर दूं, एक संशय फैला हुआ है पूरी जगह, कई मीडिया भी पूछते हैं, आम जन भी पूछते हैं, कोर्ट में एडवोकेट्स वगैरह भी, सारा जो है एक बात का है। लेकिन इस बात के लिए मैं क्लियर कर दूं आपके माध्यम से कि ये जो तीनों बिल आने के बाद उसमें किसी तरह की कोई पेंडेंसी है, किसी तरह की एप्लीकेशन और किसी तरह की प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो इसमें जो धारा जो है, इसमें चाहे जो नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें धारा 530 दिलीप सैकिया जी, और साक्ष्य बिल में धारा 170 है, उसके तहत में जितने भी एविडेंस, जितना भी जो पेंडिंग प्रोसीडिंग है उस पे ये कानून लागू नहीं होंगे, और आने वाले जो किसी तरह की एक्टिविटी है उस पे लागू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे परमिशन दी। प्रत्येक आप अपना विषय रख दीजिए, संक्षेप में रखने की कोशिश कीजिए प्लीज। अध्यक्ष जी, मैं प्लीज बैठिए, बैठिए सर। हाँ, जो 3 बिल, जी 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 बैठिए। भारतीय आचार संहिता, न्याय संहिता, जो तीनों बिल यहाँ पर माननीय गृह मंत्री जी ने पेश किया है, इस बिल के सपोर्ट में मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभापति जी, जैसे कि करीब 150 साल बाद ये कानून में संशोधन लाया गया है, तो भारत के जो संस्कार, जो प्रक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, और अभी तक जो हजारों कानून जो ब्रिटिश ने यहाँ पर चालू करके गए थे, जो कानून अभी भी चल रहे थे, जो कानून भारत के अपने संस्कृति, अपने भारत के जो जनता के हितों में जो नहीं थे, ऐसे हजारों कानून जब रद्द किए गए, तो इसके साथ ये संशोधन जो लाया गया है, ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट एक मूव है भारत करके। इसमें जो सुधार लाया गया है, इसमें भारत के न्याय व्यवस्था में इस हिसाब से इस कानून को बारीकी से अध्ययन करके इसमें जो सुधार लाया गया है, इसमें भारत के न्याय व्यवस्था में, भारत के कानून व्यवस्था में बहुत बड़ा एक परिवर्तन और इसका भारतीयकरण का जो हमारे मकसद है, इस मकसद को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। सभापति महोदय, जो इसमें विधान लाए गए हैं तीनों कानूनों में, तीनों बिल्स में, इस विधान के माध्यम से जो क्रिमिनल्स है, जो इससे घटनाओं का, जो समाज विरोधी घटनाओं का इंतजाम ये करते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको एक न्याय देने का विषय नहीं है। ये जो एक्यूज थे उसको जल्दी से जल्दी उसको शास्ति मिले, उसको पनिशमेंट मिले, इसका प्रावधान इस बिल्स में किया गया है। तो इसलिए मैं इस बिल के सपोर्ट में बोलना चाहता हूं और इस ऐतिहासिक कदम के लिए अन्य प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही माननीय गृह मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इस तीनों बिल पे मैं सपोर्ट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, नमस्कार। श्री राम कृपाल यादव जी। है नहीं सर, इनको बुला दिए। गणेश सिंह अभी तो थे। श्री गणेश सिंह जी। प्लीज बैठिए तो कल गणेश सिंह जी। राम तो थे अभी। आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर विचार रखने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को देश के सामने 5 प्रण की बात की थी और उन 5 प्रणों में गुलामी की सभी निशानदेही को समाप्त करना, आज के तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी के इस एक प्रण के अनुपालन का सबसे बड़ा उदाहरण है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजी संसद द्वारा पारित किए गए इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कानूनों को समाप्त कर आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जो 3 कानून यहाँ पर विचार के लिए रखे हैं, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 स्थापित किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ये जो अंग्रेजों की गुलामी का सबसे बड़ा उदाहरण था, जिन्होंने लिखा था पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम प्रोविंशियल एक्ट नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव लंदन गजट एनी डोमिनियम कॉलोनी और possession of the His Majesty Jury, Lahore, United Kingdom of the Great Britain and Ireland Commonwealth, Her Majesty or by Privy Council, Her Majesty Governor, Government, copies or extracts contained in the London Gazette are purporting to be printed by the King's Peter, possession or the British Crown। ये तमाम जो चीजें उन्होंने लिखी थी, ये हमारी गुलामी की जो दास्तान थी उससे मुक्ति दिलाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये समाप्त होने वाले तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और इनका उद्देश्य दंड देने का नहीं बल्कि न्याय देने का नहीं था, दंड देने का न्याय था इनका। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का मैं अभिनंदन करता हूं। 3 नए कानून की आत्मा होगी भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना। इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। हमारे इन कानूनों में संशोधन की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी।
और इसके लिए सिफारिशें समय समय पर भारत के विधि आयोग, बेज बरुआ समिति, विश्वनाथन समिति, मलिमत समिति, माधव मेनन समिति और गृह मंत्रालय गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति जैसे निकायों ने कई बार अपनी सिफारिशें दी, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उसको ठंडे बस्ते में डाल के रखा हुआ था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में कहा था, अंग्रेजों के समय के बनाए गए जितने भी कानून जिस विभाग में भी हैं, उन पर पर्याप्त चर्चा और विचार कर आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए। 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और लगभग 270 विधायकों ने इस कानून के बारे में अपने विचार भेजे थे। माननीय गृह मंत्री जी ने इस नए विधेयक को 4 साल लगातार विचार के लिए रखा था। फिर इस बात स्वयं 158 बैठकों में स्वयं वो उपस्थित हुए, जो अब तक के इतिहास का सबसे अद्भुत ये प्रमाण है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी, में अब तक 533 धाराएं रहेंगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें पहले 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, में पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई। ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे। इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था। कुल 475 जगह गुलामी की इन निशानियों को समाप्त कर आज गृह मंत्री जी ने नया विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है। कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉक्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है। ये अपने आप में सचमुच अभी तक साक्ष्य में ये सब सारी चीजें नहीं जोड़ी जाती थी। अब इससे कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। एफआईआर के केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइजेशन करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को कंपलसरी कर दिया गया है, जो केस का हिस्सा होगी, और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं मानी जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने में फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा दिया जा सकेगा। 3 साल बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और साइंटिस्ट देश को मिलेंगे। कानून में लक्ष्य रखा गया है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को 90% से ऊपर ले जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। 7 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपलसरी किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा, जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मोदी जी की सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आजादी के 75 सालों के बाद पहली बार 0 एफआईआर को शुरू करने जा रही है। अपराध कहीं भी हुआ हो, उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। अभी तक इसमें कहीं कोई प्रावधान इस तरह का नहीं होता था। पहली बार ईएफआईआर का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना करेगा। ये साथ पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दी गई है। पुलिस को 90 दिन में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना आवश्यक हो गया है। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार, अभी तक क्या होता था, जब अपने लोगों के ऊपर मुकदमा वापस लेना होता था तो बिना कोई आधार के मुकदमे वापस हो जाते थे, लेकिन अब इसमें नया प्रावधान किया गया, पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष से अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। छोटे मामले में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है।
अब 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। इस अकेले प्रावधान से ही सेशन कोर्ट में 40% से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है और विशेष परिस्थितियों में इसे 90 दिन तक और बढ़ाया जा सकता है। 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होगी। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायालयों को फैसला सुनाना होगा। इससे सालों तक पेंडिंग पड़े केस जल्दी समाप्त हो जाएंगे। सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर अनुमति अगर प्राप्त नहीं होगी तो वो उनकी अनुमति मान ली जाएगी और उस पर मुकदमा कायम हो जाएगा। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान लेकर आए। अंतर्राज्यीय गिरोह संगठित अपराधों के विरुद्ध अलग प्रकार की कठोर सजा का नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा गया है। सजा माफी को राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के कई मामले देखे जाते थे। अब मृत्युदंड को आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल की सजा और 7 साल के कारावास को कम से कम 3 साल तक की सजा में भी बदला जा सकेगा और किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी सरकार राजद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने जा रही है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, सबको बोलने का पूरा अधिकार है। ये राजद्रोह का जो मुकदमा है पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी, अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई। अनुपस्थिति में ट्रायल के बारे में एक ऐतिहासिक फैसला किया। सेशन कोर्ट के जज द्वारा भगोड़ा घोषित के व्यक्ति की अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उससे सजा भी सुनाई जाएगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छुपा हुआ हो। इसे सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत के सामने आना ही होगा। कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक अमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और किसी को भी अधिकतम 3 वर्षों में न्याय मिल जाएगा। इस कानून में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। अपराधियों को सजा मिले ये सुनिश्चित किया गया है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके, ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं। मैं इस ऐतिहासिक बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राम कृपाल यादव जी। माननीय बोलिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक भारतीय इतिहास में न्याय के क्षेत्र में होने जा रहे जो सबसे बड़ा बदलाव है, इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं साथ ही साथ अपने हिंदुस्तान के दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और सचमुच में वैसे गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने सूझबूझ के साथ इतना बड़ा कानून में बदलाव करके जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं उसके साथ न्याय प्रदान करने की कोशिश की है। महोदय, आज का यह सदन और यहां बैठे हुए लोग इस ऐतिहासिक पल को हमेशा याद रखेगा और सदन उसका साक्षी रहेगा। हम सब लोग साक्षी रहेंगे। पिछले 100 वर्ष से अधिक जो कानून था, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, अंग्रेजियत उस पर साफ तौर पर दिख रही थी। आज आजाद भारत में 75 वर्ष के बाद इस ऐतिहासिक कदम को उठाने का अगर किसी ने निर्णय लिया तो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने, और निश्चित तौर पर इतिहास उनके नाम में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जो वंचित और गरीब तबके के लोग थे, शोषित तबके लोग थे, उनके साथ न्याय करने का काम इस संशोधन के माध्यम से किया जाएगा। महोदय, मैं समझता हूं कि ये विधेयक जो 3 विधेयक है, भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2030
2023 लेकर आई है। एक मिनट और दंड न्याय की जगह माननीय सदस्य सब एक सदन की अनुमति हो तो 1 घंटा समय बढ़ा देते हैं 9 बजे तक के लिए, प्लीज। सर महोदय, दंड जगह न्याय सब कुछ इशारा करता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी सरकार का लक्ष्य क्या है। हम देश में न्याय का वातावरण बनाने आए हैं। साथ ही साथ जो दूसरा विधेयक है, जो आपराधिक प्रक्रिया संस्था 1898 की जगह पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था 2023 लेकर आई है, जिसके द्वारा न्यायिक प्रक्रिया, जांच के आरोप आदि के नियम भी तय किए जाएंगे। और तीसरा विधेयक जो है वो भारतीय साक्ष्य संस्था 1872 के जगह पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 स्थापित होगा, जहां जांच के नए तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे और नई तकनीकी व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाएगा महोदय। और मैं समझता हूं कि इस पर ही ज्यादा बल देने का काम किया गया महोदय। ये तीनों कानून जो है ना सर, गुलामी के निशान थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई पहल करके कई परिवर्तन करने का काम किया है और गुलामी के उस चिन्ह को मिटाने की भी कोशिश करने का काम किया। उसी कड़ी में एक कानून है जिसका बदलाव आज माननीय गृह मंत्री जी के माध्यम से सदन में लाने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूं कि सबसे खूबसूरत बात यह है भारतीयता, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उसको भी हमने इस कानून के माध्यम से अडॉप्ट किया है। हमारे जो लोकप्रिय और हमारी जो ऐतिहासिक संस्कृत की भाषा है सर, शब्द है, उसको भी इस कानून में समाहित करने की कोशिश की गई है। ये बहुत बड़ा कदम है सर सरकार के लिए। मैं समझता हूं कि भारतीय न्याय संस्था में पहले 511 धाराओं के स्थान पर अब मात्र 336 धाराएं ही होगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराओं को निरस्त करने का काम किया गया है। यही नहीं, भारतीय साक्ष्य विधेयक में पहले 167 धाराएं के स्थान पर अब 170 धाराएं होगी और 23 धाराओं में बदलाव करने का काम किया गया है। एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त करने का काम किया गया है। महोदय, मैं इस कानून के कुछ प्रावधानों को आपके समक्ष आपके माध्यम से देश के समक्ष रखना चाहता हूं। पहली बार इस कानून में EFIR का प्रावधान जोड़ा गया है। कई माननीय सदस्यों ने कहा पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार से उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचना देना जरूरी होगा, नंबर 1। नंबर 2, FIR से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने का प्रावधान किया गया है। ये बहुत ही उत्तम कदम है। यही नहीं, सर्च और जब्ती के वक्त में वीडियोग्राफी जरूरी होगा। न्याय प्रक्रिया में ये बहुत सार्थक कदम उठाने का काम इस कानून के माध्यम से सरकार ने किया है। इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधों की घटना पर फॉरेंसिक टीम द्वारा जांच की जाएगी। पुलिस के मनमानी पर अंकुश लगेगा और अभी लोगों का मानना है कि पुलिस बड़े मामलों में झूठा साबुत इकट्ठा करके, और मैं समझता हूं कि इकट्ठा करने की जगह मिटाने का ज्यादा काम करता था। उससे हम अपने आप को बचाएंगे। इससे कोर्ट के सामने वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध होगा, जिसके बाद कोर्ट में दोषियों को बरी होने की बहुत कम संभावना होगी। इस कदम से 3 साल के बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और साइंटिस्ट देश को मिलेंगे। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चियों के साथ अपराध के मामले में
मृत्यु दंड का प्रावधान रखा गया है महोदय। मॉब लंचिंग में 7 साल का आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के भी 3 प्रावधान रखे गए हैं। मोबाइल या फोन पर महिलाओं के चैन स्नैचिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसमें नए कानून के तहत प्रावधान रखा गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का काम किया गया है। अनेक अपराधों में जुर्माना की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध के श्रेणी में लाया गया है, जो आमतौर पर बहुत ज्यादा होने लगा था सर। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया गया है। बहुत ही उत्तम कदम है। पहली बार न्याय देने की समय सीमा निर्धारित की गई है, निर्धारित की गई है और पहली बार छोटे मोटे अपराधों को निपटारा के लिए पूरे देश में समरी ट्रायल के अस्थायी प्रावधान करने का काम किया गया है। चोरी की संपत्ति रखना, शांति भंग, धमकी देना जैसे मामलों में अब समरी ट्रायल होगा और एक ही सुनवाई में जुर्माना या छोटे दंड के साथ इसका निपटारा करने का काम किया जाएगा। महोदय, माना यह जा रहा है कि इससे अदालतों को 40% केस जो है उसका बोझ कम जाएगा। यही नहीं महोदय, ट्रायल के दौरान बार बार तारीख पर तारीख लेने के सिस्टम को बंद करने का काम किया जाएगा। कोई भी आरोपित को वकील को 2 बार से अधिक तारीख नहीं ले सकता है। अधिकांश केस इसी कारणों से वर्षों तक लटके रहते थे। सुनवाई पूरी नहीं होने के बाद अदालत को भी अब 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना ही पड़ेगा, इसलिए अनिश्चित काल के लिए इसे टाला नहीं जा सकेगा। बहुत ही उत्तम कदम है, लोगों को इससे बहुत ही सहूलियत मिलने वाला है। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों के समय सीमा तय कर दी गई है और प्रस्तुति देखकर अदालत को आगे 90 दिनों की परमिशन और दे सकेगी। इस प्रकार कुल मिलाकर के 180 दिन के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल की व्यवस्था करने का काम किया गया है। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर ही न्यायाधीशों को फैसला देना होगा। इससे सालों तक जो निर्णय पेंडिंग रहा करता था, अब उससे निजात मिलेगा और फैसला 7 दिन के अंदर ही ऑनलाइन करके लोगों के बीच में लाने का बाध्यता होगी। यही नहीं, पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकार की रक्षा होगी। माननीय मोदी जी की सरकार राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है। एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है महोदय, और मैं समझता हूं कि इस कदम से देश की जनता को बहुत राहत मिलने वाला है। कीजिए। अभी तक सिर्फ आरोपितों को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी का प्रावधान है। आगे एफआईआर के लिए, चार्जशीट के लिए और अदालत के लिए अब आप प्लीज समाप्त कीजिए। कब समाप्त होने जा रहा है सर? फैसले को पूरी तरह से डिजिटल होगा। गवाहों और पीड़ितों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जा सकेगा और गवाहों और आरोपितों को किसी को सम्मन या नोटिस ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से करने का भी प्रावधान है। महोदय, इस ई गवर्नेंस के माध्यम से देश में न्याय और सुरक्षा का वातावरण बनाने के लिए मैं प्रयास के लिए आभारी हूं। इस सरकार ने लोगों को तकलीफों को समझने का काम किया है और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर पुलिस कोर्ट कचहरी में फंसने का मतलब बर्बाद होना, और मैं समझता हूं कि ये जो अंग्रेजी कानून का जो वातावरण था उससे हमें बहुत ही मुक्ति मिलेगी। हमारे कामकाज का जो न्यायिक कामकाज को हम विस्तारित से
आगे कम करने का कोशिश करेंगे। महोदय, मैं एक बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। 2-3 बातें हैं महोदय। सरकार ने बहुत काम किया, मैंने बताया, गरीबों के लिए बहुत न्याय प्रक्रिया में सहजता करके न्याय देने का काम किया। एक बड़ा सवाल यह है महोदय, आमतौर पर अभी एहसास करते होंगे कि कोर्ट में जो केसेस जाते हैं सर, और मैं समझता हूं कि न्याय मिलने में इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई ऐसे लोग हैं जो ट्रायल कोर्ट में हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, जमानत करने वाला भी नहीं है। उसके तरफ भी सरकार को एक नीतिगत सोच के तहत, निर्णय लेने के तहत, जिनका कोई नहीं है देखने वाला, उसके लिए सरकार इस पर विचार करे क्या उपाय हो सकता है। और मैं समझता हूं कि न्यायालय में जाने के बाद सर, मान लिया कि नीचे से न्याय नहीं मिलता है, वो आगे के कोर्ट में जाता है, तो वकीलों की फीस इतनी अधिक है सर, वो देने में असमर्थ। नीचे के कोर्ट से उनको न्याय मिला, ऊंचा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक आता है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकीलों का सर लाखों लाख रुपया फीस होता है, वो देने में असमर्थ है सर। क्या हम इस पर विचार नहीं कर सकते हैं कि निश्चित तौर पर ऐसे गरीब लोगों के लिए हम कोई ऐसा सहजता के साथ कानून में प्रावधान करें और निश्चित तौर पर ऐसी कोई व्यवस्था करें ताकि उन गरीब को जो सामर्थ्यवान नहीं है उनको आसानी से न्याय मिल सके, और ऊंचे स्तर पर जो न्यायालय में वो नहीं जा पाते हैं इसलिए कि उनके पास औकात नहीं है, मैं निश्चित तौर पर उसके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आपके प्रति और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि ऐतिहासिक कानून ला करके जो परिवर्तन करने का काम किया है, 100 वर्ष के बाद और अगले 100 वर्ष तक एक कानून लागू रहेगा और न्याय मिलता रहेगा, और न्याय गरीबों को मिलेगा जो वंचित लोग हैं। साहस करने का काम अगर कोई कर सकते हैं तो इससे आभार व्यक्त करते हैं, अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद सर। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आज आपने भारत के गृह मंत्री जी के द्वारा जो आज एक इंडियन क्रिमिनल जस्टिस जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर का एक था, उसको बदलने का एक आमूलचूल परिवर्तन करने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक, इस जो तीनों विधेयक को प्रस्तुत किया है माननीय गृह मंत्री जी ने, उसके समर्थन में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। मैं उस दिन भी सदन में मौजूद था जब माननीय गृह मंत्री जी इस तीनों विधेयक को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे, और उस समय जब सदन के समक्ष अपने इन विधेयक को प्रस्तुत करते समय देखिए तो हमारे आज जो विपक्ष के बहुत साथी नहीं हैं, उनमें से उस दिन विपक्ष के कई साथियों ने इस बात का उल्लेख किया कि ये जो विधेयक हैं, इनके जो नाम हैं भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य विधेयक, क्या ये नाम बदले नहीं जा सकते? इन नाम से जो पुराने नाम थे, इसको कठिनाई होगी शायद पूरे देश के पैन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। इस तरह का सवाल उन्होंने उठाया था। आज शायद इस सदन में चर्चा में भाग लेते तो निश्चित तौर से आज इस सदन के माध्यम से जो इस तीनों विधेयक के संबंध में पूरे देश में संदेश जा रहा है कि आखिर जो विपक्ष, आज भी विपक्ष की वो मानसिकता कि उस भारतीय दंड संहिता या इंडियन पेनल कोड, जिसका नाम ही था भारतीय दंड संहिता, अगर उस भारतीय दंड संहिता को समाप्त करके भारतीय न्याय संहिता लाने का काम भारत के गृह मंत्री कर रहे हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि आज दंड की जगह पे न्याय देश को मिलेगा इस कानून से। तो स्वाभाविक है कि आज जो इस कानून में बदलाव हुआ है, जैसा हमारे साथ लोगों ने कहा कि आज इस कानून को बदलने के पीछे आखिर कारण क्या है और ये कानूनों का इतिहास क्या है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें कही है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि ब्रिटिश लॉ के पहले भी जो ब्रिटिश से, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जो भी आईपीसी सीआरपीसी आई, ये ब्रिटिश का लॉ था, ब्रिटिश के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन उसके पहले भी कानून था। उसके पहले जब ब्रिटिश नहीं आए थे
तो उस समय हमारे यहाँ मुफस्सिल कोर्टें हुआ करती थी और वो मुफस्सिल कोर्टों में एक तरह से मोहम्मदन लॉ के माध्यम से, क्योंकि मुगलों की सल्तनत थी तो मुगलों की सल्तनत में जो उनके अपने इस्लामिक आधार पे कानून थे वो उन मुफस्सिल कोर्टों से लोगों को न्याय देने का काम करते थे। तो जब प्री ब्रिटिश अराइवल के समय एक तरह से मुफस्सिल कोर्ट के जो कानून थे और फिर जब उसके बाद हम इस देश में अंग्रेज आए और उन्होंने आकर के इंग्लिश क्रिमिनल लॉ जिस तरह से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो एक कन्फ्यूजन होना शुरू हुआ और वो कन्फ्यूजन हुआ कि मुफस्सिल कोर्ट वाले कानून चलेंगे कि जो ब्रिटिश से आईपीसी। तो फिर 1831 में उस समय एक इंडियन लॉ कमीशन बनाया, जिस लॉर्ड मैकाले की बात कर रहे हैं कि आज भी लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी आज उसके लिए भी ये देश इस बात के लिए आभारी रहेगा कि 17वीं लोकसभा शायद कई चीजों के लिए देश का एक इतिहास का साक्षी बनेगा। अगर उस लॉर्ड मैकाले की जो बाबू बनाने की पद्धति की इस देश में लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी थी उसको भी बदलने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि आज वो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं इसकी पूरी दुनिया में। आज हमारी, मैं उस पर नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन आज उसका परिणाम है कि आज हम पूरी दुनिया में ज्ञान के मामले में, एक्सीलेंस के मामले में, आईटी के मामले में, सारी चीज़ों में हम आगे जा रहे हैं। और उसी लॉर्ड मैकाले की जो 1831 में जो इस तरीके से एक आईपीसी सीआरपीसी को उसने एक स्ट्रीमलाइन देने के लिए लीगल सिस्टम इंडिया में किस तरीके से हो, तो वो 1833 में उसने अपनी रिपोर्ट दिया और उसका केवल एम यही था कि वो बिल किस तरीके से अपने इस इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कॉलोनाइज कर सके, मतलब ब्रिटिश के उससे हो सके, उस दिशा में हुआ था। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज अगर जैसा हमारे साथियों ने कहा कि इसके पहले इस कानून को बार बार कह रहे थे कि 163 वर्षों के बाद आज ये आईपीसी चेंज होने जा रही है, जो बनाए हुए कानून है, या उसके पहले के जो मुफस्सिल के भी कानून थे वो भी सैकड़ों साल तक चले होने जा रही। ये तो 163 साल का हमारे ब्रिटिश के जो बनाए हुए कानून है, या उसके पहले के जो मुफस्सिल के भी कानून थे वो भी सैकड़ों साल तक चले थे। तो मुझे लगता है कि आज देश को आज़ादी 1947 में मिली, निश्चित तौर से हम ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ाद हुए, भारत को आज़ादी मिली, लेकिन उनके कानूनों से आज भी आज़ादी नहीं मिली थी। आज भी हमारे उस लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, लीगल सिस्टम में आईपीसी सीआरपीसी वही चला रहा था। तो मुझे लगता है कि एक आज़ादी अगर 1947 में मिली तो आज उनके बनाए हुए कानून जो केवल दंड के लिए थे, अपने ब्रिटिश रूल को, अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए था, लोगों के मन में रीजन ऑफ टेरर कायम करके एक ब्रिटिश की गुलामी की दास्ता की जंजीरों में जकड़ने का था, आज इस 2023 में इतिहास इस बात का गवाह होगा कि 19 और 20 दिसंबर को इस देश के उन ब्रिटिश के बनाए गए उपनिवेशवाद के कानूनों से अब भारत को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत के गृह मंत्री जी ने प्रस्तुत किया, इससे इस देश को आजादी मिलने जा रही है। तो स्वाभाविक है कि आज ये इसका विचार कहाँ से आया। मुझे लगता है इसका विचार जब 15 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम एक पंचप्रण की बात उन्होंने कही थी, तो पंचप्रण उन्होंने किस दिशा में कहा? आखिर ये किसी भारत माँ के सपूत के ही मन में ये आ सकता है कि हम अपने इस देश से इस बात का संकल्प लें कि हम गुलामी के हर अंश से मुक्ति दिलाएंगे, और उस गुलामी के हर अंश से जो मुक्ति की बात थी, या अपने विरासत पे गर्व करने की बात, या विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के एकता और एकजुटता के साथ नागरिकों में जो कर्तव्य की भावना थी, इस चीज को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जो पंचप्रण उस लाल किले से देश की जनता का आह्वान किया था, आज उस पंचप्रण को ये भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा प्रस्तुत ये तीनों विधेयक उन भावनाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं, या उनकी उस भावनाओं को फुलफिल कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से टुडे 3 bills आर गोइंग टू फुलफिल दिस ओन गो ऑफ द श्री मोदी जी। और आज मैं इसमें कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से
आज इस हमने बनाया है, इसका इतिहास अगर आप देखें तो आज आप इसको महत्वपूर्ण ढंग से देखेंगे कि हमने इस कानून को बनाने के पीछे जो भारतीय न्याय संहिता थी, इसमें कौन कौन चीजें आवश्यक हैं। आज जो भारतीय न्याय संहिता ला रहे हैं, काफी सेक्शंस की बात हुई, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है हमारी सरकार में कि डिटेक्शन ऑफ द क्राइम हो, कि मतलब कोई अगर अपराध होता है तो उसका वास्तविक रूप से उसको डिटेक्ट किया जा सके और उसको कंक्लूजन या उसको एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जा सके। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जिसमें काफी बातें कही गई कि हमारा डिजिटल सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होगा और एविडेंसेज होंगे, या डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट और इनोसेंस, मतलब वो व्यक्ति अपराधी है या इनोसेंट है। ये भारतीय न्याय संहिता का जो प्रमुख इसके संबंध में कि लॉ कमीशन से, सारी यूनिवर्सिटी से, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, खुद 158 बार भारत के गृह मंत्री जी ने बैठकें की, सभी हाई कोर्ट के जजेस से, सारे स्टेट्स के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ 4 साल तक कंसल्टेशन किया। तो उसके पीछे एक जिस तरीके से अमृत का मंथन हुआ निकला है कि उस डिटर्मिनेशन ऑफ गिल्ट, कि अगर कोई दोषी है तो उसको निश्चित तौर से दोषी सिद्ध करके उसको सजा दिलाना, और अगर कोई दोषी नहीं है, इनोसेंट है, बेगुनाह है, तो उसको निश्चित, और इम्पोजिशन ऑफ सुटेबल पनिशमेंट ऑफ द गिल्टी। तो इस तरीके से जो इस न्याय संहिता के द्वारा एक कानून बनाया जा रहा है, वो नागरिक के अधिकारों को संरक्षित करेगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, एम्प्टी थ्रेट्स डू नॉट डेटर, अर्थात ठोस आपराधिक कानून स्वयं संचालित नहीं हो सकते, उन्हें प्रशासन और परिवर्तन के लिए तंत्र की आवश्यकता होती है, और वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में समान रूप से महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं कहना चाहता हूं कि हमारे काफी साथियों ने उन बातों को कहा है, मैं उसको दोहरान, अरे अब आपने सबको 15-20 मिनट, 25 मिनट, 5 मिनट तो मुझे दे दें अधिष्ठाता महोदय। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इसके पीछे जो हमारी आइडिया है ऑफ कम्युनिटी सर्विस की बात हो, सिटीजन राइट्स की बात हो, तो आज जो इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिटी सर्विस एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इन स्टेप टुवर्ड्स इंफॉर्मेटिव जस्टिस, रिफॉर्मेटिव जस्टिस, दिस इज इन कंसर्न विद द आइडिया ऑफ गांधी जी ऑफ सर्विंग द कम्युनिटी एज द बिगेस्ट इंडिविजुअल। तो इस तरीके से जो हमारे की फीचर्स हैं, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, चाहे भारतीय न्याय संहिता हो, आज इसमें कई चीजों का उल्लेख हुआ, लेकिन आज उसके क्लास 109, 110 में क्या है कि जो आईपीसी में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था, और उसको भारतीय न्याय संहिता में हमने स्पष्ट तौर से क्लाइम किया। मॉब लिंचिंग के लिए था कि कोई प्रोविजन नहीं था, उसको क्लास 101 में किया कि मर्डर बाय ग्रुप ऑफ 5 और मोर पीपुल बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, रेस, या इसी तरह फेक न्यूज। आजकल कितना, चाहे फेक न्यूज से, जिस तरह से एक दिन मैंने एक सवाल उठाया था, डीप फेक की बात भी है कि आज वो एक बहुत बड़ा समाज में तनाव पैदा कर सकता है। इसी तरह से टेररिस्ट एक्ट के लिए भी एक डिफाइन करने की बात हुई। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो इस तरीके से आज स्थिति बनी है उसको मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संगठन, इसमें भी जो हमारा मैंडेट है, उसमें मैंडेट एक निश्चित तौर से है। हमारे कई साथियों ने कहा है कि जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन था फॉर केसेज, जो उसमें भी निश्चित तौर से उसको यूज किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रायल्स को अलाउ किया जाएगा। डिजिटल वर्ल्ड के साथ जो बदलाव हो रहा है, और आज सिग्नेचर के साथ साथ वॉइस सिंपल और फिंगर इंप्रेशन को भी मान्य किया जाएगा। और इसी तरह से जो भारतीय हमारे साक्ष्य संहिता है, उसमें भी जो हमने इंडियन एविडेंस एक्ट को हमने रिप्लेस किया है, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, सब बातें कही जा चुकी हमारे इंक्लूड वो कही जा चुकी है, उसको मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। मैं केवल नई बातें कहूँगा। नई बातें मैं ये कहूँगा कि चाहे हमारी स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी होम अफेयर्स की, रिपोर्ट 110 हो, 111 हो, 146 हो, या 2011, 2005, 6 में, ये सारी चीज़ों में था। और जिस तरीके से तमाम हमारे कमीशंस बने, और उन कमीशंस के बाद आखिर निकला क्या, पहले क्या था, आज इसमें माननीय जो एक ह्यूमन सेंट्रिक इस कानून को बनाने के पीछे जो गृह मंत्री जी या हमारी सरकार का उद्देश्य है कि इसमें
हमने इसलिए किया कि अगर ह्यूमन सेंट्रिक न होता तो आखिर हम इस भारतीय न्याय संहिता में हमने फर्स्ट चैप्टर में किसको लिया, जो पहले 376 सबसे नीचे था, तो आज उसको हमने फर्स्ट चैप्टर में लिया, चाहे महिलाओं और बालिकाओं के लिए जो कहा गया है, तो उस तरीके से हमने ये किया है। श्रीमती संगीता सिंहदेव। अधिष्ठाता महोदय, कृपया 5 मिनट में आप अपनी बात कहिए। वक्ताओं की बहुत लंबी सूची है, कृपया संक्षिप्त रहिए प्लीज। सर मैं पहली महिला बोल रही हूँ, मेरे को 10 मिनट दीजिए सर। नहीं आप बोलिए। धन्यवाद। Thank you sir. I rise to welcome and support this visionary bill which seeks to do away with the last remnants of the British Raj by replacing the archaic and redundant laws of the colonial era with utilitarian and pragmatic laws which are more relevant in today's context whilst keeping constitutional morality in mind. So we as a people are litigant by nature, with great faith in the criminal justice system and retributive justice. Our Honourable Prime Minister and our Honourable Home Minister in the last 4 years have brought in path-breaking legislations, whether it be a triple talaq or abrogation of Article 370, or more recently the reorganization and reservation in Jammu and Kashmir. And this bill is just going to add to their tally of path-breaking legislations. They are leaders who have the will and the courage of their convictions to bring in revolutionary legislations for the betterment of the country. So, there's several interesting aspects of the bill, like for the first time community service has been introduced. Abatement of an offence committed in India by a person outside India has been made an offence. After that, a new offence, which is particularly significant, has been added, which is mob lynching, since the Supreme Court has been requesting the centre to bring in this legislation to control mob lynching. After that, sir, there is another very interesting new provision which strengthens the clutches of the law on proclaimed offenders and absconders. And this is a problem which we are facing currently. As per Section 356, Subclause 6, absence of the accused won't prevent the court from proceeding with the trial, including pronouncement of judgment. And no appeal by proclaimed offenders would lie until he or she appears before the court. This is a very interesting provision which has been added to this bill. So what has really impressed me the most, and which I appreciate as a woman, is chapter Roman 5, wherein detailed provisions have been made for offences against women and children. Whether it be a new offence has been added for having sexual intercourse on false promises of marriage, employment, promotion, or by suppressing one's identity, whether it is instances, which are on the rise, where women are also involved in cases of assault or use of criminal force against other women to disrobe or engage in acts of voyeurism. These two criminal acts have also been made gender neutral, which is a very important point to note here, sir. Apart from that, a new section has been added to make hiring, employing or engaging a child to commit an offence has been made a punishable offence, which is also very important. So besides these, there are certain other important issues, like the bill emphasizes on increased use of forensics and technology, and under the Indian Evidence Act, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, more emphasis has been placed on forensics and technology, and the definition of the primary document, secondary evidence, has been changed
to be more relevant with, all the internet usage and things like that. So, I would like to say here that the section which deals with women is very welcome, because right from cyberbullying to stalking or causing a woman to abort or miscarry a fetus without her consent, or buying and selling children for the purpose of prostitution, all these, every aspect has been paid considerable attention to. And I just want to add here, I don't want to take too much of the House's time, that I agree wholeheartedly with the Honourable Member Satyapal ji when he talked about 2018 when the Supreme Court decriminalized adultery. This has had a very disturbing effect on the fabric of Indian society. Women are treated as broodmares only to give children, and thereafter the man goes on with his life as he feels fit. And in rural India, women are being beaten by drunken husbands, and there are, far-reaching ramifications. I would like to request the Honourable Home Minister to please look into this matter and to review this act which had been decriminalized. Lastly, sir, I would just like to say in conclusion that I particularly compliment and thank the Honourable Prime Minister and the Home Minister for this transformative and progressive bill which addresses the concerns of today, and especially for putting the sort of interest of the unborn child and his mother in the forefront. Once again, thank you very much. Thank you. श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, कृपया समय का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं इस ऐतिहासिक बिल पर जो मुझे मौका मिला है, मैं पार्टी संगठन को भी बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है इसके लिए, और ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है। और मैं इस बात के लिए भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इस 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं, और आदरणीय गृह मंत्री जी जिन्होंने इससे पहले जो 370 धारा जो है उसका बिल जो लेकर आए, उसके एब्रोगेशन का, और उसके भी हम साक्षी बने, और इसके साथ साथ आज इस ऐतिहासिक बिल का जो आज यहाँ पर लाया जा रहा है, तो इसके लिए भी हम साक्षी बन रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभापति महोदय, इंडियन पीनल कोड 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जा रहा है। सीआरपीसी 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहा जा रहा है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये इंडिया से भारत तक की यात्रा है, जिसको हम धीरे धीरे जो है अब वो आगे बढ़ रहे हैं विकसित भारत की ओर। सभापति महोदय, ये बिल 11 अगस्त 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया था आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा, और 11 अगस्त को ही स्टैंडिंग कमेटी को ये रेफर कर दिया गया था, और 10 नवंबर 2023 को स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई, उसके बाद 12 दिसंबर को इसको विड्रॉ किया गया, क्योंकि वो जो भी रिकमेंडेशंस आई थी जो कमेटी की, उसको उसके अंदर डालने के बाद, उसमें अमेंड करने के बाद फिर 12 दिसंबर 2023 को वापस इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और आज जो है इसके ऊपर चर्चा और उसके बाद इसको पास करने के लिए यहाँ पर जो है चर्चा सब चल रही है। और इसका नाम अब, क्योंकि ये दोबारा से इसमें आया है, तो इसका नाम अब बदलकर भारतीय न्याय संहिता सेकंड 2023 किया गया है, और इसके साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेकंड 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेकंड 2023 कहा गया है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले की प्राचीर से ये कहा कि हम अमृत काल में हैं, और इस अमृत काल के अंदर हम पंच प्रण करते हैं, और वो पंच प्रण ये थे सभापति महोदय की गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, भारत को विकसित भारत बनाना। नंबर दूसरा, कॉलोनियल माइंडसेट को पूरी तरह से समाप्त करना। नंबर तीसरा, अपनी संस्कृति पर, अपनी जड़ों पर गर्व करना, मान करना। नंबर चौथा, एकता, एकजुटता। नंबर पांचवा, आम नागरिक के अंदर कर्तव्य बोध का होना। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि ये 5 प्रण नहीं है, बल्कि ये भारत के 5 प्राण हैं, और इसी के तहत ये लगता है कि भारत की जो ये विकसित भारत की जो यात्रा है,
इस विकसित भारत की यात्रा के अंदर सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का रहता है तो महिलाएं, युवा, किसान और गरीब। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं चारों को कहा है कि वो इन 4 जातियों में ही विश्वास रखते हैं और इनकी ही तरक्की जो है वो हमारे देश को विकसित भारत की ओर लेकर जाएगी। इसीलिए सभापति महोदय, इसके अंदर क्या किया गया है कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो महिलाओं को और बच्चों को दिया गया है। इसलिए सेक्शन 63 और 64 को रखा गया है और जो FIR है उसको डिजिटाइज करने के लिए रखा गया है प्रावधान। और इसके साथ साथ जो बताया गया है कि जैसे विक्टिम महिला जो है उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा बंद कमरे में, सब कुछ बहुत विस्तार से बताया गया है। तो मैं इसमें कहना चाह रही हूं सभापति महोदय कि अभी पिछले दिनों हमारे पार्लियामेंट को देखने के लिए कम से कम 250 के करीब नए बच्चे जो IPS ऑफिसर थे वो आए थे और वो भी पूछ रहे थे कि जी आपको इसमें सेक्शंस चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी। तब उनको मैंने बताया कि किस तरह से जो हमारी सोच है, आदरणीय गृह मंत्री जी की सोच है कि बच्चे और महिलाएं हैं उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो अगर उनके धाराएं जो है वो अगर पीछे जा रही है 376 पे जा रही है तो उसका फायदा क्या है। हमें अगर हम प्रेफरेंस महिलाओं को देना चाहते हैं तो हम इसको आगे रखना चाहिए, इसलिए इसके सेक्शंस के अंदर चेंज किया गया। तो मुझे ये लगता है कि अब हमारे जो भारत के युवा हैं उनको इस बात की समझ में आएगी धीरे धीरे से कि ये सेक्शंस जो हैं वो क्यों चेंज किए गए हैं, इसके पीछे की हमारी मंशा क्या है। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय रविशंकर जी ने जब ये बात कही कि जो कॉलोनियल जो हमारा सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए मुझे लगता है कि एक ही काल के अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज को बदला गया और उसी काल के अंदर ये IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट आए। ये बिल्कुल सही है। जब मैंने पूरा इसका विश्लेषण किया सभापति महोदय तो मुझे पता लगा कि 10 जून 1834 को थॉमस वेमिंगटन मकॉले भारत में आया था और 1834 में जो है वो अंडर चार्टर एक्ट 1833 में जो है ये फर्स्ट लॉ कमीशन जो है आया, उसके तहत इसका ड्राफ्ट बनाया गया। ये जो एविडेंस एक्ट है इसका ड्राफ्ट बनाया गया। और आप कमाल की बात देखिए सभापति महोदय कि 1835 के अंदर ही इंडियन एजुकेशन आया और उसके मिनट्स में जो है ये वेबिंगटन, थॉमस वेबिंगटन मैकॉले क्या कहता है कि ओनली फंड वेस्टर्न एजुकेशन नॉट एनी अदर टाइप ऑफ एजुकेशन, कि सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसको फंड करो, इसके सिवा किसी भी जो है एजुकेशन सिस्टम को फंड नहीं करना। नंबर 2 उसने क्या कहा सभापति महोदय, क्लोज ऑल यूनिवर्सिटीज दैट ओनली ऑफर कोर्सेज इन ईस्टर्न फिलॉसफी, उन सब यूनिवर्सिटीज को बंद किया जाए। आपने देखा होगा तभी जो है धीरे धीरे हमारी जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या हुआ। 3rd नंबर पे उसने क्या कहा सभापति महोदय, जस्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडियन शुड रिसीव गवर्नमेंट एजुकेशन, दीज इंडियन वुड देन इंस्ट्रक्ट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेस। थोड़े से को पढ़ाओ, जैसा कि वो सिस्टम उन्होंने बताया कि भी हाँ एक जो है हुकूमत का सिस्टम, बाकी वो सबके ऊपर राज करेंगे, द डाउनवर्ड फिल्टरिंग पॉलिसी। और इसके बाद क्या कहा सभापति महोदय, उन्होंने कहा है कि इंडियन बाय ब्लड एंड कलर और ब्रिटिश बाय टेस्ट, लाइक्स, बिलीव्स, मोरालिटी एंड इंटेलेक्ट, कि इनको आप ऐसा बना दो। सभापति महोदय, अभी हमारे 2 रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बहुत विस्तार के साथ जो है, इसके मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी, बहुत विस्तार के साथ उन्होंने बताया कि किसमें क्या क्या सेक्शन जो हैं उसको चेंज किया गया। लेकिन मैं इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहती हूं कि मैं स्टैंडिंग कमेटी जो है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने बहुत बारीकी के साथ जो है इसके अंदर जो जो चेंजेस आने चाहिए वो उन्होंने करके बताए। और माननीय गृह मंत्री जी ने खुद 158 मीटिंग जो है इसकी अटेंड करी, 12 स्टेट्स जो हैं और उनसे इनकी सलाह ली गई, 6 यूटी से ली गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ली गई, 16 हाई कोर्ट से ली गई, 5 जुडिशियल अकेडमी से ली गई। समाप्त कीजिए। सभापति महोदय, मुझे प्लीज देखिए, महिलाएं जो है एक पहले बोलिए, उसके बाद मैं दूसरे नंबर पर बोल रही हूँ। जी। हाँ जी, इसलिए एक मुझे पूरा करने दीजिए सभापति महोदय। 22 लॉ यूनिवर्सिटीज जो है उनसे सलाह ली गई, 142 MP से और 270 MP जो है उनसे इसमें सलाह ली गई। 511 जो इसके अंदर जो थी उसको अब घटाकर 358 सेक्शंस इसके अंदर कर दिए गए हैं। टेररिज्म जो पहले था नहीं सभापति महोदय, उस समय में 1834 के अंदर जब इसको लेके आया गया कमीशन के थ्रू, आप ये देखिए कि उस समय में जब ड्राफ्ट उन्होंने बनाया कोई मोबाइल फोन नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, कितनी चीजें ऐसी हैं जो कि अब धीरे धीरे जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आ रही हैं, तो इसलिए भी इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। और इसलिए जो है टेररिज्म को अब इसके अंदर रखा गया सेक्शन 113 और करप्शन को रखा गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है पेटी क्राइम को 111, 112 इस तरह से इसमें रखा गया है। और सेक्शन 103(2) जो है जिसके अंदर मॉब लिंचिंग, देखिए सभापति महोदय, मॉब लिंचिंग जो है उसकी बहुत सी घटनाएं हमने देखी, आपने भी देखी, और इसके अंदर अब ये कहे कि 5 या 5 से ज्यादा लोग समाप्त कीजिए। अगर रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे
कम्युनिटी के बेस पे, सेक्स के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे और पर्सनल बिलीफ्स के बेस पे या किसी अदर ग्राउंड पे अगर कोई किसी को जो है वो मार देता है तो उसको डेथ पेनल्टी होगी अगर उसका कन्विक्शन इस क्राइम में होता है। ठीक। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि हैवानों और कातिलों को मजहब से ना जोड़ा जाए। मुजरिम जो भी हो उसे किसी कीमत पर छोड़ा ना जाए। सभापति महोदय, एक मिनट के लिए मैं इसके साथ साथ ये कहना चाह रही हूं कि बहुत ही सुनहरा मौका था हमारे विपक्षी दलों के पास। गृह मंत्री जी ने ये बिल्कुल साफ कही थी बात कि हम इस बिल को जो है हड़बड़ी के अंदर पास नहीं करना चाहते। अगर सभी विपक्षी दल हैं इसके अंदर भागीदारी करते, श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, मुझे सिर्फ 2 मिनट कि अगर इसके अंदर सभी विपक्षी दल जो हैं वो इसके अंदर भागीदारी करते तो उनके लिए बहुत सुनहरा मौका था ये, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने आज जिस तरह से आपने देखा होगा कि राजपथ को हमने कर्तव्य पथ के अंदर बदला। श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, सबसे पहले उनका जो घर है 7 रेस कोर्स को हमने जो है वो कल्याण मार्ग के रूप में उसमें बदला है। आप प्रारंभ करें। बस 1 मिनट के लिए, सिर्फ आप 2 मिनट से 1 मिनट कह रही हूँ मैं आपको। जी, 1 मिनट के लिए खत्म करने दीजिए। आप प्रारंभ करें। जी, तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि आज मोदी जी जिस तरह से हमारे देश को भारत की ओर ले जाना चाहते हैं, अंत में सभापति महोदय ये राहें ले ली जाएंगी, मैं आपको अभिनंदन करता हूँ। ये राहें सभापति महोदय, ये राह आप उधर आप बोलिए। सर, वास्तव में ये जो कानून लाया गया है हिंदुस्तान में एक क्रांतिकारी अध्याय जोड़ रहा है। भारत में जो अंग्रेजियत के दास्ता करते हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। आजादी के इतने साल बाद भी हम ये अंग्रेजी की दास्ता मानसिकता में छोड़ नहीं सका, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। सर, भारत में अंग्रेज शासकों के द्वारा उनके साम्राज्यवादी लिप्सा को चरितार्थ करने के लिए जो दंड संहिता जो कि बिल्कुल गुलामी की निशानी थी उसको हटा करके एक स्वतंत्र राष्ट्र का स्वाभिमानी जनता के लिए न्याय देने के लिए एक नई व्यवस्था बनाने के लिए ये 3 कानून, इंडियन पेनल कोड, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिफिल करके 3 नया कानून प्रवर्तन करने के लिए हम मोदी सरकार का निर्णय अत्यंत साहसिक, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। सर, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 70 साल तक इस विषय में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जब कोई युवा विप्लव करता है तब उनको कानून का डर दिखा करके, पुलिस का डर दिखा करके दबाया जाता था, अंग्रेजों के जमाने में और कांग्रेस के जमाने में। परंतु आज आजाद भारत में कानून का डर दिखा करके देश का नवनिर्माता तरुण शक्ति को दबाने का कोई परंपरा चल नहीं सकता है। माननीय मोदी जी ने इसमें विराम दे दिया और एक नया व्यवस्था चालू किया। सर, हमारे नई एजुकेशन पॉलिसी वो माकले भक्तों को बहुत चोट पहुंचा रहा है और इनको भी ये कानून में जो परिवर्तन होता है, ये पराधीनता के जो भयंकर निशानी थी उनको हटाने के लिए जब कोशिश किया जाता है उनको बड़ा पीड़ा होता है। कांग्रेस तो एक अंग्रेज के द्वारा ही निर्माण हुआ था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। बाद में बहुत देशभक्त आए लेकिन ये अंग्रेजी स्वभाव छोड़ा नहीं है। सर, इसलिए नया कानून बहुत जरूरी था। अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान के लोगों को मानव अधिकार का सुरक्षा से बढ़कर अंग्रेज शासन को भारत में स्थायी बनाना और मानववाद और महिलाओं पर अत्याचार से बढ़कर सोकल राजद्रोह और ब्रिटिश खजाना की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण था। सर, उधम सिंह को अपराधी माना गया अंग्रेजों के द्वारा, उनको फांसी की सजा दिया गया, लेकिन जो जनरल डायर जिन्होंने हजारों लोगों को मार दिया उनको तो अपराधी नहीं माना गया। अंग्रेजों की परिभाषा में अगर हम अपराध मानेंगे तो श्री अरविंद को, नेताजी सुभाष को उन्होंने अपराधी माना। हमारे जो परम प्रिय देशभक्त महावीर, वो अंग्रेजों की दृष्टि से उनको देखना, इस कांग्रेस की ये चाल को छोड़ना पड़ेगा। सर, इस 3 कानून का दुरुपयोग के कारण जनसाधारण बहुत अत्याचारित हो रहे थे। कोर्ट में मामला प्रलंबित था, जेल ओवरलोडेड था, गरीब और पिछड़ा वर्ग अत्याचारित, कन्विक्शन रेट कम था, अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या ज्यादा था। विधि आयोग ने सिफारिश किया था इसको परिवर्तन के लिए, बैज बरुआ, मल्लीनाथ और विश्वनाथन समिति का सिफारिश भी था, होम डिपार्टमेंट का, होम मिनिस्ट्री का स्टैंडिंग कमेटी का भी सिफारिश था, गृह मंत्रालय, राज्यपालों, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीशों, बार काउंसिल और लॉ यूनिवर्सिटी और सांसदों से सुझाव लिया गया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। व्यापक परामर्श के बाद माननीय गृह मंत्री ने लगभग 58 औपचारिक और 100 अनौपचारिक मीटिंग करके फिर ये निर्णय लिया। पार्लियामेंट अवधि, सर, कुछ गुलामी की निशानी जो है, जो कॉलोनियल लैंग्वेज है,
इसको परिवर्तन किया गया, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। इससे कांग्रेस का हार्ट बीट बढ़ जाता है। सर, ये यूनाइटेड किंगडम, प्रोविंशियल एक्ट, लंदन गेजेट, जूरी, वारिस्टर, लाहौर, कॉमनवेल्थ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड, हर मैजेस्टीज डोमिनियन। सर, ये सब शब्द जब चला जाता है कांग्रेस का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, इसलिए वो रोते हैं। सर, सबको तो आजादी नहीं चाहिए, जो गुलामी की जंजीरों को अपने शरीर में जकड़ लिया उनको आजादी नहीं चाहिए। सर, गुलामी की निशानी को हटा करके स्वाभिमान की ढांचा को खड़ा करने के लिए यह व्यवस्था हुआ। प्रलंबित न्याय को त्वरित न्याय में परिवर्तन करना, ऐसा कहा गया है। जस्टिस डिलेड मीन जस्टिस डिनाइड। कोर्ट का चाप को कमाना, प्रेशर कमाना, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, मानवाधिकार को सुनिश्चित करना, ये हमारे लिए ध्येय है। अंग्रेजों का गुलामी के निशान को छोड़ते ही कांग्रेसियों ने अंग्रेजियत को सुरक्षा देने के लिए हाउस छोड़कर भागे। हमें तो आनंद होता अगर इसमें ये रह करके विचार में अंश ग्रहण करते। सर, एक नेता ने कांग्रेस का बोला था, आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट। अंग्रेज पद्धति में खाना पीना, नाचना, बोलना, राम सेतु को तोड़ने वाले, गोहत्या बोध को नहीं सर 5 मिनट, गोहत्या बोध को प्रोत्साहन देने वाले, वंदे मातरम का बहिष्कार करने वाले, भारत को खंडित करने वाले, अंग्रेजों के सामने झुकने वाले, पूजनीय शंकराचार्य को गिरफ्तार करने वाले, पूजनीय स्वामी रामदेव को गिरफ्तार करने वाले, सनातन धर्म को गाली देने वाले, सब एकजुट हुए अपना निहित स्वार्थ के लिए। मात्र माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में इधर देशभक्त एकत्रित हुए हैं अपना स्वार्थ को राष्ट्र हित में समर्पित करने के लिए। सर मैं कहता हूं कि नया संशोधन में सर्वत्र राष्ट्रीय छापे, संगठित अपराध से संबंधित तथा छोटे मोटे संगठित अपराध से संबंधित सारा विषय को पुनः प्रस्तुत किया गया है। आतंकवादी कृत्यों के लिए भी कानून का पुनः प्रस्ताव किया गया है। सर, भारतीय दंड संहिता को निरस्त करके एक नया भारतीय न्याय संहिता को प्रतिष्ठापित करने का यह निर्णय वास्तविक साहसपूर्ण है और वैप्लविक है। महिला और बच्चों के प्रति अपराध को और राष्ट्र के प्रति अपराध को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है। 18 साल से कम लड़कियों के प्रति जो बलात्कार होता है, इसमें मृत्युदंड की व्यवस्था किया गया है, उम्र कैद की व्यवस्था किया गया है। सर, आज कांग्रेसी लोगों ने, विरोधी पक्ष ने इसका विरोध किया। सर, 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले हमारे देश में महिलाओं के प्रति अत्याचार के लिए मृत्युदंड का व्यवस्था हुआ था। सर, द्रौपदी का अपमान करने के लिए किचक को तुरंत मृत्युदंड दिया भीम ने। सर, कौरवों को मृत्युदंड दिया गया। सीता माता का अपमान के लिए रावण सहित सारे असुरों को मृत्युदंड दिया गया। सर, विवाह झूठा वादा करके जो यौन संबंध रखते हैं उनके लिए भी कड़ा सजा की व्यवस्था है। सर, न्यू प्रोविजन है, अंतिम वाक्य बोल दीजिए बस प्लीज। मृत्यु हो गया तो इसके लिए नया व्यवस्था किया गया है। सभापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये ऐसे बिल हैं जिन बिलों में अधिकांश, यदि हम भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत बात करें तो महिलाओं को सुनना बहुत जरूरी है। और मैं सोचती हूँ कि मेरे से पहले बहन सुनीता जी दुग्गल बोली और पूरी बात नहीं कह पाई। आप अपनी तो बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारी बात पूरी सुनिए। मैं केंद्रीय मंत्रालय से, गृह मंत्रालय के माध्यम से जो ये 3 बिल आए हैं, तहे दिल से इनका समर्थन करती हूँ। लेकिन इन बिलों के साथ साथ मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो बिल है ये महिलाओं से संबंधित है और इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए और जिस तरह से कानून की प्रक्रिया को बदलते हुए आपने ये बात कही, लेकिन इसका प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त को, जिस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 5 प्रण के लिए लाल किले की प्राचीर से बोले। उनमें एक प्रण यही है कि गुलामियत की जितनी निशानियां हैं उन सबको मिटाया जाए। तो ये भी गुलामियत की ऐसी निशानी थी जो 1860 से लगातार हमारे ऊपर ये कानूनी जामा चल रहा था। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह ये भारतीय न्याय संहिता 2023 का बिल आया है। और इसी तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम बना। और ठीक इसी प्रकार इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह हमने भारतीय साक्ष्य विधेयक की कल्पना की है।
मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये कानून केवल अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए थे, हमारे देश के लोगों के न्याय के लिए नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम देखते हैं, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं के लिए जो कानून आपने स्थापित किए हैं और जिनमें परिवर्तन करते हुए सारी व्यवस्था की है, लेकिन ये कौन सा कृत्य कब अपराध के में बदल जाए और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए, ये व्यवस्था आपने करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि प्रमुख बात है कि पहचान छिपाकर शादी करवाना, उसका जो दंड तय किया है वो दंड पर्याप्त नहीं है। रेप के मामले हों, 16 साल से कम उम्र की बेटी यदि इस तरह से रेप से प्रभावित होती है, नाबालिग हो, और उस समय में उनको मृत्यु दंड तो बहुत आसान है, लेकिन इसके जो आपने प्रस्तावित धाराएं लिखी हैं इनमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। और मैं तो यहाँ भी कहूंगी कि यौन उत्पीड़न या पीछे करने वाले, कोई भी पीछा करने वाले, महिला का पीछा करने वाले लोग, उनकी सजा के बारे में भी इसमें बहुत न्यून सजाएं रखी हैं। और मैं एक महत्वपूर्ण बात कहूं जो इसमें छूटी हुई है, जनजाति समाज के बहुत सारे सामाजिक संगठन, वहां उनका ही कानून लागू होता है। वहां आप हमारी न तो ये भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून लगेंगे, वहां जनजातियों के अपने सामाजिक कानून होते हैं। वहां यदि पढ़ी लिखी महिला सरकारी नौकरी में है तो कानून उसको रक्षा देगा, लेकिन यदि पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको कानून रक्षा नहीं देगा। ऐसी परिस्थिति में जनजातियों के बारे में आपको इसमें महिलाओं के सुधार के बारे में कानून में सुधार करना पड़ेगा। और मैं यहां तक कहूं कि आज बचपन में सगाई कर दी और जैसे युवा हुई और उस बच्ची की इच्छा नहीं है उस जगह शादी करने की, उसको उठाकर ले जाते हैं। कानून रक्षा नहीं कर सकता उसका। जनजातियों की बात करती हूँ, वहां कानून रक्षा नहीं करेगा, वहां उसको कानून की दृष्टि से बिल्कुल वो अपाहिज हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में जब शादी होने के बाद भी बेटा यदि नहीं हुआ और बेटी है तो उसको अपने पैतृक उसकी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में वो मजदूरी से या कहीं भी तरह से दुखी जीवन जीते हुए आगे बढ़ती है। तो ऐसी जनजाति की महिलाओं के लिए, ऐसे जनजाति समुदाय जिनके अंदर ये नीतियां हैं, जिस तरह ये व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में भी इस कानून में कोई बात उद्धृत होनी चाहिए थी। और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि महिला को समानता का दर्जा, ये समानता का दर्जा तो आप लोग भी नहीं दे रहे, चेयर भी नहीं दे रहे। हम आज सुबह से ही हैं, हमेशा पूरे टाइम रहते हैं, उसके बावजूद सबके बाद मैं सोचती हूँ कि भाई सतपाल जी ने और विद्वान हमारे कानून मंत्री शंकर, उन्होंने बिहार वालों ने, उन्होंने जिस तरह से विस्तार से बात बोली, क्या हम नहीं बोल सकते? हम भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको समय उचित देना चाहिए। और समय पर मैं तो हमारे चीफ विप से भी कहूंगी कि वो महिलाओं की बोलने के लिए आप सुनिश्चित करें कि कम से कम 2 के बाद, 3 के बाद, 4 बोलना चाहिए, 15 के बाद आप बुला रहे हैं। क्या बोले? हम तैयारी करिए पूरी 3 दिन से लगातार, लेकिन तैयारी के बाद हम पूरी बात नहीं कह सके। मैं तो यहाँ एक बात फिर कहूंगी कि अन्याय सहकर बैठ जाना ये बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बांधुओं को दंड देना धर्म है। जी। श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी। ये ऑन हो गया? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण न्याय संहिताओं पर बोलने का अवसर दिया है। मैं यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संविधा 2023 और भारतीय साक्ष्य नीति विधेयक 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष जी, हमारे देश में, भारतीय इतिहास में और संस्कृति में लगातार अपराध व न्याय के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, और जो भी लिखा गया है वह मानव के मूलभूत अधिकारों को और व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है, और अपराध को हमेशा दुष्कृत्य माना गया है। आज 150 साल बाद हम लोगों को आज इन आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इससे पड़ी कि 200 साल जिन अंग्रेजों ने हम पे राज किया, उन्होंने पूरा एक भ्रम पैदा किया। भ्रम पैदा ये किया कि सबसे अच्छा इतिहास लिखने वाले अंग्रेज हैं, सबसे अच्छी भाषा अंग्रेजी है, सबसे अच्छी शिक्षा पद्धति ब्रिटिश है, और सबसे अच्छी जो
औषधि साइंस है, विज्ञान है, वह भी इंग्लैंड की है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद यह निर्णय लिया कि हमें इसमें मूलचूर परिवर्तन करने की आवश्यकता है इस चिंतन में। क्यों? क्योंकि हम एक सॉवरेन स्टेट हैं। क्यों? क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। और अगर भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जननी है, तो एक संप्रभु राष्ट्र और कल्याणकारी व्यवस्था के अंतर्गत जो दायित्व सरकार का बनता है वो ये है कि पूर्ण और त्वरित न्याय दे और विधि नियम नागरिक केंद्रित हो। जिस तरह से हमारा संविधान हर प्रावधान और अनुच्छेद पर गंभीर विचार के बाद और तब स्थापित किया गया और विश्व का सबसे सुंदर और विस्तृत संविधान बना, उसी तरह से आज ये जो न्याय संहिताएं लाई गई हैं, ये बहुत ही लंबे विचार विमर्श के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में हमारे गृह मंत्री जी ने इसको प्रस्तुत किया है। और अपराध इसमें स्पष्ट है कि हमें दंड नहीं देना है, हमें न्याय देना है। लेकिन अपराध अगर ऐसा है जो जनमानस को नुकसान पहुंचाता है, तो उसमें भी दंड की भी अच्छी व्यवस्था की आवश्यकता होती है। आप जैसा सबने बोला, 1993 में, 2003 में, 2007 में कई कमेटियां बैठाई गई, बोरा समिति, मलिमत समिति, माधव मेनन समिति। इन लोगों ने कहा कि कैसे अपराध को कम करें, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को, पॉलिटिक्स में अपराध को कैसे कम करें, ब्यूरोक्रेसी में कैसे कम करें, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। 65 वर्षों तक कांग्रेस कर सकती थी, उसकी सरकारें कर सकती, उन्होंने नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों के अंदर केवल उपनिवेशवादी जो संस्कृति है उससे मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि उसके चिंतन से, सोच से और हर धारा में परिवर्तन करने का उन्होंने काम किया है। और उपनिवेशवादी प्रतीकों की तो मैं क्या बात करूं, उन्होंने तो कहा मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए। और 1500 कानून रद्द करने के साथ साथ 25,000 के करीब नियम जो कि बाधक होते थे विभिन्न कार्यों में, उनको भी उन्होंने समाप्त या संशोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया, प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, कि हमारे लिए कानून व्यवस्था या न्याय आवश्यक, सरल और व्यवस्था होनी चाहिए। लक्ष्य दंड देना नहीं, न्याय देना है। जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप हमें अपनी न्याय व्यवस्था बनानी चाहिए। और इसीलिए यह सारी संहिताएं लाई गई हैं जो कि भारतीय सोच से संबंधित हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि मानव का मौलिक अधिकार भी है, लेकिन व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि जो विभिन्न सेक्शंस हैं जिनको समाप्त किया गया, बदला गया या निरस्त किया गया, ये भी बहुत आवश्यक थे। और 150 साल बाद हमें क्या जरूरत पड़ी इस तरह की व्यवस्था को लाने के लिए, क्योंकि आज के समय में अपराध की परिभाषा, तौर तरीके, जांच, गवाहों और सबूतों के परीक्षण में व्यापक परिवर्तन आया है। और ये मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है कि आज के कारण ही है कि आज हमने आतंकवाद की, अलगाववाद की अलग पर एक सुनिश्चित परिभाषा दी है। संगीन अपराध, साइबर क्राइम जैसी चुनौतियों का हम मुकाबला इन संहिताओं के माध्यम से कर सकेंगे। और जब आज इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध हैं, सीसीटीवी कैमरा, वॉइस रिकॉर्डिंग, कैमरा रिकॉर्डिंग, फोरेंसिक जांच की सुविधाएं, ये वर्तमान आवश्यकताएं हैं। जल्दबाजी में कुछ नहीं किया गया, बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। राजद्रोह को हटा के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की व्याख्या की गई है। मॉब लिंचिंग के साथ लेकर भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों के खिलाफ भी कानून बनाए गए हैं। और महिलाओं के लिए विशेषकर सामूहिक बलात्कार से लेकर छेड़खानी से लेकर जितने भी महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, स्पष्ट तरीके से उनमें जो कानून बनाए गए हैं वो बहुत ही हम लोगों के लिए एक हमको सुरक्षा देने वाले होंगे। आज 5 करोड़ से ज्यादा केसेस लंबित हैं, बस 1 मिनट। और इसी के साथ साथ जो जेल की ऑक्यूपेंसी है वो उसकी क्षमता का 131% हो चुका है। मैं कहना चाहती हूँ, जैसा कि कहा गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और एक और कहावत है, एवरी अक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये दोनों बातों का ध्यान में रखते हुए जो हमारे सीआरपीसी, आईपीसी और जो हमारे
जो जूरिस्प्रूडेंस में एविडेंस एक्ट में चेंजेस किए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अच्छे हैं। सेकेंडरी एविडेंस से लेकर FIR, बयान, स्टोर, चार्जशीट को फाइल करना, डिजिटाइजेशन करना और एक निश्चित समय पर न्यायालय से भी एक उसका आज जजमेंट आ जाना सबकी व्यवस्था की गई है। मैं अंत में यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। 21वीं सदी के भारत को उन्होंने एक नई दिशा दी है। सैकड़ों ऐसे सालों से लंबित विवादित विषयों को समाप्त किया है। आज 75 वर्ष से हम 100वें वर्ष में आजादी के प्रवेश कर गए हैं और ये यात्रा प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए पंचप्रण को निभाते हुए भारत के इतिहास में नया अध्याय लिखेगी। नए भारत के इन संहिताओं ने राष्ट्र हित के साथ साथ महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों और संवेदनशील समूह को मध्य में रखा गया है। मैं इसको सपोर्ट करती हूँ बिल को और मैं समझती हूँ कि भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बुधवार दिनांक 20 दिसंबर 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नमस्कार, संसद टीवी के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। दोनों सदनों में विधायी कामकाज के साथ साथ प्रश्नकाल भी होता है। इस दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने आज 8 मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब भी दिया गया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 11 मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालयों की ओर से जवाब दिया गया। प्रश्नकाल विशेष की आज की कड़ी में हम युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से पूछे गए सवालों पर फोकस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल पूछे और इन प्रश्नों के जवाब में सरकार ने कौन कौन सी बड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्नकाल विशेष। राज्यसभा में वित्त मंत्रालय से सांसद अनिल देसाई ने ऑनलाइन भुगतान हेतु डिजिटल उपकरण से जुड़ा हुआ सवाल पूछा। सवाल के माध्यम से पूछा गया कि ऑनलाइन भुगतान करने हेतु UPI आदि जैसे कौन कौन से विभिन्न डिजिटल भुगतान उपकरण उपलब्ध हैं। देश में इसकी शुरुआत से लेकर अब तक वर्षवार कितने लेन देन हुए हैं और सरकार द्वारा ऐसे ऑनलाइन भुगतानों को प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं।
राज्यसभा में वित्त मंत्रालय से डिजिटल भुगतान से जुड़ा सवाल पूछा गया, जिसका जवाब वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने दिया। प्रश्न के जवाब में मंत्रालय ने बताया कि ऐसे कई डिजिटल पेमेंट उत्पाद हैं जिनसे खुदरा से लेकर थोक भुगतान किए जाते हैं। थोक भुगतान के लिए तत्काल सकल निपटान यानी RTGS है, वहीं खुदरा भुगतान के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण यानी NEFT, तत्काल मोबाइल भुगतान सेवा IMPS, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, प्रीपेड भुगतान उपकरण, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी NACH, आधार सक्षम भुगतान सेवा यानी AEPS, भीम आधार पेमेंट और बैंक खाते से संबंधित नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन यानी NETC उपलब्ध है। सभी हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स के साथ सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हाल के वर्षों में डिजिटल पेमेंट में बढ़ोतरी हुई है। कुल डिजिटल भुगतान लेन देन की मात्रा वित्त वर्ष 2017-18 में 2071 करोड़ रुपए थी, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 45% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पर 13,462 करोड़ हो गई है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 11 दिसंबर 2023 तक डिजिटल भुगतान लेन देन 11,660 करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले 6 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डिजिटल पेमेंट में हुई प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है। सरकार का लक्ष्य RBI के कोऑर्डिनेशन से भुगतान सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए डिजिटल भुगतान को लगातार यूजर्स फ्रेंडली बनाना है। इसके लिए किए गए प्रयासों में अन्य कार्यों के साथ साथ UPI में चैट और मैसेजिंग के जरिए संवादात्मक भुगतान को उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित वातावरण में लेन देन शुरू करने और उसे पूरा करने के लिए AI संचालित प्रणाली के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाता है। UPI में ऑफलाइन भुगतान ताकि UPI पर छोटे मूल्य के लेन देन की गति बढ़ाई जा सके, ई-रुपी वाउचर के दायरे में पहुंच को बढ़ाना, रुपए क्रेडिट कार्ड को UPI के साथ संबंध करना और ATM पर इंटरऑपरेबल कार्ड लेस कैश विथड्रॉवल शामिल है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई थी। इस कार्यक्रम के साथ ही देश में UPI की शुरुआत हुई, जिससे देश में डिजिटल पेमेंट आसान हो गया। इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर यानी eKYC, डिजिटल लॉकर और इलेक्ट्रॉनिक साइन जैसी सुविधाएं शुरू की गई। केंद्र सरकार ने रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करके वित्तीय जागरूकता संदेश भेजकर और मल्टी चैनल सार्वजनिक जागरूकता मीडिया अभियान चलाकर डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा RBI द्वारा वर्ष 2022 के लिए प्रगति को मापने के साथ बेंचमार्किंग अभ्यास किया गया। इसमें पेमेंट को इकोसिस्टम में भारत की प्रगति को मान्य किया गया, जिससे भारत को 40 में से 25 संकेतकों के संबंध में अग्रणी या मजबूत देश के रूप में वर्गीकृत किया गया। डिजिटल पेमेंट के साथ ही साइबर अपराध भी बढ़ा, जिसे रोकने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक कदम उठाए। इनमें अलर्ट जारी करना, LEA या अभियोजकों अथवा न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण और साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं आदि में सुधार करना शामिल है। सरकार ने इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C की स्थापना की, जिससे साइबर अपराधों पर अंकुश लग सके। केंद्र सरकार ने सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में जनता को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT इन फिनिशिंग वेबसाइटों को ट्रैक करने, अक्षम करने और धोखाधड़ी गतिविधियों की जांच की सुविधा, अलर्ट और परामर्श जारी करने जैसी गतिविधियों के लिए हमेशा तैयार रहती है। लोकसभा में एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP इकाइयों से जुड़ा सवाल पूछा गया। सवाल सांसद PP चौधरी, प्रताप चंद्र षडगी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, अनुराग शर्मा,
संगमलाल गुप्ता और CR पाटिल ने पूछा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से पूछे गए इस प्रश्न में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और ओडिशा राज्यों में स्थापित की गई ऐसी इकाइयों की संख्या की जानकारी मांगी गई और क्या सरकार उक्त योजना के तहत FPO SHG समितियों को प्रशिक्षण सहायता प्रदान करती है। लोकसभा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से एक जिला एक उत्पाद इकाइयों से जुड़े सवाल का जवाब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री शोभा करांदलांजे ने दिया। जवाब में बताया गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना, अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय, तकनीकी और कमर्शियल असिस्टेंस प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना लागू कर रहा है। ये योजना 10,000 करोड़ रुपए के आउटलेट के साथ वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए लागू है। योजना में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को अपनाया गया है ताकि उपकरणों की खरीद, सामान्य सेवाओं की उपलब्धता और उत्पादों की मार्केटिंग के संबंध में लाभ प्राप्त किया जा सके। PMFME योजना के तहत देश में ODOP आधारित 12,024 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट लिंक सब्सिडी को मंजूरी मिली है। इनमें से 109 इकाइयां राजस्थान में, 756 इकाइयां उत्तर प्रदेश में, 69 इकाइयां गुजरात में और 240 इकाइयां ओडिशा में हैं। साथ ही मंत्री जी ने बताया कि PMFME योजना के तहत ODOP इकाइयों और अन्य समूहों की वृद्धि का आकलन और निगरानी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, ऋणदाता बैंकों, संबंधित मंत्रालयों, विभागों एवं अन्य हितधारकों के साथ अनुवर्तीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से किया गया। PMFME योजना के तहत लाभार्थियों को हैंड होल्डिंग सहायता भी प्रदान की जाती है। ODOP आधारित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के जरिए FPO, SHG एवं सहकारी समितियों को सहायता प्रदान की जाती है। 30 नवंबर 2023 तक लॉन्च किए 14 ODOP ब्रांड के विवरण की जानकारी भी साझा की। इसके साथ ही PMFME योजना के क्षमता निर्माण घटक के तहत FPO, SHG एवं सहकारी समितियों के सदस्य समेत 54,767 लाभार्थियों को उद्यमिता विकास और खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने की दिशा में ODOP योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के अलावा हैंडीक्राफ्ट समेत अन्य उत्पादों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ODOP का मुख्य उद्देश्य एक जिले के उत्पाद की पहचान, प्रचार और ब्रांडिंग करना है। इसके साथ ही देश के प्रत्येक जिले को उस उत्पाद के प्रचार के माध्यम से निर्यात हब में बदलना है जिसमें वो जिला विशेषज्ञता रखता है, जैसे लखनऊ चिकनकारी और जरदोजी के लिए, भागलपुर सिल्क के लिए, नॉर्थ गोवा काजू के लिए प्रसिद्ध है। योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय व्यवसायों को समर्थन प्रदान किया जाता है। उत्पाद की अच्छी बिक्री के लिए संभावित विदेशी ग्राहकों का पता लगाना एवं उत्पादों को पर्यटन से जोड़ना इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। एक जिला एक उत्पाद को वाणिज्य विभाग की डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब पहल के साथ विलय कर दिया गया है। इस पहल के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से देश के 734 जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा डिजिटल ODOP मानचित्र लॉन्च किया गया, जिसमें सभी राज्यों के ODOP उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। डिजिटल मानचित्र में आदिवासी, SC और आकांक्षी जिलों के लिए उपलब्ध संकेतक के जरिए भी उत्पादों की जानकारी एकत्रित की जा सकती है। राज्यसभा में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना से जुड़ा सवाल पूछा गया।
सवाल सांसद KRN राजेश कुमार ने पूछा। सवाल के माध्यम से पूछा गया कि क्या सरकार ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में देश में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने पर विचार किया है? यदि किया है तो जानकारी साझा करें। साथ ही क्या देश भर में विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में ऐसे किसी पार्क को स्थापित करने का प्रस्ताव कर रही है या फिर किया है, इसका विवरण क्या है? राज्यसभा में नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों की स्थापना से जुड़े सवाल के जवाब का विवरण सभा पटल पर रखा गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री RK सिंह ने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 40 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के तहत 31 अक्टूबर 2023 तक देश के 12 राज्यों में 37,490 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 50 सौर पार्क स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश में 5, छत्तीसगढ़ में 1, गुजरात में 7, झारखंड में 3, कर्नाटक में 2, केरल में 2, मध्य प्रदेश में 8, महाराष्ट्र में 2, मिजोरम में 1, ओडिशा में 3, राजस्थान में 9 और उत्तर प्रदेश में 7 सौर पार्क हैं। और अब तक 19 सौर पार्कों में 10,237 मेगावाट की कुल क्षमता